All right, if you guys can give me a quick audio check for those listening from home, that would be great. नो प्रॉब्लम, अभी उसकी स्ट्रेस ना ले। आप जो कर रही हैं ना उसको करते रहे, मैं आपको एरिया की तरफ बाद में लाता हूँ। नो प्रॉब्लम, सो इट्स फाइन, नथिंग टू वरी। कि आप स्कैल्प कर रही हैं, ट्रेंड के साथ जा रही हैं, तो ट्रेंड के साथ चल जाए। नो प्रॉब्लम, या जस्ट कीप, हाँ, just keep doing that, no problem. Audio is good. Audible. Thank you. The audio is good. Perfect. Zoom and live, please. Both. I assume. Just. Muted. Okay. Good. Take a pen. I gotta write some things. Let's do this. Good. Finally, I did a bit on the main floor. Okay. Welcome back. No problem. No. Welcome back. We'll do our best. No problem. We'll get it going. I know everybody's
Oh, no worries, man. It's okay. I'll get bored. It's okay. No worries. Good to see you. All right, guys. Monday, August 10th, 9:07 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Win Lifetime and Super Areas. Thank you for coming in person at any of our office here, Vancouver, Calgary, or the Trinity, as well as online, wherever you're joining us from. Um, I'm your host, Rafay, and I'll be with you for the next 3, 4, 5 hours to help you understand and navigate the markets. Anything I say here is not financial advice. It's just for informational, educational, entertainment purposes only. I don't control the market. I don't move the market. I just like the charts you have, I read these charts and I will try to find the best possible entries. Of course, nothing is 100%, but based on our analysis, we'll try to pick the best entry possible and we'll go from there. First thing is first, of course, let's check out the news on Forex Factory and see what if there is anything happening today. Nothing is happening. Just saying there is Cleveland Fed inflation expectation, but it's tentative. There's no, but of course, we always have to be ready for Trump tweet any given time. So always put your stop losses on and do what you see, don't do what you think. And today, again, I have started doing these live streams from the WLT office, main office, to kind of teach the beginners as well how these things are. Miss Tulip is now running at the Trinity office. Myself, Mr. Vikram, Majid Bhai, and Daniel, and everybody's here. Other office is happy, and then so on and so forth. Let's look at earnings calendar. Anything major? No major earnings. And if you are absolutely beginner here, you're seeing me for the first time, don't worry. I will catch you up around maybe 10:30, 11 o'clock. So I do my analysis. I look at the markets. I try to find the entries. Uh, don't worry, I started like you guys. 5 years ago, I was listening a radio station. I heard Daniel, so I came here as a student. I have some experience about trading, no problem, but not trading futures. What futures trading is, what MES is, don't worry. I've spent 5 years in depth, everything. So if you don't understand anything, most of the questions I answer after 11 o'clock. But because by 11 o'clock, the market has kind of calmed down. And if I'm looking at an opportunity to sell or buy, kind of really all the mentors generate by 11, they're focused on analysis. And if something is not going the way you were expecting, by 11 to 5, like I don't have to go home until 5. My kids are off school. And I did this from here, from every room, every office. So they asked me, hey, if I can come back to the main office, and here I am. So don't worry. This is not rocket science. It's just buy and sell, and I'll get you guys going. Making a couple of $100 a day, 200, 500 is not a big deal. I did a short last night. The price came to a certain point. So the way I'll just tell you my style is, the way I trade is I wait for a number. I wait and I wait and I wait. Sometimes I wait a day. Sometimes I wait 24 hours, 48 hours, until price hits my favorite number. So there's two types of quick trades I'll tell you before Daniel's brief starts. What you're seeing here is trend trade. You want to sell with the trend. So there's two trades, major. You go with the trend or you go against the trend. So those are called support and resistance. So support and resistance way or trend way. That's all there is to it. Good morning. So I'll explain as I go. If you can't keep up with the pace, don't worry. By 10:30, there's nothing left in the market sometimes to even trade. So don't get confused, because
I may say a sell number, but your graphs will be green. And if I say a buy number, sometimes your graph may be red, right? So these are called support and resistance numbers, and they've been given to you. Quickly, I just want to write my number in case, because most of the time I do online. Sometimes Wednesdays I come online. Sometimes, so name is Rafay, Rafay, and the number here is 647-228-0694. This is a WhatsApp number. Nobody picks up this phone call. You can keep calling, it'll just keep ringing. However, 4 people can read this message. So if you send a message down the road, my copier is not working, my charts are not working, somebody will reply eventually. So you can send me, depending on who can answer the question, they will reply. Sometimes I don't reply, but I read the chain. So just in case you have another support number, you have super areas, you have Daniel, you have a cost, the whole 9 yards, but you do have this number too, just in case. Audio is not off, G. Audio should be as clear as possible. Like, I don't think audio is off. Zoom is good. I don't check for Telegram. Yeah, it's all good. Harunji, audio is okay. So last night when the price came to what I was looking at, somewhere around 29,900, I had done a short, and I woke up with a little bit of a chunk already done. So and if you have to hear me ever online, if I'm not here, same. Like you have streamed for everybody. Myself, Tulip, Vikram, Happy. You go under super areas, you will see the live streaming, and then if I'm online, you will see that. I would recommend you all to be part of our Telegram group. So it's free. There's no cost to it, but only the super areas member do join because sometimes there's announcements. The office is closed, market is happening, and areas alerts are coming. So the Mr. Jatin, who will assist me today, he can help you with a lot of stuff that, as you graduate your journey from beginner to intermediate to advanced to trading live market or trading the funded accounts, etc. I always have an assistant. Don't worry, it's okay. He's an expert at trading as well, and we'll get you guys going. So my job is like, the 2 teams are playing a match, and I am the commentator to just understand, say, hey, this is what is happening. This is what is happening. I don't know the outcome, but at least we'll say, okay, if this happens, we will take this action. All right, so let me just update the areas, and I put some highs and lows. So always make a habit, though. Always daily. I know for the first timers, when you wake up, at least the morning session, so-called the New York session, write down your news. If there is a red impact, the only thing you have to watch is what time I'm not going to trade. 9 o'clock, 10:30, 10 o'clock, 11, 11:30, President Trump speak. Just stay away from the mouse, because if you're in a trend trade and you decide to sell right here, right around here, and there was a news and you don't know what happened, and NFP news, interest rate news, CPI news, and all of a sudden you hit your stop loss. So just around that time, 5 minutes before, 5 minutes after, no trading the news.
how the chart works, everything. Don't worry. I'll slowly we'll get into it as the time goes. Second thing you want to do is for ES and NASDAQ, this primarily there are hundreds of market you can trade. I trade the top two, ES and NASDAQ. And I'll explain you what ES is, what NASDAQ is, but um, you want to start writing some numbers for the night session. So every morning I have a religious habit. So 5 items you must write for ES. So ES, you're going to write night session high, night session low, pivot price, and value area top, and value area bottom. These 5 prices may not make any sense to you today, but it's fine. Eventually, I'll tell you what so you open up, this is for morning session only. You don't have to worry about it if you're doing it 3 o'clock, but it's a good idea to write your high, your low, your pivot, value area top, value area bottom. And for NQ, you don't need like only night session high, night session low, and pivot is good enough for us for the NASDAQ market, NQ market. We are not going to overtrade. If there's an opportunity for trend trade, mid-band, we're going to do it properly. So our job here is not to trade. Our job here is to make sure the money that you have goes higher, doesn't go lower, right? You don't find an opportunity, there's no reason to trade. And always, please, for God's sake, put in your stop losses through ATM, but or manually, because with blink of an eye, things can go wrong. So you have to make sure your stop losses are there in the volatile market. Okay. So let me update this. And you can ask me any question. Absolutely. Don't be shy, because sometimes you're hesitant to ask, and you're like, oh, is it a wrong question? Should I know this already? Don't worry about it. It's okay. I am still learning a lot of things every day. So it's not the end of the world if you don't know. It's okay. Sometimes I would go and walk in and run into Daniel, and I say, hey, I'm not understanding this concept. So nobody's here to kind of, everybody wants to make sure you're successful. There's no personal vendetta against anybody. It's just that, hey, you have a question, we'll do our level best to make sure that you are taken care of. Okay. All right, now we'll wait for Mr. Daniel's brief shortly, and then okay. Yes. Absolutely, absolutely. No problem at all. I will go over every single thing line by line to explain. There's about 6 things you have to look for, and the biggest thing is your trend. Which chart to use for pivot? You should 60 minutes. 60 minute is the chart
to use for a pivot. And I have videos after videos on how to read a chart, where these values come in. Don't worry, like it's fine. All right, before I go quickly, I just want to make sure I start to write these numbers because time, I'm normally here by 8:45, but today went home slightly late. Monday to Friday areas, so we're up to areas are posted. So base is down, pressure is down. So that base down means price is below pivot. What's my strike price? 29,440. And what's my strike price of 7720? No events major. All right, let me write down the night session high is 29,985 for NASDAQ. Night session low is 29,771. So 214 points. And my pivot, let me just get a couple of things because I used to have it here, but I'll come back to the pivot. 60-minute pivot. 60-minute pivot for NASDAQ is 29,856. 29,856. Okay. Yes. Night session high for ES 7797. The low 7764. I'll round it up. 7764. Pivot for me for this chart for 60-minute, you're staying at 7778. So 7778. My value area top is very close to pivot, so 7778 or 7777. It's an odd number to say it out loud. And the bottom is I am at 7756. All right, that's got take care. Yes. 60-minute chart. I will open up the chart and I'll tell you where I'm reading it from. And there's nothing that I have that you don't have. So you don't have to ever worry, hey, where is he getting these numbers from? I'm just reading because at the bottom, you have not only 3 charts, you have 6 charts. And every chart has a value. And I'll show you, share with you how to extract these values. So let me, 60 मिनट में 2 60 मिनट के चार्ट हैं एक तो ब्लैक लाइन जा रही है ना उसके ऊपर पीपी लिखा हुआ है मैं निकाल देता हूँ नो प्रॉब्लम सो आई विल गेट यू हाउ टू गेट सो just in case I forget, just write down this question. That way, when we are doing the actual training, they're like, you don't forget. So the first question is how to extract these numbers. No problem. So these are support and resistance values at various. Now, only thing difference between what you have been taught and what I use. Daniel taught you in the class something called an evening session and a night session. He breaks the number into further night session high and low between 6 to 12, and then from 12 to. Okay. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Game show. Microphone check. Mahmood bhai, good morning. Ayaz bhai, good morning. Hikesh, Amir, Sukesh ji, good morning. Shaji, good morning. Amrit.
Okay, thank you, Lalji. Good morning, Manjeet ji. Good morning, everybody. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday. You'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs or charts are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. Today, S&P, NASDAQ, Dow, Russell 2000, all base is down, pressure is down. And exactly when it made our higher high ever, I'm talking about S&P 500, it went, retraced back up exactly 75%. The golden ratio, 75% push to the upside. Now, the first area for S&P 500 to come down, that is our green box. On our 60-minute chart, that is somewhere S2 area, but overall it has to come down to 77.24. 77.24. That is the swing retracement low. After the swing of 496 points, 96.25, retrace back down 19%, and that 19% off it went up 75, and now it's coming down to test our that 24 area. Means we have a huge cushion to the downside. Keep eye on striking price, guys. Keep eye on striking price. Except Dow, both all three striking price is low, so that is a very, very important, especially on crude oil. If you go and see the striking price is very, very important. That is, I believe, 85.60. I'll let you know what. But overall, high to go low would be a good strategy. Today, our S&P 500 high for the day is 78.68 to 78.80. Low for S&P 77.08 to 76.95. NASDAQ, our high for the day is 34.50 to 540, 30,540. Low for NASDAQ is 29,370 to 270. So overall, YM, if you look, it's going opposite direction. So YM, I'm talking about August, Friday, and then after last night market open and gave us a very nice, beautiful, Friday, it went up, came down, exactly 100%. It matched where it opens at 9:30 a.m. So in last night evening open, very slow move, very tiny range on Dow. S&P 500 went up. Dow did not went up because S&P break Friday high. NASDAQ break Friday high. Russell 2000 and Dow did not break the Friday high area. So overall, we are expecting 72 points push to the expectation. The swing high expectation is 50% of that push. That is somewhere S2. Again, S2 area will be very, very crucial today on our NASDAQ, on our S&P 500. So NASDAQ went up 335 points, S&P 72 points. So far, 36% retracement on S&P and 39% retracement on our NASDAQ. Both did not hit our R1, but very close to our S1 area, opening below the mid-range. So opening below the mid-range, so this is a retracement, and we want price to go further down. Go with the trend. And also, a very, very important week this week. We have no news today, so today will be a very smooth market. Area to area would be a good strategy. Tomorrow, not much. We have the employment costs, existing home sales are coming, but Wednesday, Thursday, and Friday, very important, especially Wednesday.
red to go up and green to go down. And look how highly it's big. Like there's no words that I can explain how they're manipulating the market. You see the Friday how low numbers they bring up for our non-farm employment chain. That was all fake numbers, guys, because they don't want interest rate to go up. If 100% Fed was about to increase the interest rate in October, but because of this low number, now they're pausing it, and they know what's going on, and we know what's going on. It's all manipulation. Highly, Trump is fully naked in front of this whole world. And not only Trump, is whole that establishment. They don't want this world to be in the peace, or people have a little bit ease. But overall, we don't care. We go high to go low. We go with the trend. If trend is up, we go up. If trend is down, we will go down. We don't care what their games are. We play with their game. If they are going up, we'll go up. They go down, we will go down. Euro, if you remember, Friday we had a very strong push on British pound and euro. Very strong push. It went up, retraced back down, did not give us a higher low. And right now at Friday high area, but euro is below PP. British pound is above PP. British pound is very close to Friday high. Euro is at 50% of, I would say, the high of our Friday area. But overall, euro is down, British pound is up. Base, I would say base is up and pressure is down, but euro both are down. Canadian dollar above PP, Canadian dollar Friday, banana went up, very strong push to the upside. And huge push to the upside. In 2 weeks, we didn't see this much big push on our Canadian dollar. It went up, retraced back down 21%, and right now exactly at the low, very close to that low, almost 60% of that low. Crude oil is going up. If crude oil is going up, gold will go down, guys. Crude oil went up. If I see, I'm talking about the Friday, $2.09, retraced back down $1.60 and $2.19 push up. It's still up. I told you guys, keep eye on the striking price. We have to be very, very careful with the crude oil striking. If it breaks the striking price, it will go a little bit up, and then it will retrace back down, and then big push to the upside on our crude oil. But right now, crude oil is at around, I would say, $80, very close, and just 2 cents. It's shy 2 cents from $80. And right now, at R2 area, our intraday R2, FDAX is down. Actually, FDAX went up Friday, very strong push, and retraced back down. And today, this morning, it almost covers up 90, I would say 92, 93% of that push, and then shoot to the downside at open. If euro and British pounds are up, we know which market will be down. That is our FDAX, and FDAX is down, and it's still pushing very strong down. We might see our expected low on our FDAX. Gold at PP. Actually, gold went up this morning, went up $47.60. Came down 81%, $38.70. And right now, above PP area, but not much push. Silver, same thing, above PP. Both are above PP, but not giving us a big push. If I see the Friday, that push we had to the upside, that $151.10 push to the upside on our gold. Retrace back down 38%. That was $58 and not much. It's in doldrum. I would say the gold and silver both are in doldrum. Silver also gave us a huge push, $4.36. That's crazy, crazy push to the upside. And right now, it gives back only $1, not much in doldrum. Remember, the gold and our silver both are in doldrum, means it's not breaking our significant high and it's not breaking our significant low. It's in both areas, so it means it's in a doldrum, means it's not giving us any proper direction. Copper above PP, hit magenta midband,
It drops on Friday. Actually, Friday copper dropped, retraced back up 43%, and now copper is also in doldrum. It's not giving us any direction. So I need $6.65 to the upside and $6.57 to the downside to give us a proper direction. Either it goes up or goes down. Our natural gas is banana, very close to our expected high for the day, $2.80. When I came, it was the natural gas was sitting somewhere $2.75. So right now, that's a huge push to the upside. Actually, overall, from Friday low, we have 18 cents push to the upside. Keep eye on our expected high, that is $2.80. I would say 82, 83, 85 anywhere, even 90 cents. So it just hit 79, means our expected high for the day is done for our natural gas. Still cushion to the upside. It has more room to the upside. So I would say somewhere 90, 92 cents would be a good area. Bitcoin is down. Bitcoin came down from this morning after 4 a.m. $825 push to the downside, and still it's pushing down. But overall, long-term basis up and pressure is up for our Bitcoin. Ethereum, same thing, exactly $36 push to the downside. Um, we are in August, so September, October. After October, we'll see these cryptos have a very good push to the upside. Again, guys, news, keep in mind, today will be a normal day, tomorrow will be a normal day, and then after tomorrow, we'll see until Friday, there will be a hurricane, there will be a chaos in the market because all 3 days we have inflation data is coming. Our core PPI is also there, PPI is there, our University of Michigan consumer sentiment is there, means the inflation data is coming. So step by step, I'll explain you Wednesday what we'll do, and Thursday and Friday. Today, high to go low would be a good strategy. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. All right, so price opened and kind of shoot down after one mid band. So what are we looking at? Okay, NASDAQ, wait for 650 to 670. So if you're watching my Zoom, I've written the number. So keep an eye for, because I always continue what I was doing earlier from home stream as well, just to make sure. So new order ticket, and I'll come to ES shortly. 1 second. I want, if you're doing MNQ or NQ, however, wait for at least 650. So this number must go to 650 before you start taking a support trade. Give me a second. 580. Actually, the best number should be. And Kanchi, sorry. Yes, 29. Whenever, if the way most people talk when they're talking 3 digits, they're talking NASDAQ. Because the way I'm doing is, if I'm looking for a number, 650, 3 digits. When you were talking about basically 2 digits, it will be automatically, I'm speaking about S&P 500, because I don't want to repeat 29,650. So I'm keeping an eye at that number closely, the 650 to 670 zone. And quickly give you guys an update. The way, like I said, my trading style has been, I just wait for a number. When the price goes to a certain thing, I will. So the moment I've written the numbers, I will be easy to write down your, and ES somewhere around ES somewhere around bottom of S2, around 77.40. 77.40, it should stop. And I always will tell you where am I coming up with these numbers from.
If I know this is for a little bit advanced users, don't worry. If you're not understanding it, ignore it. Ignore it. It's okay. So ES, MES, no problem, and MNQ, NQ, no problem. So if you look at 30-minute fib chart, there's a green box at the bottom of 30 minutes. So that is coming from your S2. You also have a green box on a 60-minute NASDAQ. So that's where I'm picking up. So I'm going slightly below S1, around 666. If you were doing a 1 minute chart, you're actually done. You took a sell after the open, but it's okay. No problem. Too many things will happen at the same time. And I've written the numbers for now. Resistance. Now I got to write 2 numbers. Where is a possible first resistance of this? Do we take a pivot? Give me a second. Do I want to take a pivot or not? As is. So okay, give me 1 second. Night high is 985. 50%. Pivot is okay. If it comes around pivot, you can do a quick sell somewhere around pivot. So right now, around 860. So 860, if it comes, 29, 840 to 860. It should stop. And ES, if ES stops at which number? I'm 1 monitor short here from home, but it's okay. I'll make it as go. ES, I'm not taking pivot. I'm taking at least 6 points. Let's wait for ES to go. 7790. I'll keep an eye, of course. 7790. Okay. So that is out of the way. We'll worry about when these numbers come. Okay. The way I do it, I don't go in with a fixed TP or SL. If you are scalping, there's 2 again within the trading. There's a method called scalping, and then there's a method where you keep running the price like profits. Generally, the thumb rule is don't go MNQ more than 30 points, meaning that if it has gone against you 30 points, call it a day, meaning that your stop loss is okay to hit. So if you entered at a price of a scalping trade and it went against us 30 points, kill the trade. So 30 and TP, you decide you want to take 5 points, or because it's so fast, it will hit it and then it will just come down. Sometime I've taken 30 points. So I'm not too much concerned about TP. I'm concerned mostly of how much I want to take a loss, which is 30 points, which is 120 ticks. 120 ticks is more than enough. So if you're taking a mid-band trade on ES or MES, don't let your trade go more than 5 points. I know you've been taught with Daniel, you can take 2-point stop loss, it's okay. But that's the maximum is 5. You enter right here, and it went against you a couple of points, no problem. It still gave you profitable. So this was profitable. This was profitable. These are profitable trades. However, it will like go 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, and then you're hoping price will come back. So there's a law here that maximum 5 points on ES or MES. We don't go more than 5 points on, especially ES. That's a $250 loss, right? I know he says 64 cut it, 75 cut it, but if you want to give it some breathing room, maximum 5. That's the ultimate. Hello, Ji. आपने इसको इस तरह भी करना है तो कर लें. Okay, no problem. So that's Mr. Jatin. He's been assisting me for
one of students like you guys, and no problem. सर इधर मैं जा रहा हूँ पिवट पे, और उधर डाउन में जा रहा हूँ 30 मिनट के या 620, थोड़ा सा 50 और रेड, ये जो बॉक्स है ग्रीन के नीचे। और भाईजान 1 मिनट का तो डन है। इफ somebody took a 1 minute fib or 1 minute, that is done. All right. Second. Just gotta fix one thing and I will come back to you guys to start. Eight, 4, 6. कल शॉर्ट सी 900 तो 29 I was मैं कुछ डन हूँ, कुछ अभी स्टिल लूज, उसका नहीं डन हुआ। टेक प्रॉफिट डन हो गया, वो नहीं डन हुआ। So if you take the 1 minute fib box, you're done. Earlier,
लिया सर तुसी? Yeah, you could trade. No problem. All right. So these numbers are written. Let's get you guys started. Okay. For those that are watching at home, the Zoom, I have written the numbers, and then the live stream, I'm switching over to some teachings and everything else. Okay, I'll go with absolutely basics. So that way, if you don't have an idea or you have, I'll just build it up from complete basics. So that's the idea. If I have to redo orientation, not a problem. So slides. Because my trade style is different. I can sit and wait, not a big deal. So now we can get the orientation. Maybe I just turn off. Okay. थोड़ी सी लाइट देते हैं तो इसको डिम कर देते हैं. It's okay. That's fine. Yeah, that's fine. कैमरा सेट करना है? ओके. और उधर भी कह दें अगर किसी ने ओरिजिनल ओरिएंटेशन लेनी है, नो प्रॉब्लम. नहीं नो प्रॉब्लम. नहीं, ये जा रहा है, ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है. थोड़ी सी लाइट दे दें मुझे. Yeah, all right. Everything I say here does get recorded, so you don't have to worry. You can reference this. We have thousands of lectures out there. Amount of money, this is a presentation, but I'll just run through some slides. Amount of money that moves, $100, $200, $500 is not a big deal. You will eventually get there where I'm done, $5,000 already since last night. So $5,000 I'm done. For 5 accounts, $1,000 per account. So I shorted it last night. This morning, I'll show you my results too. These are evaluation accounts of 150K, and $5,000 is done. So if somebody says I made 1,000, 2,000, 5,000, 100,000, not a big deal. Depending on what their style of trading is, how fast they put in, what kind of capital they have, not a big deal to make. So sky is the beginning when it comes to it. Some terms, you've already signed up, you don't have to worry about it. A little bit about me. I'm 46 and a half. I've been doing futures trading for 5 years. And in terms of trading itself, about 20 years. So I have a little bit of experience in this. I came to Canada with my parents in 1996 from
Middle East, and my dad can fix the forklifts. That's what his job is. That's his profession. He came and he settled anywhere. He can drive a seat. So he settled and he did. He can fix forklifts. So I settled in Kitchener-Waterloo area. So this is November 6th, year 2000. So 6 odd years ago. This is where I went to school, and I was lucky enough to represent Canada in writing software, different competition as a gold medal. It's hanging, and then the silver in US, etc. So I've been writing software for at least 2 decades, different types of software, right? So the idea is that now these days I write software for trading. So quite a bit of a experience with writing different sort of software. Did all sorts of, and if different industries have constructions, indoor facilities, electronics. 10 years I spent writing software for satellites. Another 10 years I spent time writing. You guys have an IPTV box at home. Somebody you're giving 10 bucks a month, 20 bucks a month. How the station goes from a camera to your device, everything in between. I worked for Verizon. So I got sued by Dish Network, a company that's listed on NASDAQ, for writing a software that can get you free channels, right? So they came to my home and they're like, stop it. So anyway, now I'm part of Win Lifetime. They've been here since 2008. They have globally, just like you, 12,000 members have taken this proximate training. Since 2008, they have now, there's 4 floors, one here, another one in Mississauga, one Calgary, one Vancouver, 4 analysts. So this is not a one-man show. It's run by a proper organization. I'm just one of the mentor that helps you teach this kind of stuff. So you're in right hands. Why are you here? For money, everything. This is again a presentation. Now, you've all heard it. Let's go over it. 5 basic things you must know about what exactly that you do here. Why did you come to Win Lifetime? Why did you get involved in trading? Now you will sit with somebody and you at least should know 5 things. So number 1, we are making you a day trader. So within trading, there are lots of options. There's stocks, there's options, there's crypto, there's EFTs, there's CFDs. You sit down at a birthday party or an event and somebody starts asking you, you're trading, you took a Win Lifetime, do you know what you're trading? So at least 5 basic things everybody should know, so you don't look like a person who just got scammed, right? We're not here to scam you. I'm just saying that 5 things. So you're doing a day trading. So what is a day? 6 p.m. all the way to 5 p.m. So right now, what time is it? It's 10 a.m. Eastern. Exactly at 5 p.m., this market will pause for 1 hour. So when you consider yourself a day trader, what does that mean? You open a trade, you close the trade within a day. That's it, simple as that. Now you can open a trade for 1 minute or 23 hours. So you pick a trade to go buy or sell something. You can hold that trade for even 1 second is okay. Buy, close, sell, close. So 1 second all the way. So maximum by 5 p.m. you must close all your trades. If you have to do something called a position trading, you need money, a lot more money than day trading. So you have to first define what your roles are. Your role is, I am a day trader. I can open up a computer at 6 p.m., 9 p.m., 8 p.m., 11 a.m. As long as I'm closed by 4:49, you're done. So that's a day trader. What exactly is it that you're trading? So a little bit of a language. You are trading futures. So there are stocks, there are options, like I said, CFDs, EFTs, there's lots. So trading is a very complex thing.
However, at Win Lifetime or super areas, you are focused on trading futures. I'll explain you what futures are, but primarily there's 15 markets we work daily, but you will be doing ES or MES, NQ or MNQ. Maybe as you get experience, you'll go into gold trading or crude oil or natural gas or like Dow Jones, etc. So you're a day trader, you trade futures contracts. Primarily, now ES stands for S&P 500. Of course, NASDAQ is your tech stock, and this is gold. NASDAQ is known as US 100, NASDAQ, Tech 100, S&P 500, ES stands for, there are 500 companies put together in one group or one index or one. So these are both indices. Meaning, what does that mean? You're not trading individual Apple stock. You have money to trade Apple. Okay, good. You have money to trade Amazon. You have money to trade Google. You are not buying individual stocks, individual options, nothing like that. So 500, because why these were created, if you had $100,000, you don't want to go out and buy a single company. You take your money and you spread it across. So they would, even a bank will say, let's put it inside an index. Some in Russell, your insurance funds, your CPP funds. Most of the money gets invested into stock market through an index fund. Now, NASDAQ is important as well. Why? There are 100 companies that are inside NASDAQ. These are the two top global indices. Number one, NASDAQ. Number two, S&P. So S&P has 500 companies. NASDAQ has 75 companies exist on both indices. So if you're looking at, now I will start writing the top 10. So you will know why do we, so number one, your iPhone company, Apple, your Google, Android, which is called Alphabet, your Microsoft, Tesla, NVIDIA, Amazon, Jeff Bezos, keep always forget. There's always Broadcom, AVGO, or sir. SpaceX is now part of this. Okay. Are we close to our pivot? I think pivot trade. आपने ले लिया pivot? अभी pick हुआ है? ठीक है, एक second. मैं भी ready हो जाऊँ. अभी रुक जा भाई. Pivot पे कुछ दे जा. Okay. Hey? Meta, which is your, I think there's a couple more. Why am I writing these companies? These are called, let me see if it gives me any points though, from pivot. Picked up slightly close, but one second, just keeping an eye on this trade. हैं? हाँ रुकना तो चाहिए इसको 10 पॉइंट तो दे दे यहाँ से 56, 58 कमान कहाँ से आ रहे हो 719 से आ रहे हो हाँ 5 पॉइंट तो मिल गए approximately 5 पॉइंट आए हैं अगर 60 let's see, it should bounce back. All right, 10 points are done. If you took 10 points from pivot, so it came to 50. It's okay, let it run. No worries. I think there's one more company that it's trillion.
Google, Microsoft, Meta, Nvidia, Amazon, Broadcom, SpaceX, Meta. There's one, I think, $1 trillion. Why am I writing? These are the top 10, 12 companies that have, you will see the word T beside them. T stands for $1 trillion valuation. Like Microsoft has 4 trillion, 3 trillion. So whenever you have these companies speaking, pay attention. Why the market moves, why things happen, why Tesla, SpaceX, all these companies, they sometime an apple is the value of an apple in terms of a company is bigger than India. This is how crazy things are. So whenever your trade is हो गया जी निकल गया आप निकल गया भाई या कितने लिए 5 पॉइंट ठीक है हो नहीं वो अभी कोई बात नहीं अभी वो ना पिवट को तोड़ने के चक्करों में है तो अभी इसलिए पिवट ट्रेड इज डन सो आई विल रिमूव द पिवट ट्रेड एज अ रेजिस्टेंस नो प्रॉब्लम आ सकता है नीचे थोड़ा सा तो बाउंस कर सकता है इसको आना चाहिए 840 तक approximately at least equal high तक तो है so there are 100 companies in NASDAQ. There are 75 companies that are 75 companies of NASDAQ are part of S&P 500 as well. So whenever you have earnings, so pay attention to earnings. Whenever we talk, okay, today Apple is going to present their earnings. How was their quarter? The price of ES, price of NASDAQ will change because of these 10 companies. So these are the top 10 companies to keep an eye of. So when we say today, NASDAQ is going to have a earning within NVIDIA. So meaning that around 4 o'clock or just don't trade. So most of the time we'll tell you when not to trade. So whenever there's earnings, please don't be trading. So what is the price right now? Let's pick a price, 77.80. Let me put a number here, 77.90. Let me put a number, 29,870. So what exactly you are trading, a futures contract, there's a value or there's a price of an item. So S&P has a price, 77.90. NASDAQ has a price. So go to Costco next time and look for their 1 ounce gold. There's a price to it. Right now it's trading maybe around 4,500 US dollars. Everything in the world has a price. So what you are trading as a day trader, futures contract, ES, this price. So you're like, what is it that I'm buying or what is it that I'm selling? So this is what exactly you're doing. Now the platform to do this in front of you is called NinjaTrader 8. So the software that we have installed for you to trade your futures contract is called NinjaTrader. So if somebody again asks you, all right, I'm day trading, I'm trading futures contract, and I use NinjaTrader. Some people will say I use TradingView, I use MetaTrader, C-Trader. There's lots of platforms. So your platform that you have installed, you've been installed at, is a NinjaTrader 8. Algorithm. What helps you make a decision? Should I be buying something or should I be selling something? So this algorithm or algo is called super areas. It's listed along on your chart. So that's the algorithm. If this is now getting a little bit more tough. And the last thing is they will talk or you can have a conversation about how much money have you invested into this? Okay, you're all here to make money, right? That's why I'm here too. Okay, but how much money there is that you can say, no, I use my own capital. I have $2,000 of my own money into this market. Or you can go something called a funded program. There's 2 ways to trade today in 2026. You can trade somebody else's capital or you can trade your own money.
Both ways are fine. Both are profitable. One requires you to do an assessment first before. So these are the top 5 things everybody should know. I'm a day trader. I trade futures contract, and I use Ninja Trader with Super Areas Algo, and I am using funded program. You can replace that. I'm a position trader. I trade stocks. I use Interactive Broker. I am using my own indicators, and I have $2,000 in Amazon. That's it. So everything just gets changed to whatever. So here at Win Lifetime or at superareas.com, we are focused to make sure we make you a good day trader. We make you profitable by trading futures, platform, Ninja Trader, algorithm, super areas. And now here, anybody has any questions before I go into futures contract? Any question? All is good. Sab make sense kar raha hai? Okay, no problem. No problem. You must wonder, what is my job at trading futures? What is your job? It's very easy. The way future, I won't get into what exactly happens when you trade a future contract, how the derivatives moved and options underlying it. Simple, I'll give you as simple as possible. You're playing or you are trading against time or capital. This is the essence of a futures trade is. You open a trade. So I will pick, how do you make money in trading futures, and how do you lose money in trading futures? Now, let me give you an easy example first, and then today you go to CIBC, BMO, RBC, any bank, and you say, I would like to buy Amazon stock. Okay, very simple. I would like to invest in Amazon or Apple, or doesn't matter. And let's put a $200 USD. Everything is in USD, by the way. Here, everything stands in USD. So you're like, I have $10,000. I would like to buy Apple stock. You will buy it. And how you make money is if they sold it to you for 200, if it goes up, you make money. If it goes down, you lose money. Very simple. Today you invest into something. You bought a car, you bought a phone, you bought gold, you bought a home. Doesn't matter. You buy something. If it goes up in value, you make money. If it goes down in value, you lose money. In futures contract, it's a little bit easier in my opinion. There's a price of S&P 500, let's say trading at 7790. All you have to do is whole day, 23 hours a day, just predict what the direction is. So you can say price should go up. At the same time, a trader sitting beside you can say price has to go down. That's it. You're not buying 500 companies. You're not selling 500 companies. There is a piece of paper. Let's fictitiously pick something. A piece of paper and write a value in. So that's a contract to buy. Now, if you haven't done a real estate deal, let me give you how this works in real estate. You go to downtown, somebody's selling you a condominium, like, apartment building bech raha. How does that deal happen? Just pay attention. How does that deal happen? You go to the builder, they're giving you a proposal that we would like to sell you this apartment in 3 years. It hasn't built yet. It's just a nice fancy office. You walk in and they're like, we have a plan to put 300 units at this location. Would you like to buy it? And you say, sure, I would like to buy it. What's the value of it? $500,000. Current market rate, maybe 400, 300, doesn't matter. There's a value to this. What does the builder say to you? Please give me a check for $50,000. That's your payment plan, or $5,000, doesn't matter. You're only putting it $50,000 today or 1 year, doesn't matter.
But this deal will close in 3 years or 5 years or whatever. So at that time, you have to come up with the rest of the money. They give you a piece of paper and it says it's a contract to buy. You went to the builder's office and you bought an apartment for how much? 500,000. However, you only put down 50,000. So that's a contract to buy. Same thing happens here. The value of the home is 7790. You're not putting up $7,790. You're not. You basically put up a tiny portion, but you make profit with the full amount. So you today, after COVID, everybody was flipping real estate contracts. All they were doing, and we are in a mess because of this nonsense. Because everybody was outbidding everything. You know how people got quick rich? After COVID, in Canadian economy, Canadian people didn't have money to spend. They had money, so they couldn't eat it. Everything went into real estate. No problem. It's okay. However, immigrants came. They looked at, oh my God, I can put a deposit on a home. Don't worry about closing, and hopefully I can resell that contract. So I paid 5,000 sometime 20,000. Instantly, maybe within 6 months, within a year, sometime it was so crazy, within a month, somebody would say, hey, can I give you a little bit more for the contract you're holding? And this was known as flipping your contract, a consignment contract. And you made money over 500, you got paid based on this value, not on your deposit. Same thing here. Your job is to sit there and figure out, should I be buying this contract or should I be selling this contract? That's it. So right now the price is sitting at 77.90 of S&P 500. What is the computer telling us? You should be buying it because everything is green. And if you buy it, and if it moves up $1, it goes to 77.91, you will make $50. Actually, MES will make $5. So if it goes down in value while you bought it, you will lose that money. So either if it goes down by $1, you will make, if it goes to 77.89. So it's a very simple math. You pick something, NASDAQ moves up and down $1, you make or lose $20. ES has different value, NASDAQ has different value, gold has different value. So your job is to make sure what computer is telling you that you would do what computer is saying. What is our algorithm helping you to understand? It does some mathematics and it says today, right now, you should be buying the contract. If it's green, buy. If it's red, sell. However, computer doesn't know what could happen next, right? Maybe a Trump tweet comes or maybe news is coming. So the moment the color changes, you get rid of your contract, meaning that you don't want to hold it. You bought something for 77.90 and you were hoping it's going up 91, 92, 93. All of a sudden it starts to go down 89, 88, 87, 85. You will be losing money. Same thing is true if you are deciding to sell. You sold something or you shorted a contract, and the moment it starts, now you're hoping price cannot go up. So when you're shorting something, you're hoping or you're predicting the price has to continue to drop. So you took something for 77.90, you shorted it, you sold it, you're hoping 89, 88, 87. However, and how do you lose money? If price starts to climb. Now, if it starts to go up, you will lose money. So this is direction independent. You make money going up, you can lose money going up as well. So you just have to make sure you're in the right trend. So I wrote here, in futures contract, either you will run out of money or time. That's how futures contracts work, by the way.
So you have $2,000 in your bank account or your live account or your anyway, and you have $2,000. Let's put it, or you have a funded program for valued at $2,000. You probably paid $60 for it. So you will either run out of time, meaning that you're in a trade, and whether you're profitable or loss, 5 o'clock hits, you got to close your trade. Number two, you were going long, 77.90. Now price is dropping, 89, $50 gone, 88, another 50 gone, another 87, 84. By the time it's at 80, that's $500 gone for you. It's dropping more. So your trade will close automatically based on time or money. So your time runs out or your money runs out. 79 to 80, that's $500. 80 to 70, that's another $500. 70 to 60, that's $1,500. And you, by the time the price hits to 77.50, your $2,000 has vanished into the thin air. Somebody who had predicted it good, they won. So this is the way trading works, by the way, globally. This is a zero-sum business. As traders, I create nothing. You will create nothing. He doesn't create anything. These are the companies who make products. Apple makes phones, Google has search engine, Microsoft has Windows, Tesla makes cars, Nvidia has chips, Amazon has a marketplace, Broadcom, SpaceX. These are the companies who make something. What do? We just trade their stocks. We create nothing. Somebody, so what is zero sum means? Somebody has to lose in order for you to win. Simple. The money just changes pockets every single day. So there's 20 of you sitting right here. Let's assume 9 o'clock you put in $100 here, cash, out of your pocket. So what's the value? $2,000. 20 times 100, 2,000. What will happen at 5 o'clock? Jatin may have that $100 devalued, and his investment went down by $50, so he's picking up only 50. Seema ji is a very good trader, so she managed to grab his $100, $50. So the 2,000 will stay always 2,000. She gets a little bit richer while he loses some money. So all of you are globally trying to overcome other people. So other people will make mistakes and you will be profitable. So what is a mistake here? You entered at 77.90, computer said it's all green, everything looks, and all of a sudden price starts to drop. 77.89, 88. Now you're losing money, live, real, from funded or leader, doesn't matter. How, like, nobody should be losing the full amount. Like, so we always say there's a maximum 5 points. If it goes against you, just close the trade. Don't just sit there indefinitely thinking, oh, it will come back now. Oh, last time I didn't put a stop loss at it. So your psychology, this trading futures requires 4 key things. I've been sitting here. I know people who make sometimes a lot of money and then they give back everything. 4 things you have to overcome. So I will write them down. I'm sure you have done the psychology chapter with Mr. Daniel. It stands for 4 key killers of trading. Number 1 is FOMO, greed, revenge, and the last thing is discipline. Trading has nothing, I swear to God, it has nothing to do with indicators. It has nothing to do with how well you know the software. Yes, it helps. It has everything to do with your human emotion control. Those that win very big, they just, okay, they don't get excited when you make money. They are not feeling depressed if you lose money. So you have to make sure your emotions are
checked. So this stands for fear of missing out. Another day, somebody sent me a nice one, and it says JOMO, joy of missing out, rather than you can have that. Greed is, I've made $100, let's make another $100. And your target was $100, and you just couldn't resist. You're like, this is too easy. Now I will take another trade. So set your targets, how much money you will make, and call it a day. Please aim for $100 to $200 a day. That's your maximum for now for beginners. That's more than enough. If you manage to make $200 from 9 in a 24-hour period, you are exceptionally lucky. Try looking at the value of money. And my closing remarks, I'll quickly give you a lot of people don't understand value of money. What money is, how does it move, where does it come from, how does it affect your life? It may open up new concepts for you. Revenge is this: you lost some money, now you're gonna sit to chase it to recover it. That's going to kill your account. And the last thing is discipline. We wait for a price. Right now, I waited for a price. I said price will come back to me, and then I will enter a trade. So if you master, so I can on a Saturday, we have another office, a little bit bigger place. We hang out there every Saturday. Myself, Jatan, Tulip, we kind of assess the whole week, and this is like a gupshup area for us to just kind of have a board and we talk. So around 3 o'clock, you will see some traders. You're like, my God, this guy makes 10 grand a month. This is how you're gonna react to. So you have questions. My class is always open on a Saturday around 3 p.m. I just do this, I have technical questions I answer globally. So somebody's sitting in Indonesia, in UAE, Manitoba, so you can come in person. It's a Trinity. If you go on superareas.com, at the bottom, there's an address written. Most Saturdays. See how I kind of forgot to give an intro. The way this organization works is, Daniel does his sales marketing, and I do the radio interviews and everything. And then you have the 4 classes that he does. After that, you're handed over to me or Vikram or Jatan or Majid Bhai, and then you start looking at it. But every Saturday, I'm not here. I'm at the other office most Saturdays, and I will chit-chat about the software, some strategies, what is the FIB box. So more technical discussion does happen on a Saturday if you have questions. Right, so most traders that I know, there are 3% were wildly successful. 3% I know. See, okay, I'll give you an example. Sitting right here, Mr. Jatan, he joined us about a year ago now, maybe a year and a half ago. You know what his job is? If you have a lost luggage at Air Canada, somebody has to deliver, okay? Guys like him deliver, right? So that's what Jatan's job, right? And he's like, I know some trading. He comes here, and I'm like, man, this is easier. You don't have to lift your luggage, anything. Just learn to trade, and then we put him on a mat on how much money do you want to make? 5,000 a month, 10,000 a month, 20,000, and now he is at a level of 4,000 to 5,000 US dollar minimum. Per month, minimum. A year and a half, we're not saying this is going to come instantly, but he's stable, right? Some months are 10 grand, some months are 2 grand, but at least at a stable, but he still works at his job. But the idea was there's nobody that we can say, okay, we have real estate, we have truckers, we have like chef, we have restaurant owners. You can start this part-time and make a couple of $100 a day flipping contracts. And then once you figure out the whole system, this is not rocket science. So examples like this, I have guys come from an industry has never done it. Yes. No problem. Absolutely. Sure. We'll discuss the technical right after this. No problem. What the stop losses and everything should be. So if you master these emotional
things. If you're done couple $100 and you're live or funded, call it a day. If you have lost some money today, there are days when the things whatever I tried, it just doesn't go in my favor. I sometimes have a math, it's called 30%. So if I have lost 30% of my capital, that's my max. I am not gonna go and chase. Meaning that if I it's $1,000 account and I've managed to lose $300, that means today it's not working out for me. So you have to always have a math behind it, that how much today you guys are all trading something called a SIM account. It has no value. It's just for numbers, buying and selling. Your focus, please, at the first month shouldn't be how much money I started with, how much I have. Do you know what a buy limit is? Do you know what a sell limit is? Do you know what a stop loss is? Do you know what a TP is? Your focus should be that. Forget about, you can reset your SIM every 14 days, new money will show up. So don't worry about it. I made $50 or I made $100 or I made 5 points. If I ask you, show me, can you do a buy limit right now on a mid-band? You should be able to tell me what a mid-band is, and you should be able to put a stop loss and TP. That's the objective. Objective is not to take 100,000 and turn in 210. So work on your discipline, but these are down the line. So today we'll start at a very, very basic thing. How to buy, how to sell. Now you know some basics. You're a day trader, trading futures contract, buying and selling, etc. And then we'll go in detail. So making one, so there are 97% traders who are losing every day. Why? Because they lack these things. They're not disciplined. They are revenge trading, they're greedy, or they're fear of missing out. So next, if somebody wants, wait for at least 985. ठीक है जी? 985 बनता है? 985. So the number I will write for resistance, 29,980 to 29,000. 970. अच्छा, first attempt. चले मैं 970 कर देता हूँ जी. 970 से 29,000, 30,000. So if the next resistance, if it comes, watch for that number. And did ES come to our number yet? ES gave us some points, I think. ES 90 से गिरी थी ना? 90 से गिर के हो गया. Yes, I didn't pay attention. I think we're, हाँ, लेकिन अभी हम ब्रेक इवन पे ही होंगे अगर उस एरिया में हमने, तो ये वाला रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, अभी पुराना हो गया, मुझे थोड़ा सा दे यार, अभी उसको छोड़ दें, 799 कर लें. ES सेल करना है 70. Hello? Yeah, okay, bye. 77.99 is reasonable because वहाँ पर असल में ना निंजा का पिवट भी पड़ा है, वहाँ R2 खड़ा हुआ है, तो 77.99 पे reasonable. Okay. What did I do? हाँ, सेल लिमिट में अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, ये रेजिस्टेंस का नंबर है, अगेंस्ट द ट्रेंड 99, 77. मैं यार एक तो ये रिफरेंस का दूसरा भी एक था. चल and for you this is first time. For people listening to me online, I've done this hundreds of times and it's not a big deal. I can repeat this. Sorry? कोई बात नहीं, no problem. Basically ये जितना है ये रिकॉर्ड हो गया है, तो आपकी जो आज की लाइव स्ट्रीम होगी ना, उसमें बिगिनर्स आप पढ़ सकते हो, because it was almost an hour था, तो
बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि आप लोग क्या बैठ के कर क्या रहे हो। हो गया एब्सोल्युटली 60 मिनट के ऊपर एक R2 का नंबर लिखा हुआ है। 60 मिनट का चार्ट के ऊपर एक R2 लिखा हुआ है, वहाँ नंबर है 7801 पे। 60 मिनट का ES का चार्ट या MES का, तो वहाँ पर मैं एक टिक नीचे वहाँ से रिस्क लूँगा सेल का, अगर वहाँ प्राइस आ गई तो। देखिए आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप ट्रेंड के साथ जाएं ना, ग्रीन के साथ बाय करती जाएं, या अगर 77.99 आ जाता है तो वहाँ से मैं सेल करूँगा। मैं पर्सनली उस पॉइंट पे जाके सेल करूँगा। हाँ बस अब ये शाम को आए कल आए, ये इसमें हम लोग ना बैठे रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक नंबर अर्लियर नैस्डैक का दिया था कि अराउंड 860 पे आ गया तो वहाँ से मैं सेल करूँगा। अब अगर ES 77.99 पे आ गया तो वहाँ से मैं सेल करूँगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मैं एक्चुअली ये इसी तरफ आ रहा था कि आपके प्राइमरी आपके श्योर सारों को वैसे उर्दू हिंदी पंजाबी आती है, यही जरूरत बोलने की, इंग्लिश वो पहले ही बता देते हैं आप लोग, इतना थकता तो नहीं। ओके दो ये ले लें, ये आपके पास दो मेथड होते हैं ट्रेडिंग के, दो प्राइमरी मेथड होते हैं। एक मेथड को हम वर्ड यूज करते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्प क्या होता है? थोड़ा 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 उतार लें, $20, $10, $15, $40, ये स्कैल्प हो रहा होता है। एक ये भी मेथड है, और एक बड़ा जो मेथड है वो है आप खामोशी पे जाके कुछ ना करें, किसी नंबर्स पे जाके बैठ जाए। ये दुनिया में नोन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होता है, पिवट्स के तौर पे नंबर यूज होता है। ये मीनिंग कि ये मेथड जो है इसको लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, कि स्विंग इधर आएगी। इसको लोग कहते हैं कि ये रिवर्सल है, पुल बैक्स एंड डिफरेंट नाम है, एंड पे यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्कैल्पिंग क्या है? आपने किसी भी वक्त जाके चार्ट को देखा, एंटर किया, $50 ले लिए, 40 ले लिए, तो ये छोटा 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 आपने उठाना होता है। बाय मार्केट का तो आप लोगों के लिए बैन है, मार्केट तो कभी नहीं दबाना, आपको ऑर्डर लगाना है। नहीं नहीं वो भी नहीं, लिमिट ऑर्डर लगाना। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जनरली स्कैल्पिंग के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, ट्रेंड ट्रेड। पहले मैं 12 मेथड लिखता था, फिर अंदर से मुझे कहा भाई आप पहली क्लास में 12 लिख देते हो, तो ये आइंस्टाइन तो है नहीं है क्या, इनको पहले ही PhD करवाना शुरू कर देते हो। तो हम लोग, मैं नीचे आ गया हूँ, मैं बेसिक काम कर रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग में आप क्या करते हो? ट्रेंड ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर एक प्राइस लिख रहा हूँ 77.90, दोबारा लिख देता हूँ, यही चल रही है प्राइस अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 90 के करीब। 77.91, 77.92, 77.89, 77.88। ये $2 का गैप है, ऊपर या नीचे। पहले आपको ये सिखाना है कि हाउ डज S&P, ES और MES मूव। बाय द वे अभी एक और 24 अगस्त को एक और चीज़ आ रही है, पहली दफ़ा नैनो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये जो ES है S&P, फिर MES है, वेरी सून नैनो ES भी हो जाएगा, अभी नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? ES की $1 की मूव
$50 का PNL करती है। PNL स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, या आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। MES का $1 की वैल्यू मूव की $5 कहलाती है। तो MES की एक वैल्यू है, अगर वो मूव अप एंड डाउन होती है तो आपकी करंट प्राइस है 7790, अब उसने जाना है 7791 या 92 तक। कैसे चलती है प्राइस? 0025 507500। $1 में 4 क्वार्टर होते हैं, उनकी एक वैल्यू, हर चीज का बहुत सिंपल मैथ है। अब इसने उतरना भी है ना, तो ऐसे ही उतरना है 75502500। तो जब आपका एक पॉइंट, सो $1 इज कंसिडर्ड 1 पॉइंट। अब एक पॉइंट के अंदर 4 छोटी वैल्यूज, हम उन वैल्यूज को कहते हैं 1 पॉइंट इक्वल्स 4 ticks। अब क्लॉक चल रही है, 60 मिनट का एक आवर है, इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है उन्होंने, मैथ है ना, ताकि हम लोग सारे अंडरस्टैंड कर दें कि हाउ डज दिस वर्क। सो एक पॉइंट 4 टिक्स कहलाता है। ये दो मार्केट्स में, जब ES गोल्ड होगा डिफरेंट है, डाउ, हम मेन दो मार्केट्स करते हैं, तो $1 moves is called 4 ticks. So when it goes from 7790 to 91, it has to go 4 ticks. Same thing, जब आप लेते, और हर एक टिक की फिर वैल्यू आ जाती है। तो अगर ये 50 का पूरा पॉइंट है तो 50 times 4 is 1250। So ES में एक टिक की वैल्यू है $12.50 और MES की एक टिक की वैल्यू है $1.25। सो जब आप एक पॉइंट की बात करते हैं कि मैंने ES में एक पॉइंट लिया या खोया, तो आप बात कर रहे हैं मैंने $50 का प्रॉफिट हुआ या $50 का लॉस हुआ। MES में बात होगी तो आप कहेंगे एक पॉइंट है तो मुझे $5 का प्रॉफिट होता है या $5 का नुकसान होता है। तो आप उसकी ट्रेंड में जाएंगे, उसकी फेवर में। अगर कोई भी प्राइस आपने बाय किया और वो चली गई ऊपर, प्राइस वो आपने खरीदा था 90 का, वो हो गया 92, ये आपको 2 पॉइंट मिले हैं, ये 8 टिक्स मिले हैं और आपको क्या मिला? $100। एग्जैक्टली, 1 पॉइंट इज $1, पर 1 पॉइंट के अंदर 4 टिक्स होते हैं। तो जिस तरह $1 के अंदर क्वार्टर होते हैं। सो just allow me 30 seconds. Where to? This is where to 49. Comfort. Okay. Just doing an Uber for somebody, so thank you जी। पिवट पे घूम रही है अभी, कहीं गई तो नहीं? दोनों पिवट में 77 90 आपके 99 की तरफ आ रही है। तो हाँ, मैं वही देख रहा था, उसने, इसलिए मैंने 96 ज़रा थोड़ा सा जो है ना रोक दिया था, क्योंकि 99 पे पिवट खड़ा है। तो लेट्स सी 99 पे जाती है कि नहीं। तो आपका ऑर्डर वहाँ लगा है, अब आपके अगेंस्ट जाती है। लेट्स सपोज, अभी यहाँ लाइव एग्जांपल देते हैं कि इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट यू तो आपने कितना रुकना है। अगर तो MES है तो आप उसको थोड़ा सा बफर दे सकती हैं, 99 गया, एक थोड़ा 10-12, उसको राइट अवे नुकसान इतना नहीं होता, तो आप उसको ब्रीदिंग रूम दे सकती हैं। लेकिन अगर ES है और 99 से वो 7800 हो गया तो आपका $50 का लॉस होगा।
78 और 1 हो गया, क्योंकि आप अब प्रिडिक्ट कर रही हैं कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए 99 से। सॉरी, नो प्रॉब्लम। देखें, इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि शुरू में हम आपको नंबर दे दिया करेंगे कि नंबर कैसे आते हैं। सो नहीं, एज ऑफ नाउ वो, लेकिन वो जब चढ़ रही थी ना, वो 98 तक गई, हमारे से 4 टिक्स पीछे रह गई और फिर हमारा ऑर्डर पिक नहीं किया। नहीं नहीं, देख लें, लेट्स सी, इट मे गो एंड डू समथिंग कॉल्ड द रीटेस्ट। सो ओके, आपने हमेशा ऑर्डर लगाने हैं लिमिट ऑर्डर्स। So let me now explain you what type of orders there are. There are major 4 types of order, major. लेकिन हमने आपको शुरू करना है टॉप 2, buy limit, sell limit. So what is a buy limit order? प्राइस इस वक्त 92 पे है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 96 पे चल रही है करंट प्राइस। आपने खरीदना है, कंप्यूटर आपको कह रहा है बाय करो, मिड बैंड की एक प्राइस नजर आ रही है। अगर आप सारे 1510 खोलें तो वहां एक मिड ग्रीन लाइन जा रही है, उस ग्रीन लाइन के आगे एक एंड पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर को पढ़ते हैं 95, एक्चुअली 92 चल रहा है। ये देखिए, ये प्राइस है अराउंड देयर। जो मिड बैंड है 1510 का, उसकी प्राइस ये चल रही है 92 अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट है ये जा रही है ना, लिखा हुआ है 779170। अब आपको कंप्यूटर ये कह रहा है कि अगर खरीदना तो इस प्राइस पे खरीदना, उससे पहले ना बाय करना। देखिए, हर 23 आवर्स के अंदर जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे, आपको कंप्यूटर कुछ नंबर बता रहे हैं कि कहाँ से खरीदना चाहिए और कहाँ से बेचना चाहिए। लेकिन यही हमारे सॉफ्टवेयर का मकसद है ना, कि आपको बताया जाए कि अगर कहीं से खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है। आपको एक रियल एस्टेट एजेंट है, घर दिखाने जाता है, आपकी गली के अंदर कुछ सर्वे करता है, इस घर की प्राइस क्या थी, इस घर में वॉकिंग स्कोर क्या है, इस घर में कितने ओनर्स रहे, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, एक प्राइस चल रही है घर की 7796। कंप्यूटर कह रहा है नहीं नहीं, 96 पे नहीं अभी खरीदना, मेरे मुताबिक इसको 92 पे आ लेने दो। तो हम क्या करेंगे, जाके यहां पर एक ऑर्डर लगाएंगे 92 पे। ये मैंने एक बाय लिमिट का ऑर्डर लगाया है, वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, बाय लिमिट। क्या मैंने किया, अगर आप इसको यहां पर देखें, मैं क्या कर रहा हूं, कंप्यूटर कहता है बाय करो, ट्रेंड ग्रीन है, ऊपर जा रही है प्राइस, कहां से बाय करो, हमेशा एक सजेशन देता है। कंप्यूटर बाय हो गया जी, और मेरे कितने पैसे बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 सेंट। थोड़ा सा इसको देखते हैं, मेरे पास अभी तो $0 है, तो अभी उसने 75 सेंट दिखाया था। अब यहां से अगर मेरा कलर यहां चेंज हो जाता है तो मैं जो इस ट्रेड से बाहर आना है, मीनिंग के कंप्यूटर ने एक ऑफर दी, वो ऑफर खराब हो गई। देखिए, कंप्यूटर ने एक कैलकुलेशन की थी, उस कैलकुलेशन में आपका अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है। अभी तक मैं -125 हूँ। एक सेकेंड, इसको भी हम चेंज करते हैं ताकि इसको भी डॉलर वैल्यू दिखे। एक सेकेंड, -$100 डाइवर्जेंस है, ओवर टूल लगी है। इस वक्त मैं -87 पे हूँ, मैंने बाय किया है 92 पे और प्राइस मेरे अगेंस्ट जा रही है 92, 91, 89। अब क्या होगा, यहां पर आपको अपना ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट प्राइस चली गई है, जो कंप्यूटर ने सजेशन दी थी वो नहीं कामयाब हुई। सो
मैक्सिमम इसलिए हम आपसे कहते हैं कि एक मैक्सिमम लॉस रखना है, स्टॉप, इसको वर्ड स्टॉप लॉस होता है, वो 5 से ज़्यादा ना बढ़ाइएगा कि अगर आपके अगेंस्ट $250 ये $25 चली गई है, 5 पॉइंट्स मैक्सिमम फॉर स्टॉप लॉस, नॉट 12 पॉइंट्स, 5 पॉइंट स्टॉप। टीपी रख सकते हैं, टेक प्रॉफिट, कि आपको 3 पॉइंट मिल जाए, 12 टिक्स। No. Maximum. अच्छा, ये भी everybody has their own ways. I say don't go more than 5. अब देखें, वरना आपका वो continuously loss होता है, तो the way either trend changes, अब आपका trend sell की तरफ आ गया, मार्केट में heavy selling हो रही है, वो ऑर्डर खत्म हो गया जी, वो 90 तक नहीं गई नहीं। अगर आप पिवट पे थे तो मैं तो अब निकला हूँ पिवट वाले ट्रेड से, वो 84 तक बैठा, वो जो हमने 860 वाला लिया था, बस आप जरा जल्दी निकल गए, थोड़ा मेरे सामने तो हौसला रखा करो यार, एवरेज भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, 700 से आ रही थी, मुझे पता है कितने देखे गया है वो, $112, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। पिवट वाला ट्रेड अप डन हुआ। अच्छा, हमारे खिलाफ कितनी गई, 860 से 900 तक, 40 पॉइंट ही थी ना, तो आप तो ना घबराओ यार, बाकी तो चलो घबरा ले, लेकिन कोई बात नहीं, साथ बैठे हैं। चले, आप ग्रीन में ही थे, लेकिन पिवट वाला ट्रेड डन हो गया। अब कंप्यूटर क्या कह रहा है, अच्छा जी, ट्रेंड नीचे का हो गया, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, अब सेलिंग में जाना है, तो यहां पर अब आप सेल लिमिट का ऑर्डर लगाएंगे। तो कहां पर सेल लिमिट का ऑर्डर लगता है, वही 7790। तो हमेशा आप लोग ऑर्डर लगाओगे या बाय लिमिट का या सेल लिमिट का, तो आप जाओ इस मिड बैंड के प्राइस के सामने और राइट क्लिक करें और सेल लिमिट लगा दें। Trend trade. And what's the one called we practiced yesterday with the black candle? It was Daniel saying wait for the black candle. So वो black, maybe he explained there's 12 types of trades. So like I will probably not teach that one, but the black candle trade is a little bit complex trade. उसको थोड़ा समझने के लिए ज़रा टाइम लग जाता है। हाँ जी। No, sell limit. No, not even. अब मैं आपको एक बहुत क्रिटिकल चीज बता रहा हूं, ये वाइट लाइन जो है ना, ये आपकी करंट प्राइस है इस वक्त पे। आप अपना माउस ऊपर रखेंगे, मेन्यू बदल जाएगा। देखें, अगर मैं अपनी ये वाइट लाइन है ना, यहां पर राइट क्लिक करता हूं तो प्राइस का मेन्यू बदल जाएगा, मीनिंग के जो मेरे पास आइटम्स हैं, यहां लिखा हुआ है सेल लिमिट। अगर मैं अपना माउस नीचे रखता हूं तो मेरा मेन्यू बदल जाता है। तो हमेशा देखिएगा, आपने व्हाइट लाइन से ऊपर रखना है माउस या नीचे रखना है। So wherever you place your mouse, right click wherever, it will change the menu. So देखें, ये तो आपको डिपेंड करना है, आपने बाय लिमिट लगाना है या सेल लिमिट। सेल लिमिट लगाना है तो माउस के ऊपर होगा, यहाँ पर जाके सेल लिमिट लगेगा। तो आपको वो असल में उनको मेन्यू इसलिए नहीं आ रहा था कि वो सेल लिमिट नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उन्होंने वाइट लाइन से नीचे राइट क्लिक किया। अब आप वाइट लाइन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेल लिमिट नजर आएगा। तो दो तरह के मेन ऑर्डर्स हैं, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। लेकिन वो तो ठीक है, मिड बैंड ही हमेशा आपका एंट्री पॉइंट मिड बैंड है। आपका चार्ट मेजेंटा है, आपका दूसरा चार्ट भी मेजेंटा है, आपको ट्रेंड नीचे का है, तो आपने सेल करना है। मेरा ट्रेंड पीछे ग्रीन था, मैंने बाय किया, वो मेरे अगेंस्ट चली गई, मैंने ट्रेड बंद कर दिया, मैं फिर बैठ जाता हूँ। पिछला जो ट्रेड लॉस में गया है वो ग्रीन था ना, हर कुछ मैंने बाय किया। कंप्यूटर ने कहा था कि 92 से बाय करना, मैंने बाय किया, वो 91 हो गई, वो 89 हो गई, वो 88 हो गई। तो भाई कहीं ना कहीं तो उसको बंद करना है ना, वरना तो वो आते आते मेरा अकाउंट ड्रेन कर लेगी। तो इसीलिए आपको कहा है कि मैक्सिमम होल्ड करना है ना, तो आप मैक्सिमम, डैनियल भाई तो कहते हैं 2 पॉइंट आपके खिलाफ चली गई, बंद कर दो भाई, इट इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, जितना कम से कम स्टॉप लॉस ले लो। लेकिन एक आइडियल मैथ है इसका
कि 5 पॉइंट अगर जाती है तो अगर मैक्सिमम है आपको ट्रेंड ट्रेड के अंदर का स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। यस, दिस नेवर, दिस मैं ये काम करता हूँ सिर्फ नैस्डैक में अगर बिल्कुल ही कुछ मिस हो जाए। बाय मार्केट, अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ होता क्या, मैं उसको बता देता हूँ कि उसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि जब आप कुछ खरीदना चाह रही हैं, आप रियल एस्टेट में है ना, बाय मार्केट का मतलब है जो भी इस वक्त प्राइस हो मुझे दे दो, राइट। अब क्या होता है, आपने क्लिक किया, एक प्राइस चल रही है, आपके क्लिक्स, आपकी ये सारे सर्वर्स हैं शिकागो में पड़े, तो आपके क्लिक से लेकर शिकागो तक 8 कंप्यूटर्स होते हैं। आपने दबाया 90 पे, कई दफ़ा उसने जो भी ताज़ा प्राइस थी ना वो दे दी आपको, और आप ऑलरेडी -$50 से स्टार्ट कर रहे हो। देखिए, आपको एक लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि आप जब तक इस प्राइस पे नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैंने जिस तरह आपसे कहा 7799 पे जाके लगा दें, और अगर वहाँ पर आ गई तो आपका ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट बाय करती हैं तो कई दफ़ा तो सही प्राइस मिलती है, क्योंकि आपको बिल्कुल टॉप की करंट लेवल, तो मार्केट इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ मी। अगर कोई और मेंटर करता है मार्केट, वो कई दफ़ा क्या करते हैं, मार्केट जैसे ही 30-20 मैजेंटा होता है वो मार्केट कर देते हैं, ठीक है, दैट्स वन वे। मैं 15-10 पे ये नहीं काम करता। तो मार्केट का ऑर्डर ये होता है कि जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ मैं घुस जाऊँ करंट प्राइस पे। तो ये हैज इट बीन सक्सेसफुल? ओके, तो आई मीन सब देखें, अगर आप कोई मेथड अप्लाई कर रही हैं और आपके साथ सक्सेसफुल नहीं है तो इट मींस मेथड नहीं सही चल रहा। देखिए, मेरे पास एक मेथड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इस मेथड को मैं 85% विन होता हूँ। नहीं, देखिए, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, जाके सेल लिमिट लगाएं इस वक्त। नहीं, सिर्फ नंबर है, अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हुए। जिस तरह मैं आपको जूम पे, अगर आप जूम का लाइव देखें ना, मैं यहाँ लिख दी कि मेरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है। लेकिन उसमें एक मसला है, आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहेंगे। अब क्या हुआ, आपने 99 पे लगाया था, वो 98 से वापस आ गया, राइट। आपका ट्रेड चला गया। अब आप क्या, आपका अब साइकोलॉजी किकन होती है, लो जी आज तो दिन ज़ाया हो गया, आज तो मेरे कोई पैसे नहीं बने। लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले हैं ना, वो बहुत उनकी नर्व्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। मैं कई दफ़ा पूरे 9 बजे से बैठता हूँ और रात के 9 बजे ट्रेड आता है, बैठा हूँ, इट्स ओके। देखिए, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मैं ग्रो अप हुआ हूँ फार्मिंग एरियाज में बैक होम। मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और दोनों साइड पे देखा है कारोबार करते हुए राइस का और कुकिंग ऑयल का और शुगर का। तो जब आप मार्केट में बैठते हो तो आपको बाय सेल करना एक आ जाता है। अब वो बैठे हुए हैं, हमेशा ये देखा है, वो बैठे हैं, जब तक उनकी पसंद की प्राइस नहीं आती आप बैठे रहो। बल्कि ऐसे रियल एस्टेट एजेंट, आप जितना पेशेंस आप लोगों का है, मेरा ख्याल है हमारा भी नहीं है। आप एक डील पे बैठे हो, जब तक उसने क्लोज नहीं होनी, कमीशन तो 3 माह बाद है, राइट। अब यहाँ क्या होता है, कई दफ़ा आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। इस बिजनेस का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बताता हूँ, वो ये है, आपके रिजल्ट्स इंस्टेंट $100 आ गया, इंस्टेंट $100 चला गया, इंस्टेंट। तो कई दफ़ा आप दुनिया की कहीं पर भी जॉब करें, आपको रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं मिलते। यहाँ है, आपने एक क्लिक किया, वो लो जी $200 बन गए। आपने कहा यार ये तो काम ही बहुत आसान है, मैंने मायर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कुछ 2 बटन दबाए और मैंने पैसे कमा लिए। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले होते हैं, हम लोग 2-2 घंटे टिकटॉक देख रहे होते हैं कि भाई जी जब तक 7, अब एक नंबर आपको लिखा हुआ है कि 30,000 पे ये नैस्डैक चलेगी ना, फिर जाके मैं कुछ सोचूंगा कि आज मैंने कुछ खरीदना है या बेचना। हम बैठे रहते हैं, तो हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब जो स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है
वो ट्रेंड ट्रेड है। अब वो कंप्यूटर आपको कह रहा है रेड कर लो, तो अब आपका रेड आ रहा है ना, ट्रेंड ट्रेड। ये देखें मेरा मिड बैंड ये आ गया, मेरे मिड बैंड पे एंटर हो गई होगी प्राइस, आपको ये मेरा एंटर हो जाता है यहाँ पर, सेल हो गया। ये भी मैजेंटा है, ये भी मैजेंटा है, मेरे 12 बन गए, 37 बन गए, 25 बन गए, $50 यहाँ बन गए। तो कंप्यूटर ने आपको एक ऑफर दी है कि अगर सेल भी करना है तो एक प्राइस में सेल करना है ना, मार्केट में तो नहीं दबाया मैंने। अब इसमें मैं $62 मेरे बन चुके हैं, कहाँ से सेल किया? मिड बैंड से। नहीं, सेल लिमिट किस प्राइस पे लगाया था? 7 आप बहुत ऊपर चलेगी मिड बैंड से। मिड बैंड की प्राइस इस वक्त मैंने इस ट्रेड में से $50 देख लिया था, अभी भी ग्रीन में ही हूँ। नहीं, अभी ये वाला ट्रेड हो चुका है, मिड बैंड वाला ट्रेड हो चुका है। $37। कंप्यूटर 23 आवर्स अ डे आपको बाइंग और सेलिंग की प्राइस बताता रहेगा। जी जी, करेक्ट। देन इट मीन्स दैट एक चार्ट कह रहा है कि मैं ग्रीन हूँ, एक चार्ट कह रहा है मैं रेड हूँ, तो आप दोनों को थोड़ा सा स्टे है। मेरी हाई देखिए ना, मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। $100 बने हुए हैं ना, $112 हो चुकी हैं, या 12, मीनिंग कि अगर 112 नहीं है तो MES में भी करूँ तो फिर भी छोटा ही है। ये नहीं, नो ट्रेंड दोनों का बेरिश है जी, सिर्फ प्राइस की कैंडल ऊपर है, हम ट्रेंड को बैकग्राउंड से जाते हैं। देखिए ये जो स्टेप्स बने हैं ना, इसको हम ये नहीं कह रहे मेरा ट्रेंड ऊपर का चला गया, जब तक मेरा ट्रेंड ग्रीन नहीं होगा मेरा मिड बैंड डजंट मैटर। तो अगर आपका चार्ट बेरिश है सेलिंग में रहे, अगर आपका चार्ट बुलिश है और दोनों बुलिश हैं। अब इस ट्रेड में मैंने पूरे $100 देखा था, मैं नहीं क्लोज किया, इट्स ओके। जी जी बिल्कुल, अगर आपने इसको भी देखना, ये फिर बहुत वेट करना पड़ जाएगा आपका, तो फिर ट्रेड ही में नहीं होगा। अगर ये भी लोअर लो से आ रहा हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए पहले मैंने आपको ये एक चीज और क्लियर कर दूं, आपकी ट्रेड है क्या? ट्रेड स्टार्ट्स इज प्रोबेबिलिटी। मैथ छोटा सा एक 5 मिनट का लेक्चर दे दूं, आपकी हर प्रोबेबिलिटी 50% से शुरू हो रही है। हर ट्रेड आप ब्लाइंड पर्सन भी मुझे ला देना, तो वो अगर क्लिक कर दे तो 50% चांसेस है उसने 50 जाना है। हम अपनी प्रोबेबिलिटी को एक्यूरेट करना चाह रहे हैं कि अगर यार ये भी सही हो, ये भी सही हो। बेसिक ये है कि ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है? आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट यार आपके दोनों चार्ट तो एटलीस्ट एक ट्रेंड में हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आपने थोड़ा एडवांस किया कि ये क्योंकि प्राइस यहां पर वापस उसने ऊपर जाना है, तो मैं इस मिड बैंड को छोड़ सकते हैं, राइट? दैट्स ए प्रोबेबिलिटी। आप कई दफा उस प्रोबेबिलिटी में शायद वो आए ही ना, आपका वो पूरा मिस भी होता जाएगा अपॉर्चुनिटी। आपको डैनियल की क्लास में सिर्फ एक बेसिक चीज सिखाई गई है। आपको पता है कि 4 क्लासेस में उन्होंने इवन 30-20 की बात नहीं की ना। ये तो हम आते हैं एज ए मेंटर कि हम देखते हैं यार हमने इतनी दफा इसको ट्राई किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ये ग्रीन है सेलिंग में रहे, अगर ये मैजेंटा है सेलिंग में रहे, अगर ग्रीन है तो बाइंग में रहे। तो आपकी इस ट्रेड में भी इवन दो देखें ये हायर लो से हायर हाई से आ रहा था, फिर भी मुझे 2 पॉइंट देखे गया है, राइट? तो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए और फिर आपके स्टेटिस्टिक्स निकलेंगे। अच्छा आपने 100 ट्रेड लिया था, इस पोजीशंस को देख के क्या प्रोबेबिलिटी निकली, कितने पास हुए और कितने फेल हुए, तो इसका जर्नल बनता है। फिर आप देखते हैं कि मैंने बस रैंडमली ना एंटर करें, रैंडम मैं मार्केट के बिल्कुल खिलाफ हूं। अब हमारे पास 8 मेंटर्स हैं, अगर उनकी स्ट्रैटेजी चलती है, शायद मेरा डिफरेंट है जी। मैं अब कई लोग बैठे रहते हैं कि इस प्राइस पे आएगी तो बाय करेंगे, इट्स ओके। अभी भी इसका मिनिमम ये है दोनों चार्ट एक ही कलर के हों
तो आपकी सेलिंग है। They're both the same color, but that chart has Yeah. a green and a blue. That's fine. Don't green and blue. This? Yeah. Okay. Yes. Does that Yeah. affect? It's another method of trading. Some people use fib levels. अब जिस तरह मैंने ट्रेंड किया ना, आपको बताया कि मिड बैंड एक टाइप ऑफ ट्रेड है, एक और मेथड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज के दिन सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी वेबसाइट पे 12 मेथड्स लिखे हुए हैं। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करना है, आपने मिड बैंड करना है, आपने फिबोनाची करना है, आपने ब्लैक कैंडल करना है। आपके पास इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ ट्रेड्स हैं, इनडेफिनेट तो कहूँगा 12 से 15 है। आप ये देखो व्हाट वर्क्स फॉर यू, राइट। तो देखें इसमें, इस ट्रेड में भी अभी मैं निकला नहीं हूँ, मुझे सिर्फ होता है, मैं जो भी ट्रेड लगाता हूँ ना लाइफ का, मुझे अपना स्टॉप लॉस पता होता है। मिड बैंड का मेरा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट है, दैट्स इट। अब मैं इसमें 100 बना हुआ है, मैं नीचे गई थी ऊपर प्राइस, फिर नीचे आ रही, सेलिंग करनी है रेड में, बाइंग करनी है ग्रीन, और 5 पॉइंट का लगाएं स्टॉप लॉस, और फिर उसकी रेशियो देखें। जी जी, हाँ जी, दिस इज मिड बैंड एंड सब एनीवेयर। अब मैं आपको फिब का ऑर्डर दिखा देता हूँ। आपके यहाँ बन गए $100, 2 पॉइंट ले लिए, जो भी ले लिया। अब अगला आपने कहा कि यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बनते हैं इसको फिब का बॉक्स कहते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस होते हैं, 4 नंबर हैं, मैथ जरा तेज हो जाएगा, 23, 38, 61, 78। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, एक मेथड है ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि हमने जब ये बनाया था तो कोई एक मेथड से हम नहीं चलते, 12-15 मेथड है। अब एक मेथड ये है कि कुछ लोग इस ग्रीन के बॉटम पे जाके लिमिट ऑर्डर लगा देंगे और अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और टीपी लगा देंगे, राइट, कि अगर जब जब ग्रीन के अंदर आती है तो मुझे 1 पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर्स लगेंगे, हर तरफ लिमिट ऑर्डर लगने। मैं मार्केट ऑर्डर शायद हम लोग उस वक्त करते हैं, बाजी ओ बस ये मिस हो गई, नैस्डैक तो मार्केट दब देगी, मीनिंग के चले नैस्डैक में करता है, क्योंकि ईएस में आप अगर एंटर ही 4 टिक्स बिहाइंड हुई तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हाँ यस, बिल्कुल, एटीएम हर ऑर्डर के साथ लग सकती है, आप मिड बैंड पे लगा दें। अब ये वाला मिड बैंड ट्रेड मुझे 4 पॉइंट देके गया, ये $200 का ट्रेड था। बेसिक रूल है कि रेड है तो सेल करना है, ग्रीन ट्रेंड है तो बाय करना है, और अगर ट्रेंड मेरे अगेंस्ट चला गया है तो मैं ट्रेड से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। नहीं 15-10, अच्छा अब मैं आपको बता दूं 15-10 और 30-20 होता क्या है। 15-10 का मतलब होता है इस कैंडल का साइज 10 टिक्स है। 30-20 का मतलब होता है इस कैंडल का साइज 20 टिक्स। कैंडल का साइज है ना, एक अब देखें यहाँ पर कैंडल ऊपर नीचे हुई, लेकिन यहाँ पर 4 दफा ऊपर नीचे आके भी चली गई है। सो 30-20 का मतलब है 20 टिक्स का कैंडल, और 15-10 का मतलब है इसमें अभी नहीं होगा, इसको करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो वेट करें ना, वेट करें, दोनों कलर को सेम हो लेने दें, ताकि आपका बिगर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि अभी मैं मैजेंटा, ये वाला कह रहा है मैं अभी मैजेंटा हूँ, ये वाले कह रहा है अभी मैं मैजेंटा हूँ, पहले ये ग्रीन होगा और फिर ये ग्रीन होगा जाके। नो प्रॉब्लम, ये लिखा है एटीएम स्ट्रेटजी, ठीक है। इस पे जाएं कस्टम के ऊपर, ये लिखा हुआ है कस्टम। अब वो आपको एक छोटी सी विंडो बता देगा। ओके श्योर, नो प्रॉब्लम। स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक ट्रेड, एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट, मीनिंग कि जब आपका ट्रेड लगे तो किस पॉइंट पे जाके उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए खुद ही, और खुद ही टीपी हिट हो जाए। तो एटीएम स्टैंड्स फॉर, आपको आपका पता होना कि मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
आप 5 का न लो, 3 का लो, लेकिन 5 से आगे ना जाइए। तो वो आपसे दो चीजें पूछ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस आप कितना डिफाइन करना चाहते हो? 5 टाइम्स 4, ये टिक्स लिखा हुआ है, तो 520, स्टॉप लॉस 20। ये मैक्सिमम बात हो रही है, मैक्सिमम, कुछ इसको कम, लेकिन 20 से आगे ना जाइएगा, पीछे 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 का। अगर आप 2 का रखेंगे वो बहुत जल्दी पिक हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट कितना है आप पे डिपेंड करता है। आप इज 5 पॉइंट्स 4 टिक्स, so 20 टिक्स, 20 टिक्स का स्टॉप लॉस है। $1 is 4 ticks, so 5, 1 पॉइंट 4 टिक्स होता है, 5 पॉइंट 20 टिक्स है, तो 5 टाइम्स 4 20 टिक्स। तो अगर आपने, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखें कि मुझे टिक्स में बताया जाए कितने का स्टॉप लॉस। प्रॉफिट भी मेरे ख्याल से 20 लगाएं, 20 तो मिनिमम लगाएं ना। हमें नहीं मालूम कि आउटकम ऑफ द ट्रेड क्या होना है, चलें 20 लगा लेते हैं। अब मैंने क्या यहां पर किया, मैंने एक ट्रेड को डिफाइन कर दिया, सॉरी 20 होना चाहिए, 21 नहीं, कि मेरा स्टॉप लॉस है 20, मेरा टीपी है 20। अब क्या होगा, मैं चले यहां मार्केट दबा के ना आपको सिर्फ बताता हूं कि होता क्या है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दबाया जी, सेल दबाया। ऑटोमेटिकली जब आपका ट्रेड पिक होगा तो वो एक ब्रैकेट खोल देगा, खुद ब खुद वो बता देगा कि इसने यहां से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना और इसने यहां से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं लेना। तो अब आपको, अब हमें नहीं मालूम क्या होना है। एक दफा आपने मिड बैंड पे लगाया, प्राइस पिक हो गई, तो वो बेसिकली 3 चीजें खुद कर रहा है आपके लिए। कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर मैंने एंटर किया 84 से, कि अगर 89 हो गया तो खुद ही बंद होना। तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा स्टॉप लॉस से जाएं, हमेशा। और अगर यहां 79 हो गया तो खुद ही बंद हो जाएगा। उसकी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है कि खुद ट्रेल करता है। हमारे पास सारी वीडियोस बनी हैं, इसके अंदर नहीं लगी, इसके अंदर हमने नहीं लगाई, वो आपकी एक स्पेशल वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा। वो 15 मिनट्स में यू हैव टू कॉन्फ़िगर फ्यू स्टेप्स कि ऑटो ट्रेल होता जाए। सो I'll share. Yeah, of course. मैं कहता हूँ, oh my God, मैंने अपना मूव करना है, you can move this up, you can click it down. Yes. Basically ATM क्या कर रही है, आपके लिए ब्रैकेट खोलती है, टीपी की ब्रैकेट और एसएल की ब्रैकेट। और अब आप चाहें तो उसको नीचे भी ला सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि एटीएम ऑटोमेशन कर रही है आपके लिए थोड़ा सा, कि एक दफा आपका ऑर्डर पिक हो गया तो वो एसएल और टीपी खुद लगा देते हैं। नो ट्रेड राइट नाउ। यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड है, ना बाइंग है ना सेलिंग है, कुछ भी नहीं। दोनों का ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाए, आपको अपने सेटअप का वेट करना है, बिकॉज कैंडल का साइज छोटा है। हाँ एग्जैक्टली, नहीं 15-10, कभी आप कुछ लोगों ने इसको राइट वर्सेस, जो 10 टिक की कैंडल है पहले वो मूव होती है, फिर 20, फिर 40, फिर यस प्रॉफिट नहीं, जीरो तो चलेगा नहीं ना। आपको बस टीपी का मतलब होता है कि वो ब्रैकेट कहाँ खोले, कितने प्रॉफिट के बाद आपने बंद होना है। तो भी नहीं, हमें नहीं मालूम होता कि इस ट्रेड के अंदर क्या आना है। यही तो एक चीज अननोन है ना। आप एंटर होके तो एक हम आइडियल खोल देते हैं 5 पॉइंट, कि जी 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूं मैं और 5 पॉइंट का टेक प्रॉफिट लगा देता हूं। अब उसमें 1 पॉइंट आए, 2 आए, 3 आए, कोई गारंटी नहीं है, कई दफा 5 भी आ जाते हैं, राइट। सो स्टॉप लॉस ठीक है, 20 स्टॉप लॉस 20 से ऊपर ना जाए। हाँ स्टॉप लॉस ठीक है,
प्रॉफिट बेशक 100 का लगा दें, वो तो अगर आपके आइडियल एटलीस्ट 5 पॉइंट तो मिलने चाहिए। नहीं 20 एंड 20 5 पॉइंट बन गए ना, 5 ऊपर और 5 20 का रीजनेबल स्टॉप है। अब इस ट्रेड में मैं यहाँ मार्केट दबाया था ना, सेल में दबाया हूँ। ऑफ कोर्स ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आपने खाली ट्रेंड चेंज पे करना है तो आप उसको स्टॉप लॉस को 3 पे ला सकते हो। 3 का मतलब है कि अगर 12 टिक्स आपके खिलाफ गई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। Yes, 100%. Right now, I am not comfortable on my stop loss. I will close stop loss and TP. Trade चल रहा है, but if I say no, I just want to close this trade, it close. जैसे यहाँ X बन जाता है, मैं अभी करता हूँ। ये देखें, ये मेरी ब्रैकेट खुली। अब मैंने इसको ATM खत्म करनी है। ये X दबाया, आपका स्टॉप लॉस और TP दोनों खत्म हो गए, तो आपका ब्रैकेट खाली हुआ। ट्रेड नहीं बंद हुआ, सिर्फ मेरी ब्रैकेट उतर गई। यस नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं है। फिर मैं बाइंग की तरफ जाऊँ। हाँ, बाय लिमिट मिड बैंड। नहीं, ऑर्डर लगाना है। मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ एक चीज़, सिर्फ प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। आपके पास मिड बैंड हमेशा एक प्राइस मिलेगी, हर वक्त मिड बैंड एक प्राइस दे रहा है। तो इस वक्त अगर प्राइस 7790 है तो आप वहाँ पर बाय लिमिट करेंगी अगर ग्रीन है, और सेल लिमिट करेंगी अगर मजेंटा है। तो दैट्स इट। ट्रेंड है ना, ट्रेंड इस वक्त क्या है, ग्रीन। अगर लेकिन दोनों बड़ा टाइम फ्रेम भी ग्रीन हो तो यस। सो अभी आपने क्या किया, आपने इस के साथ एक ATM लगा दी, ठीक है। ATM कह रही है 20 और 20 विच इज 5 and 5। ये आपने पीछे कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया। अब आप बैठी हैं, ग्रीन था, प्राइस पिक हो गई, आपका लिमिट ऑर्डर पिक हो गया। उसने क्या किया, ग्रीन में 95 पे TP लगा दिया और 85 पे SL लगा। तो आपका बाय लिमिट हुआ, उसने ब्रैकेट खोली 95 की और 85। अब 90 से 91 हो गया, 92, 93, 94, 95, आपको $250 का प्रॉफिट हो गया। 89, 88, 87, 86, 85, आपको $250 का नुकसान हो गया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस फ्यूचर्स की मार्केट को इतनी वॉलेटाइल है, प्लीज ट्रेड में विदाउट स्टॉप लॉस ना जाइएगा। आपने कोई ट्रेड लगाया है, हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगना है, वरना अदरवाइज थिंग्स कुड गो chaotic एंड व्हाट विल हैपन इज आपके पास $2000 थे, वो 90 से मूव हुई एक लॉट में 50 तक, इंस्टेंटली कोई ट्वीट आ गई, कोई अर्निंग आ गई, आपको पता नहीं था। और सेम थिंग आपके फेवर में भी जा सकती है। 50% है ना, अब अच्छी ट्वीट आ गई, ट्रंप ने, आप लॉन्ग थे, ट्रंप ने कोई अच्छी बात कर दी, वो एकदम TP भी हिट हो गया, राइट। तो हाँ जी, 23। यस, देखिए मैं इस मार्केट को 5 साल से कर रहा हूँ। 8 to 11 जो है ना AM, ये बेस्ट वॉल्यूम है। 8 AM टू, ये ईस्टर्न टाइम जोन है, इसके अंदर आपकी कुछ पैसे बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा सेशन आता है तकरीबन 2 PM से 5 PM, इसको हम इवनिंग सेशन कहते हैं, सॉरी आफ्टरनून सेशन कहते हैं। यहाँ पर मार्केट थोड़ी ही तेज होती है प्राइस, और फिर अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठने के शौक हैं तो 3 AM टू 6 AM देखें, इसको हम कहते हैं लंदन सेशन या यूरोपियन सेशन। तो इसके अंदर थोड़ी सी तेज आती है। कुछ लोग नोवा स्कोशिया हैं तो कुछ अल्बर्टा हैं, कुछ UAE हैं, तो ये जब सुबह के 3 बजे होते हैं, नहीं FTX नहीं है, ये है, यही ES मूव हो रही है, लेकिन कोई दुनिया के और लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ES तो ES है,
ESC कर रही है, नैस्डैक कर रही है, गोल्ड कर रहे हैं, लोग दुनिया के ट्रेड कर रहे हैं, वो ज़रा दूसरे जियोग्राफिकली कहीं और बैठे हैं। क्योंकि हम लोग लकी हैं, हम न्यूयॉर्क के साथ चलते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट टाइम हो जाता है ये 8 से 11 का, फिर बेस्ट टाइम हो जाता है 2 से 5 का, फिर बेस्ट टाइम हो जाता है अगर सुबह। तो आप ये 23 घंटे कर सकते हैं। प्रॉब्लम है शाम को 8 बजे लगा दिया, अब जी वो मिड बैंड पे नहीं आ रही प्राइस, बैठे हैं, कोई वॉल्यूम ही नहीं है ना। आपने क्या करना है, वो 1 घंटा गुजर गया, 2, आप फ्रस्ट्रेट होके मार्केट दबा दिया। यार फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी प्लीज इस गेम में, या इस, अगर जितना कूल कंपोज रहेंगे ना उतना प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हर चीज़ हमने 5 सालों में हर चीज़ ट्राई कर ली है। जितना स्लो होंगे ना उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्लो इज द गेम। अब मैं आपको फाइनल आखिरी, शायद आपकी साइकोलॉजी को आसान करने के लिए ना 5 मिनट में वैल्यू ऑफ मनी बता देता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने किसी से सीखा है। मैं हमेशा आगे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारों को पता होना चाहिए। मे बी विल बी हेल्पफुल, मे बी नॉट, बट बेयर विद मी टू एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज शायद इससे आप लोगों में थोड़ी सी ठहराव आ जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी? शायद काफियों को ये भी नहीं पता कि पैसे आते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, इन्वेंट कैसे होते हैं, क्रिएट कैसे होते हैं। नो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी एक डील क्लोज होती है तो आते भी तो है ना, आते हैं। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसे प्यार से, मुझे किसी ने समझाया, वो मेरे भेजे में बैठा हुआ है कि आपका वैल्यू ऑफ मनी। मैं रीजन यहाँ पर 2007 इसलिए लिखा है, माई सन इज 19 years old, यहाँ पर पैदा हुआ था इस साल में। अब मैं उसकी एक, आप उसको आगे पीछे अपने मैथ कर लीजिएगा, 85 है जो एक्सपेक्टेंसी कनाडा की है ना। एक अच्छी सेहत के तौर पे अगर आप रह गए बगैर आपके डैमेज हुए हुए ऑर्गन, तो 85 बड़ी उम्र होती है। मीनिंग जनरली कुछ की 65। मेरा ब्रदर इन लॉ 2 months अगो पास हुए हो गया 52 पे, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। इट्स ओके, नो वरीज। मेरे फादर 82 में गए, मेरे ग्रैंडफादर 98 में गए। तो डिपेंड करता है कि यहाँ मैं सिर्फ, अगेन थोड़ी सी हार्श हो जाएगा, लेकिन सिर्फ लिखने का मकसद है कि आपको वैल्यू ऑफ मनी समझ आ जाए। 18 साल तक आप पढ़ते हो तो कर्व का ग्राफ ऐसा होता है, तो टाइम वर्सेस मनी होता है जनरली। तो ऑफ कोर्स पहले 18 साल तो आप डिपेंडेंट हो, किसी के साथ बैठे हो, सारा है। जैसे जैसे आपकी एज हो जाती है, यहाँ पर आपकी 40 से 60, 50 तक, और फिर 65 आपके कार्डियोलॉजिस्ट होगा, डेंटिस्ट होगा। अगर आप उनको देखेंगे वो बड़ी एज के होते हैं, बड़े उम्र के होते हैं, क्योंकि उनको इतना टाइम लग जाता है ज़िंदगी में मेहनत कर करके वहाँ पहुँचने का। तो अब हम 4 प्रोफेशन ले लेते हैं। तो एंट्री लेवल आपको मिल रहे हैं $20 पर आवर। आपको एक लॉयर है, वो $100 कैसे कमा सकता है? एक साइन करनी है डील तो $100 बन जाएंगे, तो चलो 1 आवर का वर्क है। एक कार्डियोलॉजिस्ट है तो शायद वो 15 मिनट का वर्क है। तो हर इंसान को $100 को अगर आप डिफाइन करो तो उसकी आप वैल्यू निकाल लेते हैं कि मुझे $100 की कैसे बनेंगे मेरे लिए। जो बंदा आज कनाडा आया है, YYZ पे उतरा है, एयरपोर्ट से आया है, उसके पास ना G1 है, G2 है, कुछ नहीं, कहीं लैंडस्केपिंग में लग जाएगा, कोई डॉलर स्टोर पे लग जाएगा, टिम होटन में जॉब शुरू कर देगा PR से, व्हाटएवर इट इज, आपको एटलीस्ट 8 आवर्स चाहिए एक $100 घर को लाने के लिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, मीन स्टूडेंट हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास रिसेप्शनिस्ट है, यहाँ पर भी बैठते हैं, उनको एक जॉब दी हुई है, $20 हमने पे रेट रखा है। वो 9 o'clock स्टार्ट करती हैं और वो 5 PM स्टॉप करती हैं। दरमियान में जो खाने की ब्रेक है हम पे नहीं करते, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है भाई, आपको नहीं मिलेगा पैसे इसके, नो प्रॉब्लम। इस 9 AM की जॉब के लिए आप घर से तकरीबन 7 बजे तैयार होते हो
और घर पहुंचते तक 7 बज जाते हैं। तो ये 8 घंटे का आवर नहीं होता, ये आपको 10 से 12 घंटे में $100 मिलता है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है। क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो अब आपको $100 एक दिन का मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका एजुकेशन बढ़ जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपकी एम्प्लॉयमेंट का रेट पैसे का बढ़ता जाता है। आप एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो, शायद आप $35 ले रहे हो पर आवर की। आप एक डॉक्टर हो, शायद आप 1 आवर में कर रहे हो। $100 को हम डिफाइन कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस भी, आप डिग्री की पढ़े, आप एक डील क्लोज करती हैं सीमा जी, उसके बाद 3 माह लग जाते हैं मिनिमम एवरेज। अगर एक दरमियान में वो बंदा एजेंट ना बदल ले, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। ऐसे फिर आपने पिज़्ज़े उसको खिलाए होते हैं, वो घर किसी और से खरीद लेता जाके। एनीवे ये इस प्रोफेशन के मसले हैं। एनीवे आपको पेमेंट मिलती है शायद 3 मंथ्स के वर्क के बाद, अगर डील क्लोज हो जाए पेंडिंग के 4 बजे मॉर्गेज की चाबी मिल जाए। ये इस प्रोफेशन के मसले हैं। ट्रक ड्राइवर है, वो लोड के बाद पैसे मिलता है। इस लेडी को 2 हफ्ते के बाद पैसे मिलते हैं। सारे प्रोफेशन, एक डॉक्टर भी है 2 हफ्ते बाद पैसे लेगा ना, या यार हफ्ते बाद या महीने बाद लेगा, आपको सैलरी मिलती है। ट्रेडिंग अलग, सारे प्रोफेशन डिफरेंट, ट्रेडिंग डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, तो आपकी साइकोलॉजी मैसअप हो जाती है। साइकोलॉजी किया आपने जी, एक बटन मिड बैंड पे बताया, एकदम $50 यूएस आ गए। माय गॉड, यू ट्रस्ट मी, बड़े से बड़ा बंदा कहता है कि यार ये तो मैंने कभी बिजनेस देखा ही नहीं, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बटन दबाया था, बाय लिमिट सेल लिमिट का, ट्रेंड आपके साथ चला गया, $250 बन गए। क्योंकि आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती इस $50 को लेने के लिए, तो वैल्यू नहीं होती। आप खड़े हों, $100, 7 बजे निकलेंगे, घर वापस 7 बजे पहुंचेंगे, बस चेंज करेंगे, तो ये एक बेसिक जॉब है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायलट बनेंगे, तो शायद आपके $100 आसानी से आ जाएं, लेकिन टाइम लगेगा। इस ट्रेडिंग में आप क्योंकि बहुत पैसे जल्दी कमा रहे हो, तो वैल्यू नहीं लग रही। आप अगर हर ट्रेड में 3 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठ जाएं, और अगर आपको 3 घंटे के बाद $70, $100, $90 मिले हैं ना, तो लाइक गॉड्स ब्लेसिंग है। हाँ जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दूंगा, आई विल टेल यू, कि आपको, ताकि आप उसको पास कर करके सुने। नो प्रॉब्लम, एवरी छोटे छोटे नोट की वीडियो बनी है, नो प्रॉब्लम। Yes, yes. लेकिन उसके लिए पैसे बहुत चाहिए। हाँ, सेम सेम एवरीथिंग। आप गोल्ड करें, क्रूड ऑयल करें, नेचुरल गैस करें, सारों का सेम है। तो सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके एफडेक्स पे ले जाएंगे, यहाँ जाएं, ये लिखा है फ्यूचर्स, ये फ्यूचर्स के, ये लिखा है फ्यूचर्स, फ्यूचर्स पे जाएं, ये एफडेक्स ये लिखा हुआ है, एफडीए, लेकिन चलेगा नहीं, वो नहीं चलेगा, मीनिंग कि वो डेटा ही नहीं है आपके पास एफडेक्स का। जब तक आप ब्रोकर से लाइव अकाउंट नहीं खोलेंगे, उन्हें $25,000 नहीं भेजेंगे, एफडेक्स नहीं चलेगा। नहीं, माइक्रो है, लेकिन $2500 भेजना है ना उसका, तो या 25,000 भेजें या 2500, फिर आप एफडेक्स, इसको कहते हैं माइक्रोस में भी है, लेकिन आपको ब्रोकर से लाइव अकाउंट चाहिए। यस, सो here's this example right now। मैं सेल में था, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, नीचे ट्रेंड जा रहा है, $162 यूएस डॉलर बने हुए। You know how much if you truly understand the value of 175, आप बार बार ट्रेड नहीं डालेंगे। सिर्फ आप लोग ये देखो कि एक बंदे ने 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बाद इतनी मेहनत के बाद $100 बनाया है, और मैं फौरन जी 2 क्लिक किए और 100 बन गया। तो देखें, ये देखें, $150 यूएस डॉलर, चले $15 भी हो, माइक्रो का एक ट्रेड भी हो,
तो मेरा लाइव अकाउंट मैंने आप लोगों के सामने, जो इंटरनेट पे मुझे फॉलो करते हैं, लगाया हुआ है। मैंने अपना लाइव अकाउंट $82,000 से शुरू किया था। थोड़े से इनहेरिटेंस के कहीं से पैसे आए थे, मैंने उसको लाइव मार्केट में डाल दिया। 57 डेज में मेरा अकाउंट $175,000 हो गया। कौन सी जॉब है जो कर सकती है? नहीं कर सकते। मैंने माइक्रो किया, मैं नहीं करता मिनी, क्योंकि मिनी बड़ा है एकदम। मीनिंग यहाँ पर माइक्रो में बना होगा $17, चलो 2 माइक्रो लगा लो $34, 3 माइक्रो लगा लो $60 है। एक माइक्रो से तो वैसे कुछ नहीं बनता, वो तो खुद की वैल्यू बहुत छोटी है। मीनिंग कि आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लगा लिए MES के, 3 लगा लिए। कहने का सिर्फ ये मकसद है, ये जो है ना $170, आप लोग $100 की वैल्यू समझें। It adds up. It's और जिस दिन आप लोग $100 माइक्रो से बना गए ना, pat yourself on the back के एक माइक्रो से नहीं बनेंगे। मैं अभी ऑनेस्टली बताऊं, 3 से 4 से 5 माइक्रो में आपके $100 बन जाते हैं। इट्स नॉट ए ह्यूज डील, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 बनाना, 200 बने हुए हैं, 11 बजे हुए हैं। अब मैं आपको आखिरी फाइनल बता देता हूं कि जब आप $100 बनाने के काबिल हो गए, 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, ओवर ट्रेड किए बगैर वेट कर, फिर आपको हम लोग डालेंगे फंडेड प्रोग्राम। फंडेड का मतलब ये होता है, आप लोगों ने अपने पैसे प्लीज नहीं डालने। आपको होगा ये कि आपने एकदम गलत नुकसान हो गया ना, तो हमेशा मैं कहता हूँ 4 गालियां पड़ती हैं या देते हैं कोई। एक मुझे मरेगी, एक डैनियल को, एक सॉफ्टवेयर को, इंडस्ट्री को, यार तबाह करो, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग ही ठीक नहीं। अपने आप को कोई नहीं देगा, मैंने ओवर ट्रेड कर लिया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। लेकिन आइडिया इज ये $21 बने हुए हैं एक माइक्रो से। फिर आप लोगों का, जब आप लोग सिमुलेशन से निकल जाओगे तो आप लोग फंडेड प्रोग्राम्स में आ जाओगे। आपको कैपिटल दिया जाएगा थर्ड पार्टी से, कितने का? I wish I can show my screen. I will, no problem. कैपिटल की एक कॉस्ट है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप अपने पैसे लगा लें, जिस तरह मैंने 5 चीजें लिखी थी ना, पैसों पे बात आ गई। आपने ट्रेडिंग सीख ली, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ATM कैसे लगाना है, TP कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे करना है। फिर आपकी अगला चीज आ जाएगी कि अब मैंने पैसे, जिस तरह इन्होंने बात की, मैंने FDAX करना है। FDAX की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, गोल्ड की डिफरेंट है, S&P की डिफरेंट है, ES की डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम। अब आपने जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट है $60 से लेकर $250 तक का कैपिटल की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ बारोइंग नहीं है, याद रखिएगा। बारोइंग का मतलब होता है मैं आपको उधार दे रहा हूं, आपने मुझे पैसे वापस करने। आपका नुकसान हो गया, मुझे नहीं परवाह, ये कॉस्ट ऑफ बारोइंग होती है। आप क्रेडिट कार्ड से पैसे उठाते हो, लाइन ऑफ क्रेडिट से उठाते हो, H लॉक से कराते हो, होम लाइन, डजंट मैटर। हम लोग क्रेडिट पे काम नहीं करते। बाहर ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ऑफर करती हैं कैपिटल, लेकिन उसकी कुछ रूल्स होते हैं। तो तकरीबन इस वक्त आपको कैपिटल कितना मिल जाता है? कम से कम $1000 का और ज़्यादा से ज़्यादा 4500 का। आप दिस इज लेट्स से 250, आई विल पुट इन लेट्स से $70। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? $70, $80, $90। और आपको कैपिटल कितने का मिल जाता है? $1000 से लेके $4500 का। ये थर्ड पार्टीज हैं जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करती हैं। 2023 में, 22 में जब हम लोगों ने हमारा बैच, या वो मेरी सीट होती थी, मैं वहाँ बैठ के हर पैसा खुद लगाना पड़ता था। शायद आप तो थोड़ा अर्ली ज्वाइन, 1 रुपया जिस तरह से समझिए आपने पैसे वायर किए ना, हमें यही करना था। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था। आप सिम में थे और फिर आप लाइव में गए, कोई ये दरमियान में टेस्टिंग वाली नहीं थी। अब ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो आपको एक दफ़ा ट्रेडिंग आ जाए तो कैपिटल वो प्रोवाइड कर देती हैं, और अगर नुकसान हो जाएगा तो उनका है, और अगर फ़ायदा हो जाएगा तो वो आपका है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इवेंचुअली जब आप फाइनली रेडी हो जाओ कि आई नो हाउ टू बाय, I know how to sell, I know what a TP is, I know what a sell। मैं जिस दिन आपसे पूछ लूँ ना कि मुझे 15-10 की डाइवर्जन्स आपको पता लग गई है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है मेरे टेस्ट का,
कि आपको जज करने के लिए कि मैं आपके सामने एक चार्ट रखूं और मैं आपसे पूछूं यार मुझे डाइवर्जन की लाइन बता दोगे? सिर्फ लाइनें पढ़ना सीखना है आपने, राइट, और कुछ नहीं सीखना। सॉफ्टवेयर सारा काम कर रहा है। जिस तरह मैंने कहा, भाई ने कहा यार कि आपने कहाँ से पढ़ा, मैंने कहा यार मैं 77-99 पे R2 का नंबर था, 60 मिनट के चार्ट से पढ़ा। इवेंचुअली आप लोग सीख जाओगे, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो हाँ, तो डोंट वरी। तो अब जिस तरह इन्होंने कंसल्टेशन कर ली कि यार मैं जाने लगा हूँ 980 से, वो कहते हैं यार 970 से ही पकड़ लो या कुछ होता है, इट्स ओके। हम लोगों ने पिवट किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जब लोग आप रेडी हो जाओगे कि मैं आप कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ ट्रेडिंग की दुनिया में, अब मैं आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा अगला स्टेप्स क्या है। लेकिन जब तक आपको 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ अपने पैसे ना इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपको पता नहीं था FOMC आना है, CPI आना है, PPI आना है, इंटरेस्ट रेट है या कोई अर्निंग्स आ गई, एंड यू प्रेस इन बाय और आपका स्टॉप लॉस नहीं था, तो आप लोग जो है ना, फिर मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिसअपॉइंट हो इस इंडस्ट्री से। इधर ये फ़ायदा है, कोई गलती हो भी जाए ना तो आपका मैक्सिमम कैपिटल $70 है, $60 है, $50 है। आप जिस मर्जी स्पीड से आके अपना अकाउंट क्रैश करो ना, मैक्सिमम $50 का नुकसान। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ इट कि आपको कोई अपने पैसों का ये रिस्क नहीं होता। अब कोई क्वेश्चन हो? नाउ आई एम फ्री। हाँ, किस चीज़ का? ओके, चलें जी। अब नहीं, ट्रेलिंग वाली नहीं। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करते हैं। मैं ज़रा बोर्ड साफ कर लूँ फिर एनी क्वेश्चन। देखें, मेरी आई गेट पेड, हाउ डू आई मेक मनी, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ ना, तब बता सकता हूँ कि अगर आप 5 साल में यहाँ पर पहुँच जाओ ना, हम लोग आपको रिदम देते हैं, विद इन 4 मंथ्स एटलीस्ट $100 तो बनाना आ जाए यार। इतना बुरा हाल तो नहीं है कि 100 नहीं बनेगा। विद इन 4 to 5 मंथ्स एक आपका इस्टेब्लिश होगा, फिर आपको फंडेड प्रोग्राम में जाना है। 1 साल बाद, लेट्स से 2027 समवेयर सितंबर अक्टूबर, अगर आप इसको मेहनत से डिलीजेंटली विदाउट एक्यूमुलेटिंग टू मेनी लॉसेस कर रहे हो, तो 1 साल में तकरीबन आप $1000 पर डे पे आ जाते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी। और विद इन 5 years आप 10,000 अ मंथ से लेकर, नहीं देखिए, मैं देखिए, आफ्टर ऑल मैं ह्यूमन हूँ, ग्रीड का इवेंट आ जाता है, हो जाता है, एग्जैक्टली एक रिवेंज आ जाता है। कई दफ़ा हमने बैठे हैं, मैंने कहा 82 से 175 यहाँ पहुँच के मैंने कहा 2 लाख करूँ, ज़रा तेज़ करूँ, मैंने लॉट बढ़ाने शुरू कर दिए, 10-10 मिनी के साथ जाना शुरू हुआ। आपके लॉसेस के भी पैसे ही आते हैं, मीनिंग कि जिस दिन आपने अपना कूल छोड़ दिया ना कि अब मुझे पता लग गया है, उसी दिन दैट वुड बी योर लास्ट डे, राइट? सो you make money, but if you don't control yourself, you will end up paying the price. That's okay. लेकिन हमारा ये एक ओपन चैलेंज है, इस बिजनेस से फास्टेस्ट कोई बिजनेस नहीं। मैं 30 साल से डिफरेंट सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ। एक किसी ने पाकिस्तान से कहा यार राइस इंपोर्ट करते हैं, फैमिली मेंबर ने, एक राइस इंपोर्ट करना पड़े ना तो आपको $1.5 लाख चाहिए। एक कंटेनर रास्ते में होता है, उसके अपने लॉजिस्टिक्स हैं। एक रेस्टोरेंट खोलना चले जाओ $2.5 लाख लग जाएगा। एक आप ऊबर ड्राइवर भी जाओ तो एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए होगी। रियल एस्टेट का प्रोफेशन मिनिमम $10,000 मांगता है आपको एक एजेंट बनने के लिए, ठीक है? हर आपने पढ़ना लिखना है तो आपको उससे आप लोगे 5 साल की। इससे फास्टेस्ट प्रोफेशन मैंने नहीं देखा। आपको ये करना आ जाए, आपको कल की फिक्र नहीं होगी कि मेरे पास पैसे कैसे आएंगे। आपने देखी मार्केट, आपने एनालाइज किया, सॉफ्टवेयर देखा, यहाँ से बाई कर लिया। एक आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, -50 हो +50 हो, घर से निकलना नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम की है, आपके पैसों की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। टुडे ये सारा काम $60-70 में हो रहा है जी, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस चाहिए? पेशेंस चाहिए। मैंने देखे, नॉलेज भी आ जाएगा, टाइम भी बंदे के, जो पेशेंस है ना वो अब कई दफ़ा नहीं आता। So,
लेट्स टेक ए लुक एट, चलें ये एक ऑर्डर लगाते हैं, मैं क्लोज करता हूं, मैं जूम इन करता हूं, मैं चलें सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ बाय और सेल करना। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मिड बैंड पे सेल का ऑर्डर लगाएं। अभी हम एटीएम में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चार्ट आपने खोला, वाइट लाइन आपको दिख रही है, ये देखें, तो वाइट लाइन से ऊपर जाके सेल का ऑर्डर लगाएं, यहां पर मिड लाइन पे राइट क्लिक करें। चले इवन मिड बैंड पे छोड़े, मैं आपको आसान करता हूं, मैं आप लोगों से कहता हूं 7792 पे जाके सेल का ऑर्डर लगाएं, 7792 पर जाके सेल लिमिट लगाएं। कर्सर देखिए, पहले तो आपने देखना, आपने कर्सर का इस ग्रे एरिया में रखेंगे, यहाँ पर देखें ना, माउस का है मेरा, इस ग्रे एरिया में रखे ना, जहाँ बेरिश लिखा है, ये ग्रे एरिया, आपका कर्सर कहाँ है? अब ये कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, ये मेन्यू आ रहा है ना। अब पहले ये बताएं, ये आपका चार्ट ट्रेडर खुला हुआ है? ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है सिम नहीं, चार्ट ट्रेडर के यहाँ लिखा हुआ है क्यों है जी? है नहीं, कोई न्यूज़ तो नहीं है, एकदम क्यों चढ़ी है ये मार्केट? इस ग्रे एरिया में क्या करें, अपने ऑर्डर्स, अपने मीनिंग के राइट क्लिक्स लेफ्ट क्लिक्स इस ग्रे एरिया में कर लें, तो आपको इस तरह का मेन्यू आएगा। नहीं, मैंने रैंडम नंबर दिया है सिर्फ दिखाने के लिए कि ऑर्डर कैसे लगता है। नहीं, अभी ये नहीं लगाया, अभी ना, वो वापस 99 पे है। ओके, वो कोई बात नहीं, अभी 1 लाट हो 4 हो, वो मुझे परवाह नहीं है, वो $1 मिलेगा तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कमीशन भी, लॉसेस भी, प्रॉफिट भी, हर चीज़ 4 से मल्टीप्लाई। हाँ, ग्रे कलर में मैं आप लोगों को एक टेस्ट का ऑर्डर दे रहा हूँ कि 7792 पे जाके ऑर्डर लगाएं, तो आपका ऐसे ऑर्डर लगेगा। पहले मैं प्राइस के सामने चला गया, राइट क्लिक किया और यहाँ लिखा हुआ है सेल लिमिट 17792। नो, मैं अब रैंडम बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ दिखाने के लिए। अब आपको मैं, आपका ऑर्डर लग गया? हाँ जी, मैंने बस एक, आई जस्ट थ्रू ए नंबर, जो नहीं, जो एग्जैक्ट मैं नंबर पे कह रहा हूँ ना, बस लगा दें सेल लिमिट, करेक्ट। ये अब आपका एक ऑर्डर लग गया है 7792। अब आप क्या, इस ऑर्डर का मकसद क्या है कि जब करंट प्राइस क्या है 7783, जब प्राइस 7792 पे जाएगी तो वहां से आप ग्रैब, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और वहां से सेल होगा। जब सेल होगा तो क्या मकसद है कि आप चाह रहे हो कि प्राइस अब नीचे वापस जाए, आपको प्रॉफिट कहाँ होगा, लॉस कहाँ होगा? अगर वो 92 से 93, 94, 95, 96 हो गए तो लॉस होगा, अगर वो 91, 90, 89 तो आपके फेवर में आते हैं तो आपको फायदा होगा। So that's how primarily this thing works. लगाएं, हर ट्रेड के साथ एटीएम स्ट्रेटजी के साथ आपने ट्रेड। अब मैं आपको कह रहा हूं टेस्ट के तौर पे सारे लोग कैंसिल कर दें 7792, ठीक है? इसको यहां से एक्स का ये बटन दबाएंगे तो आपको 7792 कैंसिल हो जाएगा आपका ट्रेड। ये जो ये एक्स बना हुआ है ये सामने, इसको एक्स, ये है 7792 पे एक्स का बटन, ठीक है? अब ये हो गया ऑर्डर कैंसिल। अब मैं आप लोगों से कहता हूं प्लीज ऑर्डर लगाएं 7774 पे बाय लिमिट का ऑर्डर, 7774 पे बाय लिमिट का ऑर्डर लगाएं। तो आपका माउस जाना चाहिए वाइट लाइन से नीचे 7774 पे, राइट क्लिक और ये लिखा है बाय लिमिट 1। अब आप लोगों ने एटीएम के साथ लगाया है,
मैं अब आपको एक एरर दिखाता हूं। आपका एक ऑर्डर लगा हुआ है, एटीएम एंगेज है, ये आपको बता दूं, इसको कहते हैं ऑफर टू बाय। आपने एक ऑफर डाली है, रियल स्टेट में आपने ऑफर डाली है, करंट प्राइस चल रही है 83। आपने, आपका क्लाइंट कहता है यार अभी नहीं खरीदते, हम ना इनको ऑफर डालते हैं 74 की। सिंपल सी आपने ऑफर डाली है। अब ऑफर जब एक्सेप्ट होगी तो दो चीजें होंगी, या अगर 75 हो गया, 76 हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर कंटिन्यू टू डिक्लाइन हो गई तो आपको लॉस होगा। अब आप लोग अब आपको एक चीज एरर दिखाता हूं। सेम टाइम पे आपका ऑर्डर लगाए, जाके एक ऑर्डर लगाएं वापस सेल लिमिट का 7792 पे जाके एक ऑर्डर लगाएं। आपने एक ऑफर डाली हुई है, नीचे एक ऑफर और डालते हैं और ऊपर जाके आप सारों को एक एरर आएगा। वो कह रहा है, इस एरर को पढ़ें, वो ये कह रहा है आपने अपनी एटीएम को एंगेज किया हुआ है बाय ऑफर के साथ, प्लीज आपको मैं ऑर्डर नहीं लगाने दे रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक एटीएम को एंगेज किया हुआ है। आपने एक एटीएम को एंगेज किया हुआ है। एटीएम क्या होती है? आपकी ब्रैकेट कि टीपी क्या लगना है, एसएल क्या करना है। तो आपको अगर मल्टीपल कभी ऑर्डर्स लगाने पड़े तो एक डिफरेंट एटीएम के साथ लगाने पड़ेंगे, पहले को कैंसिल करेंगे फिर आगे जाएं। यस, एग्जैक्टली। तो ये बहुत सिंपल सा आज डे 1 का आप लोगों की यही सेटिंग है। हर वेंसडे को, आज क्या जी, मंडे है, 6 PM माई सेल्फ या मिस ट्यूलिप आपके साथ ऑनलाइन जूम पे बैठते हैं। 6 PM to 8 PM मैं अपनी जूम की स्क्रीन शेयर करके आपको बाय सेल करवाता हूँ हर वेंसडे, मोस्ट वेंसडे, हर को नहीं कहना चाहिए, 8 PM, 8 to 10 या इधर 8, do we do 8 PM? 8 PM, यस यस। वेंसडे, इस वेंसडे को मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन आपको जूम का कहाँ से आपने ज्वाइन करना है, सुपर एरियाज पे लॉग इन करें, वहाँ लिखा है राफे जूम, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ साथ आपको ऑडियो वीडियो आपके घर पहुंच जाएगी लाइव। तो मैं अब कहाँ से टीचिंग करता हूँ? मंडे टू फ्राइडे तो इधर बैठा हूँ ना, तो क्लास के अंदर जिस तरह आपके क्वेश्चन है मैं साथ साथ 11 के बाद 10 के बाद बता रहा हूँ। जो डेडिकेटेड सेशंस होते हैं वो 8 PM होते हैं वेंसडेज को। उसके बाद सैटरडेज को आप आ जाओ, सैटरडे को 3 PM आ जाओ। हाँ, एनी टाइम, नो बड़ी। सैटरडे 1575 ट्रिनिटी ड्राइव, वहाँ पर हमारी क्लासरूम बड़ी है, वहाँ पर, क्योंकि मिस्सा के ये वहाँ से 5 मिनट दूर है, 5 मिनट। यस, तो यूनिट 1 है, वहाँ पार्किंग करें, आपको चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, जस्ट फॉर ए, आपका कई लोग सिर्फ सुनने ही आ जाते हैं कि भाई जी। Why? अभी नहीं, इसमें आपने घबरा, थोड़ा देखें, ऑर्डर लगाना सीखें। मार्केट का ऑर्डर उसका बड़ा स्पेसिफिक होता है। डैनियल भाई ने अभी कभी मार्केट का नाम ही नहीं लिया होगा आपके साथ। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखें, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, तो मैं आपको यूट्यूब की वीडियो ट्रेलिंग के बताऊंगा। ये मैंने लिखा हुआ है 6472। तो ये नंबर 4 बंदे पढ़ते हैं, मैं नहीं अकेला पढ़ता, इस पे कॉल नहीं होती। आप व्हाट्सएप करेंगे तो इसमें आप सिर्फ अपना क्वेश्चन लिख दें कि आई नीड ए ट्रेलिंग वीडियो, आई नीड। अब इस ऑफिस में भी 3 मेंटर बैठे हैं, उनका स्टाइल डिफरेंट है सिखाने का, राइट? सो इट्स स्लाइटली, हमारे पास 6 मेंटर हैं, 6 वैरायटीज हैं। हाँ जी, हाँ जी, पहली क्लास आपके साथ
तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। डिफरेंट इंस्ट्रक्टर वो क्लासेस देते हैं तो वी लर्न डिफरेंट स्टाइल, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का वही स्टाइल होता है, वही बता रहा है। I take it as an owner operator because मैं ओनर भी हूँ ना कंपनी का, तो मेरी थोड़ी सी वो जो आपके साथ पेन होती है ना क्लाइंट की, वो डिफरेंट है। जो बिल्कुल ही हायर्ड मेंटर होता है वो अपनी जॉब करते हैं, चले जाते हैं। नहीं, इट्स ओके। देखिए, कुछ लोगों को मेरा स्टाइल नहीं पसंद, कुछ को पसंद है। मैं तो जी एवरी डे होता है जी। मैं हाँ नहीं हुआ, देखिए होता ये है कि मुझे भी तो सीईओ अंदर से शफल कर देते हैं ना। मैं एक ग्रुप को संभालता हूँ तो वो रोने लग जाता है। अभी जिनको घर से स्ट्रीम कर रहा था वो रो रहे हैं कि भाई, क्योंकि मेरा एनालिसिस वो होता है, तो मैंने वो हर जगह देखना होता है ना कि हू टू हैंडल मोस्ट। नो प्रॉब्लम, टुमारो कम हियर, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर एवरी डे नाउ। मैं एवरी डे दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन, देयर इज नो नो वरीज। तो वेंसडेज है, सैटरडेज है, मंडे टू फ्राइडे है। अब समर में मैं 5 बजे तक बैठा होता हूँ। आई विल बी हियर टू, आपने मुझे एक ही क्वेश्चन 1000 दफ़ा भी पूछना है ना तो पूछ लें। फिर देखिए क्या होगा, मैं तो थकने वाला हो नहीं हूँ। आपने पैसे दिए, आपके बनने चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो मुझे तो आप पूछ ले ना, 1000 दफ़ा पूछे, नो प्रॉब्लम। नहीं, आई नो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको हेजिटेट ना हो, मुझे पकड़ लें कि भाई मुझे बोर्ड पे लिखवा करके कराओ कि ऑर्डर कैसे लगाना है, मैं बताता जाऊंगा, नो वरीज नो वरीज। अब मैं कई दफ़ा होता है कि मुझे अगेन ना न्यू बर्थ वार्ड में भेज दिया जाता है। आप लोग न्यू बेबीज हो, बोर्न हो इसमें, राइट? तो मैं ग्रेड 10 को भी पढ़ा रहा हूँ और ग्रेड 1 को भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो इट्स अ लेयर बिट, क्योंकि वो जो ग्रेड 10 वाले हैं वो कहते हैं यार आप अभी भी ES पे लगे हुए हो, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने सिर्फ ये बात करनी है कि आज 240 और मंथली के अंदर डाइवर्जन लगी हुई है, हमने ये प्लान लेना है, राइट? ये आप सारों के ऊपर से गुजर गया। लेकिन 2, 3, 4, 5 माह के बाद तो फिर मुझे एक फ़ोन आता है, भाई मेन पे आ जाओ, मेन पे आ जाओ। मैं कहा ठीक है, आ जाते हैं, इट्स ओके। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। मैं ठीक है, नाउ दिस टाइम अराउंड आई थिंक आई एम हियर फॉर गुड, होपफुली वंस अगेन। Sorry? I'm scheduled here for at least, last time I was told 6 years, and I no, not vacation सर। देखिए मेरी स्ट्रीम में सुबह 9 बजे स्टार्ट हो, मेरी वेकेशन साल में होती है एक, दिसंबर 17 से लेकर जनवरी 2 तक। उसके बाद आप मुझे हमेशा ट्रेडिंग ही करते पाओगे, कोई ऐसा वेकेशन पे मैं नहीं था, मैं अवेलेबल था, कहीं और बैठा था। अच्छा, मेरे लिए हमेशा आना आसान होगा, आप अपने, मैं उठ के आऊँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई विल मेक श्योर दैट Wednesday 8 PM to 10 PM Zoom ईस्टर्न टाइम पे मैं करता हूँ ये काम। आपकी क्लासेस हों, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ट्रेडिंग देखिए, ट्रेडिंग भी होगी, ट्रेनिंग भी होगी, इसी तरह जूम चल रहा होगा। मैं आपको ऑर्डर लगाता जाऊंगा, मैं कहूँगा चले जी मिड बैंड पे ऑर्डर लगाते हैं बाय लिमिट का, ये मिड बैंड पे ऑर्डर लग गया, इतनी सी बात है। अब प्राइस यहाँ पर आएगी, मुझे पिक करेगी, 2 चीज़ें होंगी, या मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या TP हिट हो जाएगा, देयर इज नथिंग थर्ड। एज लॉन्ग एज बोथ चार्ट्स आर ग्रीन, प्राइस इज कमिंग फ्रॉम हायर हाई। इसको ये ले लें, ये देखें, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये मेरा फर्स्ट पुल बैक बन रहा है, बिलीव, यस। तो दैट्स इट। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैक्सिमम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आ गई तो गुड है, नहीं आई तो देख लेंगे। हाँ, I know, देखिए वो no, I'm not saying more thing. At that time we did see up to $200. अच्छा, उसके बाद तो नहीं हुआ जी। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो जब स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप उस ट्रेड को बंद करके अब अगले ट्रेड में बैठ जाएंगे। अब मैं ग्रीन में बैठा हूँ ना, दोनों ग्रीन है, दोनों ग्रीन है, दोनों बुलिश कह रहे हैं, तो मैं बाइंग करूंगा ना यहाँ से। अब अगर यहाँ पर आके प्राइस मेरा, एक्चुअली आई रियली डोंट यूज दिस, आई जस्ट ओनली यूज दिस, ये मेरा ऑर्डर लग गया है मिड बैंड पे 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से।
अब प्राइस आएगी, दो चीज़ें होंगी, या तो मेरी फेवर में चलती गई, कहाँ पर मैंने ऑर्डर लगाया 85 पे, 86, 87, 89 मैं प्रॉफिट में हूँ, या अगर मैक्सिमम 80 तक वेट करूँगा कि यार अब ये 80 से नहीं वापस आ रही, आई एम आउट, राइट। सो अगर माइक्रो जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस $25 है, मिनी जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस $250 है। 5 मीनिंग के आपने $25 का मतलब है टाइम्स 10 250। जी आपका क्वेश्चन क्या था? ठीक है, दोबारा लगाएं, लगाते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे आपको ऑर्डर लगाएं 77 85 पे इस ग्रे एरिया में जाके, ये जो ग्रे एरिया है ना, यहाँ पर अपना कर्सर रखें और पहले तो प्राइस के सामने देखिए व्हाइट लाइन कहाँ पर है, ये मेरी व्हाइट लाइन है, ठीक है। मैं व्हाइट लाइन से नीचे करूँगा ना ऑर्डर, इसको कैंसिल करता हूँ, तो राइट क्लिक करके कैंसिल हो गया। तो कभी ये बाय द वे ये एरो आ जाए ना, ये वाला एरो, इसका मतलब आप पीछे चल रहे हो, आप बिहाइंड हो, तो हमेशा इस एरो को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लाइव आ जाओ। अब आप ऑर्डर लगाएं यहाँ पर 7785 पे ऑर्डर लगाएं तो आपको ये मेन्यू दिखना चाहिए। अच्छा एक दफा और इस ग्रे, नहीं इस ग्रे एरिया में जाएं, मैं चाहता हूं इस ग्रे एरिया में अपने क्लिक करना, कहीं और नहीं क्लिक करना, ग्रे एरिया में, ओके राइट क्लिक, ठीक है। एक नो नो आई बीन थ्रू अ लॉट, नो प्रॉब्लम, एक सेकंड, नो वरीज बॉस, नो वरीज, थोड़ा सा मैं ऐसे करूंगा, इसको बढ़ा दें, ये रहा राइट क्लिक, ओके अगर ऐसे हो जाए ना, पहले इस जगह लेफ्ट क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आएगा, अगर वो मेन्यू नहीं आ रहा तो एक उस ग्रे एरिया में लेफ्ट क्लिक दबा दीजिएगा, वो सारा डिसएंगेज हो जाता है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं आपके साथ हुआ क्या, आपने कहीं ना क्लिक कर दिया था इधर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मैं राइट क्लिक करूंगा वो मेन्यू नहीं आता, तो मैं पहले उसको न्यूट्रल करके मैंने इसको किया लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करूंगा तो ये मेन्यू आता है। देखिए आपको सिर्फ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए। आपने, आपके पास जी है ना, जी, उससे पहले G2 था, फिर जी था, G1 था ना, फिर बुक पड़ी थी। जिस दिन G1 किसी के साथ बैठी थी ना, ब्रेक्स का नहीं पता था, खौफ था कि गाड़ी लग जाएगी, यही था ना, उसने ब्रेकें संभाली, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका खौफ कहाँ से है कि अब आप अनकॉन्शियस यहाँ पर पहुंची हैं घर से निकल के। ये जो फियर है ना सॉफ्टवेयर यूज करने का, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, एक दफा ये टाइम आएगा आपका सबकॉन्शियस खुद ये ट्रेड ले रहा होगा। अब मुझे मालूम है कि जब प्राइस ने आना है 30,000 पे मैंने नैस्डैक को सेल कर देना है, तो आपको ये जो टेक्निकल आ रही है ना दिक्कत, ये सिर्फ ऑपरेशन की है। अब आप लगाएं ऑर्डर, यहाँ पर लगाएं जी, बाय लिमिट लगाएं, बिल्कुल अब लगा दें, ऑर्डर लगाएं बाय लिमिट 7785, आपका एटीएम एंगेज है और स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब आप नहीं हमें चले जाए, नहीं बैठे वेट करें, इस काम के लिए तो नहीं, हमने तो बंद करके चले जाए। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग फायर है ना, फायर आपको एनर्जी देता है, आपको वार्मथ देता है। फायर अनअटेंडेड घर जला देगा, मेरी बात सुने, इस ट्रेड को कभी अनअटेंड नहीं छोड़ना। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कई दफा वो स्टॉप लॉस नहीं उसके बाद भी, अगर अनलेस यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर, प्लीज होता ही है, कई दफा मैंने देखा है लोग रात को ऑर्डर लगा के भूल गए हैं, वो पता नहीं कब ऑर्डर पिक हुआ, कब स्टॉप लॉस सेट हुआ, अकाउंट ही लिक्विडेट हो गया। तो ये नहीं है कि मैं ऑर्डर लग गया है तो अब मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड हूँ। इस फायर के साथ खेलना है तो इसको यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, रिस्पेक्ट। देखिए आपने ऑर्डर लगाया, जब तक इस ट्रेड का आउटकम नहीं निकलता प्रॉफिट या लॉस में, आपने इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना।
आपने इसको लगा दिया, अब देखें दो दुआएं करेंगी। अब दुआ है कि प्राइस इस पे आ जाए, फिर अगली दुआ शुरू हो जाती है कि प्राइस इसके बाद मेरी फेवर में जाए, राइट। सो रैंडम नहीं एंटर करना, आपकी फीलिंग पे नहीं जाना, फीलिंग पे गए ना तो ये काम हो जाना खराब। तो यस, बेशक चल रही है तो होगा ना, जब प्राइस नीचे आएगी तो पिक होगा। अभी घर की प्राइस चल रही है 7789, तो आपने घर खरीदना है 7785 पे, तो जब आएगी तो खरीदेंगे ना। आपने अपनी लाइन से नहीं हटना आगे, तो ना आए, अच्छा ऊपर चलती जाए, आप मिड बैंड का ऑर्डर ऊपर लेती जाए आहिस्ता आहिस्ता, जैसे और ऊपर चली जाए 92 हो जाए 90, आपका मिड बैंड भी चेंज हो रहा है, आप अपना ऑर्डर उठाएंगे इस तरह। अब मैं आपको अगली चीज भी दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करें एक दफा बाय लिमिट को, तो आपका वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रे हो जाता है। क्लिक करें, नहीं उस पर क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक नहीं करना, उस ऑर्डर पे आपने यहाँ ये इस पे क्लिक है, ये जो ब्लू है ना, कोई बात, इट्स ओके इट्स ओके, अभी डेमो है ये सारी चीजें। कोई अच्छा एक काम करें, घबराना कोई बात नहीं, घबरा कुछ कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया, ये ब्लू नहीं नजर आ रहा, ओके राइट क्लिक करें, हाँ कोई बात। अच्छा आपका ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा सा हो गया, राइट क्लिक एंड रीलोड। जब तक आपके ये इश्यूज हल नहीं ना होने, हमने आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट करने देने, ताकि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन, ताकि आपको इसका ग्रास्प आ जाए ना। हाँ जी वैंकूवर आ रहे हैं जी, डोंट वरी, वैंकूवर हैप्पी जी आ रहे हैं सितंबर 7 को, 7 सितंबर को आ रहे हैं वैंकूवर यार, क्लास लेंगे। मैं नहीं आ सकता लेकिन वो क्लास लेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, इट्स ओके। हाँ जी, नो प्रॉब्लम जी, सी यू टुमारो, एंजॉय। No problem. I'm here most days 8:30 to 8:45 and then I leave by 5. हाँ जी बताएं बताएं, क्या चीज़? ऑटो, मैं आपको वीडियो, मुझे आप व्हाट्सएप करें। नहीं मैं नहीं, वो आपको स्पेसिफिक ना विंडोज़ को फॉलो करना है, इधर क्लिक करें, उसको ना अंडरस्टैंड करना है कि वो ट्रेल करता कैसे। नहीं वो ऐसा नहीं, आप एक दफ़ा देखें, मैं ये मेरे पास बैठ के देखें, नहीं समझ आई फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं मुझे आप व्हाट्सएप करें तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। अब आप वेट करेंगे, प्राइस आपके पास ताकि आपको और अच्छा हम वेट क्यों करते हैं, प्राइस आपके पास क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे एक्यूरेट प्राइस मिले, देन यू मेक प्रॉफिट, करेक्ट। बट अगर आप हाई की बाई कर लोगे है ना, तो आपको लॉस भी होगा। अब वो देखिए मिड बैंड पे आ रही है, मैं लगाता हूँ ऑर्डर, ये लगाया है मैंने ऑर्डर, ये मिड बैंड का ट्रेड आ रहा है। हाँ जी पहुंच गया, ओके थैंक यू। नहीं मैं देखता हूँ, ओके बाय बाय, ओके बाय। आई नो, कई दफ़ा वो इंस्टेंट प्राइस नीचे आई और फिर ट्रेंड चेंज हो गया, दैट्स फाइन। प्राइस के अंदर एक बहुत वॉलेटिलिटी फौरन आ गई किसी रीज़न की वजह से, अभी हाँ देखिए आपको उसका एक रूल ये है ऑटो ट्रेल का, कि मुझे अंदर से ये सिखाया गया है हमेशा से कि जब आपने $100 देख लिया ना, या 2 पॉइंट देख लिए, ओके हाँ चले 2 भी देख लिए ना ग्रीन में, तो अपना स्टॉप लॉस वो 0 पे करना है। मैं अभी आपको बोर्ड पे बताता हूँ, मैं अभी आपको ट्रेलिंग की पूरी वीडियो भेज देता हूँ ताकि
नो प्रॉब्लम, आप बनाएं, मैं 5 बजे तक इधर ही होती, नो प्रॉब्लम, लाइव स्ट्रीम ऑन है, दिस इज व्हाई आई एम बैक। कोई बात नहीं, कोई ट्रेडिंग, ट्रेलिंग वीडियो पे। यस, इट्स कॉल्ड, ये अल्ट्रा ट्रेलिंग कहते हैं उसे, उसको वर्ड मैंने भेज दिया आपको वीडियो है दोबारा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ। देखिए $25 बने हैं इस ट्रेड में अभी तक, ठीक है, 2 पॉइंट बनने वाले हैं। हमने ग्रीन लिया था, आपने कहा ना मिड बैंड पे नहीं आई थी, वो बस आपके स्टॉप पे आई है, आपको उसने पिक किया है, और अब 2 चीज़ें हो रही हैं, अगर तो आपके फेवर में जा रही है, राइट। देखिए एक $50 बन चुके हैं मेरे, ठीक है, तो आपने अपने मिड बैंड पे बैठना है, लिमिट ऑर्डर लगा के, बाय का या सेल का, दोनों ग्रीन है तो बाय करें, दोनों तो रेड हैं तो सेल करें। तो $50 1 पॉइंट 2 पॉइंट हर मिड बैंड दे जाता है, क्या बैठना है और इतने लॉस पे। एग्जैक्ट, अब $50 इस ट्रेड में बने हैं, ये $5 बन गया। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, आप मिनिमम वेज भी करें ना, और हर 1 घंटे में, ये प्रॉब्लम है ना, हमने आपको ये नहीं करवाना, हमने करवाना ही नहीं है ये आपको जब रियल पैसे आएंगे तो माइक्रो करवाने हैं, और 1-2 माइक्रो से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आपको हर 1 आवर में $50 करवाना है, मेरा गोल ये है। 1 घंटे में $50 बन जाए ना यूएस, ओ यू गाइज आर गोइंग टू लाइक रॉक द वर्ल्ड, क्योंकि जिस दिन आपको डेली $100 माइक्रो से कमाना आ गया ना, आपकी $10,000 पर मंथ की इनकम गारंटीड हो जाती है। यस, हाँ जी, 3 माइक्रो से ज्यादा नहीं जाना, 3 या 2 नहीं, 1 ट्रेड 2 माइक्रो, 1 ट्रेड 3 माइक्रो बस। तो अभी ये देखे ना, यहाँ पर $50 बने थे ना मिनी में, तो माइक्रो में ये $5 है, 2 माइक्रो में ये $15 है, लेट्स से 3 माइक्रो में 15, 5 से, ठीक है, ये $87 हो गया जी। $100 2 माइक्रो से आपका। अब मैं क्यों प्रॉफिट में हूँ, ट्रेंड के साथ खेल रहा हूँ ना, यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर बुलिश है, तो मैंने बाइंग ही करनी है, मैंने क्यों सेलिंग करूँ मैं। लेकिन फिर आप, आज मैं डे 1 बैठा हूँ, मेरा अभी तक एक ट्रेंड फेल हुआ है, तो आप कल से इधर बैठ जाओ मेरे सामने, जो मैं कहता जाता हूँ नंबर्स पे करते जाओ। नहीं, लेकिन मेरे, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कितना देर हो गया है ये करते हुए? मन, आप ऑलरेडी अकाउंट पे भी चले गए उतनी जल्दी। मैं डैनियल भाई तो आपको 3-3 माह डेमो से नहीं निकालते, नहीं बेशक है, लेकिन शुक्र है भी अब लाइव में नहीं चले गए, लाइव में चले जाते तो फिर आप घर ही चले जाते, वो एक कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। $1000 जाने का बहुत। अभी होता है कि अगर आपको फंडेड में लूसिड करवाया उन्होंने, लूसिड $70 का था, आपने 1000 का नुकसान लिया, नहीं 70 का लिया, राइट, फिर भी आप संभल गए हो। लेकिन मैं अब आपको माइक्रो करवाऊंगा, और उसके अंदर मेरा कोशिश होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करवाऊं, लेकिन वो फिर बार बार नहीं ट्रेड आता, आएगा तो हम लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं है। शायद देखिए $250 है, 1000 में तो एक स्टॉप लॉस गया, 250 चला गया। या तो आप बड़ा अकाउंट करो ना, जो आपका बड़ा वाला है,
अगर तो आपके पास 4500 वाला अकाउंट है, फिर तो मैं, जतिन, हैप्पी, जे, सारे के सारे माइक्रो वाले हैं, क्योंकि वो मार्केट इतनी तेज है कि 250 तो फौरन चला जाता है। लेकिन अगर एक माइक्रो गया, 25 का स्टॉप लॉस लगा, इट्स ओके, बंदा कम, या 50 का स्टॉप लॉस लगा। $1000 का अकाउंट हो तो हम माइक्रोस करते हैं। आप लोग क्योंकि डेमो वाले हो, सिम हो, अकाउंट का साइज है $1,00,000 या अकाउंट का साइज है $50,000। आप प्रैक्टिस ईएस पे करते हो, लाइव अकाउंट पे भी या उधर भी ईएस ही कर लेते हो। तो यहाँ पर एक बफर होता है 50,000 का, वो गिरती है 4-5 हज़ार, फिर वापस आके निकाल देती है। जब आप खेलने रियल पे जाते हो, उसमें अकाउंट बैलेंस सिर्फ 1000 का होता है, और वहां जब ईएस और 2-2, 3-3 ईएस से जाते हो तो अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो माइक्रोज आपको नहीं मारेगा जी, नहीं मारेगा। इट्स ऑल आई एम सेइंग। ये किसकी है जी? ये चाय रेडीमेड चाय है। ये अंदरों है? अच्छा 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 अच्छा, नो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ओनर ने बनाई है ब्लैक टी। सर आप बैठे और कसम खा लें कि मेरे नंबर्स के बगैर आपने ट्रेड किया, बेशक पूरा दिन ट्रेड ना आए। अब मैंने आज आप लोगों को सिर्फ एक ट्रेड करवाया, पता है, पिवट का। अब उन्होंने लिए 5 पॉइंट आपके लिए, ये आपके लिए, ये ग्रेड 10 के लिए अभी टाइम लगेगा जी। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे ग्रुप को इकट्ठा लेके चलूं, ग्रेड 1 से 10 तक तो, और पीएचडी से लेकर नर्सरी तक। देखिए अगर आपको एरियाज करने आते हैं ना यार, अगर आप सिर्फ एरियाज करते जाओ ना, मैं घर बैठा हूँ 15 दिन से मैंने घर स्ट्रीम किया। एक मंडे ऐसा था मार्केट ने हमें बख्शा ही नहीं। वो 1 वे 1000 पॉइंट गई और ईएस गई 142 पॉइंट। उस दिन मेरा लॉस पता कितना था? $233। बस हमने छोड़ दिया, हमने कहा यार ये नहीं जा रही, खत्म कर दो इसको। तो एवरी डे, कल अभी मैंने पिवट से सेल किया है और मैं इस वक्त अप हूं $964 पर अकाउंट लूसिड के अंदर, और मेरे पास रह गए हैं सिर्फ $3000 करने वाले, फिर मैं उसका डेली पे आउट पे आ जाऊंगा। राइट, सो अगर आपने करना है प्लीज यार एरिया पे करें। चलें आपको एरिया पे क्लास दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, डोंट। टुडे आज डे 1 है, मेरे पास भी पूरी एनर्जी है वेट करें, मैं भी थक जाऊंगा। नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें अभी। कौन आपको, हाँ 60 मिनट 61, नो प्रॉब्लम। हाउ डिड इट गो? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। There's only one trade pivot, that's it. अभी तक सिर्फ पिवट आया है। हाउ है जी? हाँ, ये चार्ट नहीं है आपका, वो जिसमें सिर्फ नंबर बॉक्स ये वाले आ रहे होते हैं। ये एक और 60 मिनट होगा जो डैनियल भाई मिडिल में बना के देते हैं, मैं बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ एनी डेस्क करके, 2 मिनट रुके, अभी कर देता हूँ, फिक्र ना करें। I always lose my eraser every day. मेरी छुट्टियां मैं आपको बता रहा हूँ 17 दिसंबर से 2 जनवरी होती हैं, और जब मैं इस क्लास से टायर्ड हो जाता हूँ मैं रूम में चला जाता हूँ, क्योंकि उससे मैं टायर्ड, मुझे रोटेट ही करते रहते हैं। नो प्रॉब्लम। है जी, दुआ करें कि मैं पेशेंस रहूं। ऑलराइट,
अच्छा, एक और बात है, अगर आप लोगों के पास टाइम है ना, तो मैं यहाँ 5 बजे तक बैठता हूँ, तो मुझे कोई जल्दी नहीं होती आने जाने की। इफ़ यू भाई, कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम इसको रख लें नाम बदल के कि भाई अगर आपने अपना लंच भी ले आओ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स नॉट लाइक सर। तो मुझे ये नहीं होता कि मेरा सेट स्केड्यूल है और मुझे इतने बजे ही निकलना है, अनलेस जो सितंबर में मैं यहाँ से 2 बजे निकल जाता हूँ, 2 o'clock I have to go pick up my kids, so 9 to 2 September till June, but so ये वाले कॉन्सेप्ट आज ना आए कल ना आए, एवरी डे रिपीट होते रहेंगे और आपको इवेंचुअली समझ आएगी। जब हम एरियाज कहते हैं, द वर्ड यूज होता है एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करते हैं इसको कुछ लोग कहते हैं लेवल्स, रिवर्सल्स, डिफरेंट नाम है, सेम थिंग। आप इंटरनेट पे किसी को फॉलो करो, किसी को देखो, कोई बात करे, कोई इसको जोन बोलता है, कोई एरिया कहता है, कोई लेवल कहता है, कोई पिवट्स कहता है, सारों का नाम एक ही है। हम लोग इधर इसको कहते हैं सुपर एरियाज, मीनिंग के ये अल्टीमेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं। अब क्या एरिया होता है, मैं 4 लिखूंगा, R4, रेजिस्टेंस 4 से S4। हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम एवरी डे 9 o'clock इन द मॉर्निंग, हमारे जो एनालिस्ट होते हैं उनका एक बैठ के एक फोरम है, उसके अंदर एवरी मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे वो 8 लेवल निकाल देता है। एक मेन मार्केट्स के एवरी डे 8 लेवल निकलते हैं। 9 o'clock मैक्सिमम बायो आया तो 9:30 आएगा, ये अनलेस डैनियल बाइज इन traveling, he's somewhere where he can't get approved, but then I will try to come in and give you the area. प्राइस एक है, अभी एक प्राइस निकालते हैं, क्या प्राइस चल रही है जी, 7784। आप किसी भी टाइम 23 आवर्स अ डे प्राइस जब खोलो ना, तो आप देख सकते हो ये कहाँ पर चल रही है, किस जोन में चल रही है, किस लेवल पे, किस एरिया पे चल रही है। उसके बाद आप कंप्यूटर के असाइन जो लेवल्स हैं उसको मार्क हमारा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके लिए कर देता है, आप उसको देख के कर सकते हो कि क्या एरिया है। प्राइस जब भी मूव होती है किसी भी आइटम की, वो स्ट्रेट अप एंड डाउन नहीं जाती नहीं। ये नहीं होता कि 7784 से एकदम 50 पे आ जाए, बहुत रेयरली होता है। प्राइस हमेशा ऐसे मूव कर रही होती है। और अगर उसने गिरना भी है तो ऐसे गिरती। अब गिर तो रही है, ये नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है। हर जगह जहां पर ट्रेंड जाके वीक हो जाता है उसको हम एरिया कहते हैं। अब एरिया रेजिस्टेंस का होता है और एरिया सपोर्ट का होता है कि अगर प्राइस गिरती जा रही है तो कितनी जगह जाके इसको रुकना चाहिए। यार बहुत सस्ता हो गया है, सपोर्ट का एरिया कहलाता है। तो हम लोग S1, तो हमारे 8 लेवल हैं, लोग जितने मर्जी लेवल निकाल लें, 10 निकाल लें, डजंट मैटर। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, प्राइस को देखता हूँ, 7784 है। डैनियल भाई के जो एरियाज निकल रहे हैं कंप्यूटर में शेड बने हुए हैं। अब मेरे पास एरियाज आ रहे हैं, लेट मी ओपन अप द चार्ट, गिव मी सेकंड, राइट हियर। आप लोगों को सुपर एरियाज पे भी आ जाते हैं। तो अब कंप्यूटर क्या कह रहा है कि अगर प्राइस 7801 पे आ गई तो वहां पे सेल बनता है। तो क्या हो रहा है, अभी प्राइस है 7784 पे, वो ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है नीचे आ जाती है। अब कंप्यूटर ने ना एक
बॉक्स बनाया 7801 से लेकर ऊपर वाली रेंज क्या है जी 7805 तक। अब हमारा कंप्यूटर क्या प्रिडिक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन बहुत सारे मैथमेटिक्स होते हैं उसके अंदर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डाइवर्जेंस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, आरएसआई, मूविंग एवरेज। आपको नहीं केयर, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर प्राइस इस जोन में आ जाती है तो मैं यहां से सेल करूं। दैट्स इट। आर का मतलब सेल है। लोग कहते हैं, मैं अपने कंप्यूटर पे अगर आपको स्क्रीन दिखाऊं तो मैंने ये एक नंबर लिखा होता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब होता है यहां से अच्छी बाइंग हो सकती है, ये सपोर्ट जोन है। अगर मैं आपको ये मार्कर है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, अगर ये बॉल है या मार्कर है, ये मेरे छत इसकी रेजिस्टेंस है और ये जो फ्लोर है ये इसकी है। मैं ये कहता हूं ये S1 है। अब इस बिल्डिंग को देखें, ये मेरे लिए तो सपोर्ट है लेकिन जो नीचे वाला फ्लोर है उसके लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने ये मार्कर ये फेंका, मेरे फ्लोर पे गिरा है, इसका मतलब है कि ये मेरे S1 पे आ गया है, तो मुझे यहाँ से इसको बाय करना है। मैं पिक करता हूँ, मैं ख़रीद लेता हूँ, अगर वापस ऊपर आ जाता है तो ये बाय हो गया। अगर बॉल है, अगर और कंप्यूटर ने कहा है इस वक्त ये जो नंबर हमारे सॉफ्टवेयर ने निकाला है, इसका निकाला है ये रेजिस्टेंस लेवल 1। आज के दिन में 9 बजे से लेकर कल के 9 बजे तक अगर प्राइस इसके अंदर आई तो ये रेजिस्टेंस है। सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, बैठ जाता हूं। मैंने आप लोगों को सुबह क्या कहा था कि 7899 पे जाकर हम लोग बैठ जाएंगे, सेल का लिमिट लगा देंगे और वहां से 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट जो भी हुआ ले लेंगे। अब वो गई, हमने एक नंबर लगाया था, चलते 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 वो 7798 से वापस आ गई। मेरा ऑर्डर नहीं पिक हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट डजंट हैव टू गो टू वेयर वी प्रेडिक्ट। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन हमारे सॉफ्टवेयर की और हमारी इस कंपनी की 87% करेक्ट है। 100% कोई चीज़ नहीं है दुनिया में कि हम लोग कहें कि जी 100% हम लोग करेक्ट होते हैं। लोग दुनिया में प्रेडिक्शन करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि ट्रेडिंग का प्रेडिक्शन होती है 50%। मुझे ब्लाइंड बैठा दें पर्सन और उसको मैं एक बटन दे दूं बाय और सेल का, वो आंखें बंद करके भी किसी पे क्लिक कर देना तो प्रोबेबिलिटी 50% है फ्लिपिंग ए कॉइन, शायद वो सही हो जाए या राइट हो जाए, और कुछ नहीं करना। हम लोग उसको लेके जाना चाहते हैं 50 से 60, 70, 80, ताकि अगर 100 ट्रेड किया है और 8, 8.5 ट्रेड ठीक है, 800 ट्रेड, यू आर विनिंग। तो हमारी प्रेडिक्शन मैंने निकाली हुई है 5 साल की, 87% है कि अगर जो हमारे सॉफ्टवेयर ने प्रेडिक्ट किया है, ऑफ कोर्स मैंने अभी प्रेडिक्ट किया था कि 850 से 60 पे हम सेल करेंगे। हमने प्रेडिक्ट किया, प्राइस उसके अंदर गई, उसने हमें थोड़े से पॉइंट दिए, फिर ऊपर चली गई, खड़ी रहे, इवेंचुअली उसने अच्छे पॉइंट दे दिए। तो इस तरह एरिया चलते हैं। हमें नॉट ओनली आप लोगों को सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाता है कि ट्रेंड ट्रेड कैसे करना है, साथ ही साथ आपको बता दिया जाता है कि अगर किसी ने एरिया ट्रेड करना है। रीज़न हम एरिया ट्रेड क्यों करवाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये लग्जरी नहीं है जो आप लोगों के पास है, सामने बैठना। कुछ लोग नहीं ट्रेड कर सकते 8 से 11, कोई मैंने कहा नोवा स्कोशिया बैठा है, कोई वैंकूवर बैठा है, कोई इंडोनेशिया, कोई यूएई, वो हमें सुन रहे होते हैं। वो कंप्यूटर को खोलते हैं, कहते हैं अच्छा विन लाइफ टाइम सुपर एरियाज ने आज क्या प्रिडिक्ट किया, वो अपने ऑर्डर वहाँ लगा देते हैं। आप ये अपना ऑर्डर फ़ोन से लगा सकते हो, आप अपनी लैपटॉप से लगा सकते हो। फिर उनको ये ना चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी, राफे भाई ने कहा है कि अगर 30,000 पे आए तो सेल करें, फिर अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कह दिया, सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि जी 7801 से लेकर 7805 तक ट्रेंड को बेंड होना चाहिए, नहीं रुकती। 7801, 7802, 7803,
फिर आपकी एक जजमेंट कॉल आती है खुद अपने आप से, मैंने कितना नुकसान लेना भाई। कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से ट्रेंड को बेंड हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, 708 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट मंडे या फ्राइडे का प्राइस मैंने प्रेडिक्ट की 78010 समथिंग, वो चलते 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 7820 हो गई। आई टुक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, मैं कहा भाई ट्रेड बंद कर दो, इट्स नॉट, दिस इज नॉट गोइंग इन माय फेवर, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। इसी तरह अगली रेजिस्टेंस, अगली रेजिस्टेंस, अगली रेजिस्टेंस आती रहती है सेम। अब कंप्यूटर ने अगली रेजिस्टेंस उससे ऊपर कही है 12 से 16 कि अगर प्राइस 78 यहाँ पर से रिवर्सल होती है और वापस ऊपर जाती है तो आपको 12 से 16 के दरमियान में वेट करना है सेल करने का। आपके जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज होते हैं वो अगेंस्ट द ट्रेंड होते हैं। ग्रीन होगा आप सेल कर दोगे, क्योंकि वो एरिया है ना, वो नंबर सेलिंग का है। तो याद रहे कि जब भी आप एरिया का ट्रेड लोगे आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे 100%। उसमें 15-10 नहीं देखना, उसमें कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ नंबर चाहिए। इसलिए जो लोग एरिया ट्रेड करते हैं वो 15, 10, 30, 20 नहीं देखते। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे जो 60 मिनट में नंबर आए ना कि कहाँ पर जाके प्राइस रुक सकती है, मेरा रेजिस्टेंस क्या है और मेरा फ्लोर क्या है। तो ये 4 आती हैं, 4 बीच में पिवट भी आता है और 4 आती हैं। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर खोलें 60 मिनट के चार्ट पे जाएं तो वहां पर आपको शेड्स बने आते हैं कि ये ब्लॉक है R1 का, ये R2 का, ये S1 का, S2 का। तो जनरली तो मैं क्या, मेरी जॉब क्या है या हैप्पी की जॉब क्या है या जतन की जॉब क्या है, हम इन एरियाज के अंदर जरा जूम कर जाते हैं। हम कहते हैं यार कंप्यूटर ने तो चलो आज प्रेडिक्ट किया ना 7801, मैं रिस्क लेता हूँ 7799 से। तो हम उसके अंदर भी ना थोड़ा सा और प्रिसीजन में चले जाते हैं, 2-3 पॉइंट कम या कई दफा ज्यादा भी। मैं आपको बताता हूँ, अब S1 जो है ना NASDAQ का, S2 जो है ना, मैं बॉटम नंबर लूंगा। उसकी एक मेरी साइंस है, हमने देख रहे हैं कि अगर S2 है तो S2 लिमिट के अंदर भी आपने कौन सा नंबर लेना है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा चार्ट पढ़ना कि। इसलिए शुरू में मैं ये कहता हूं कि अगर आपने एरिया लेना है तो किसी मेंटर से पूछ लो कि मैंने R1 में लूं या R2 लूं। इसलिए मेरी जॉब ये होती है कि डैनियल भाई आपको जनरल एरियाज देते हैं, मैं उसके अंदर जाके थोड़ा सा जूम इन करके अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर लिख देता हूं कि अगर मैंने सपोर्ट ली तो यहां से बनेगी कि एक सेकंड मैं S2 का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी जी आपका, हाँ जी सर मैं MNQ की बात कर रहा था। वो ये क्या हुआ है, ये what happened here, something happened, this market just fell down। कोई ना, एक सेकंड मैं ट्वीट पढ़ लूं, ये मार्केट गिरी है, blink of an eye, something happened जी, एक सेकंड जी, this fell down to 745, एक सेकंड जी, ये भी कोई ना कोई चीज हुई है कि what caused this thing। 100 पॉइंट NASDAQ गिरी है, blink of an eye। मैं सेल में था तो मैंने कहा ये पैसे कैसे बन गए, मैं हमेशा ही सेल में होता हूँ बाय द वे। एक सेकंड जी, आई मिस्ड अ लॉट ऑफ इट, वो ग्रीन होके रेड हो गई है, इट्स ओके। आई सॉ अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अभी मैं उधर देखने गया था ES को, तो ES ट्रेड हो रही थी 85 पे, अब ट्रेड हो रही है 75 पे। सो समथिंग डिड हैपन ऑल ऑफ अ सडन। मैं जरा इसको फिगर आउट करूं हुआ क्या है। ये गिरी क्यों है 100 पॉइंट्स, क्या 1130 अभी, एक सेकंड, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, कोई मैं आपसे पूछने आ रहा हूँ। देखिए हमारी मार्केट में ये होता है, क्योंकि हम एक नंबर का वेट कर रहे होते हैं ना,
तो वो एक, मैं सिर्फ उस चार्ट को उधर देखने गया हूँ, मैंने कहा हाँ एनीवे इट्स ओके, कोई बात। चलो सर मैं तो शॉर्ट में था। अब यहाँ हमारा फेवर में हो गया, मैं 2 माइक्रो के साथ में शॉर्ट में था, वो $77 बन गया, इट्स ओके। तो एक MNQ के अंदर नो प्रॉब्लम। तो जब आपने एरियाज करने हैं तो आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर, अच्छा सर मैं आपको नंबर बता देता हूँ, S2 का बॉटम है सर 7740 से लेके 45 तक। अब कंप्यूटर क्या कह रहा है आपको कि अगर प्राइस इसके अंदर आ गई तो ये अच्छा बाइंग जोन है, दैट्स इट। जिस तरह एनी गिवन टाइम मिड बैंड आपको नंबर दे रहा है ना ट्रेंड के अंदर, तो एरिया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे रहा है कि अगर गिरी तो इतनी गिर सकती है। तो मैं चले इसको एज ए ह्यूमन बिहेवियर में बताता हूँ। आप कोई बंदा करो, बंदा पकड़ो और उसको कहो यार तेरी औकात क्या है, अगर तू मेरी नज़रों से घिरा तो तेरी ये औकात है, मैं उसको सपोर्ट देखता हूँ। और अगर तुझे मैंने प्रीमियम लग्जरी दी तो तेरी औकात, तो ES की औकात है ना। अगर वो गिरती गई गिरती गई गिरती गई तो मैं 45 पे आ गई ना, मैं आपको एक बताता हूँ, आपने घर खरीदना है, आप मार्केट में गए, आपको घर पसंद आया, आप बिना कुछ भी खरीद लोगे बिना किए, ऐसे तो गैम्बल नहीं होता ना। आप कहते हो यार अगर इस प्राइस पे आ जाए, आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कोई वेकेशन सोची होगी, कुछ ना कहीं जाना है, किसी चीज को ज्वेलरी खरीदनी है। अब मुझे याद है पिछले अबाउट 3 to 4 months अगो, अगर आप रिजवे पे जाओ तो ज्वेलर शॉप्स पैनिक में बैठे हुए थे कि जो सोने की कीमतों का हालात हो गए थे। कुछ लोगों की वेडिंग्स प्लान थी उसमें, अब ऑफ कोर्स हमारे कल्चर में सोना डालना होता है, तो आपको एक स्ट्रेस थी, ओ माय गॉड सोना इतना महंगा हो गया, रातों रात $100 बढ़ रहा है पर नाइट। अब फिर सोना वापस आया, करेक्ट हुआ, तो अब आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप घर खरीदना चाहते हो, आप S&P खरीदना चाहते हो, आप किसी से मशवरा करोगे? तो हमारा कंप्यूटर ये कह रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि अगर 40 से 45 तक प्राइस आ जाती है तो यहां से ये अच्छी खरीद है आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए आप लेंगे, 40 से ली आपने, 45 में ली आपने, इसको 47 में बेच दिया, आपने 40 में लिया 45 में बेच दिया, तो आपकी कोशिश ये है कि जिस प्राइस पे आ जाए, तो आई वुड प्रेफर इट देयर। सेम थिंग अगर वो चढ़ रही है, प्राइस महंगा हो गया महंगा हो गया महंगा हो गया, आपको हो रहा है भाई ये टू मच महंगा हो गया है, तो मैं यहां से काउंटर सेल कर सकता हूं, मीनिंग के यहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूं विद ऑनेस्टली। अभी आप लोगों को शॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझ है कि शॉर्ट होता क्या है? सेलिंग होती है ना, ताकि कोई इसमें कंफ्यूज तो नहीं है, क्योंकि कई दफा लोग सोच रहे थे मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं तो मैं बेच क्या रहा हूं। आप सिर्फ क्या करते हो, आप ऑलरेडी खरीद लेते हो अपने ब्रोकर से, आपका ब्रोकर आपके लिए खरीद देता है, आप और पहले आप सेल कर देते हो और फिर वापस बाय बैक करके शाम को आपने कॉन्ट्रैक्ट वापस करना होता है। इसकी आसान डील ये होती है, जितने भी बिल्डर आपको घर बेचते हैं प्री कंस्ट्रक्शन का, वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती 1 2 3 4 साल, तो वो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट बेच देते हैं और 2 साल बाद उन्होंने आके आपको प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है, तो वो शॉर्ट सेल कर रहे होते हैं, पहले ही सेल कर रहे होते हैं, आपने खरीदार होते हो, लेकिन उनको अब एक, आप देखिए अगर आपको बिल्डर ने घर बेच दिया था कोविड में, हुआ ये, वो पैनिक हो गए क्योंकि लंबर महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई। कोविड के बाद अगर आप देखो उन्होंने क्लोजिंग्स डिले कर दी, इस वजह से नहीं कि लेबर शॉर्टेज थी, उनको एक घर उन्होंने $1 मिलियन का बेचा हुआ है, अब वो खरीदने गए हैं, लंबर लेने गए हैं, कोई अप्लायंस लेने गए हैं, कोई कुछ रूफ का मटेरियल, उनको वो घर महंगा पड़ रहा है, उन्होंने कहा भाई डिले करो इसको क्लोजिंग, वरना ये हमें नुकसान हो जाएगा। आप गए 7797 पे 99 में आपने सेल किया, अब आपकी ख्वाहिश ये, आपने ब्रोकर से लेके सेल कर दिया, बाय द वे किसी आपने मार्केट में किसी को बेच दिया, अब 5 बजे 5 PM आपका ब्रोकर कह रहा है भाईजान किधर है वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने मुझसे बोरो किया था, तो अब आपकी कोशिश है, अब आप मार्केट में 5 बजे ढूंढ रहे हो
आपके अगर आपको वही कॉन्ट्रैक्ट मिला 78.10 का तो आप लॉस में हो, अगर आपको वही चीज़ मिली 77.92 में तो आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने ख़रीद के वापस करना है ना। आप यही कोई चीज़ है कि आप किसी को सेल फोन बेच दो, आपके पास प्रोडक्ट नहीं। जो ब्रोकरी करते हैं ना लाइफ में, वो हमेशा शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, वो पहले सेल कर देते हैं फिर प्रोडक्ट को ढूंढने जाते हैं। मीनिंग के अमेज़ॉन भी उसी उसमें आ जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट बड़ी होती है। लेकिन अगर आपको मैं हमारे जो कल्चर में कई दफ़ा होता है कि हमारी ईद आती है ना, तो आपका बुचर जो होता है ना वो शॉर्ट सेल कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है कि आपसे कह रहा होता है भाई बकरे बुक करा दो 400 के 500 के, आपको तो बेच दिया उसने, आपसे डील मुका ली। अब वो फार्मर के पास जाता है, वो कहता है कि मेरे पास 100 बकरों का ऑर्डर है गोट का, तो मुझे प्लीज़ दे दो। अब उसकी किस्मत देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अब उसने तो आपको डील कर दिया, आपने तो अपनी कुर्बानी करनी है। अब वो गया, उसको फार्मर कहता भाई इस दफ़ा तो महंगा सीज़न है तो आपको महंगे मिलेंगे। अब उसने तो अब उसको लॉस में घाटे में जाएगा। लेकिन अगर फार्मर कहता है यार तेरे लिए मैं आज डील अच्छी लगा देता हूँ, तो वो प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी सेल कर दिया है, उसने बाय बैक लेटर करना। सो जब भी आपकी प्रोडक्ट फ्यूचर में डिलीवर होगी तब आप उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं। तो अभी तो आपने बाय किया है ना, तो आपने इमीडिएटली लिया 40 का और अब आपने 50 का बेच दिया, प्रॉफिट में आए। सो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सो द ट्रेड इज सेल टू ओपन, बाय टू क्लोज। आपकी ट्रांजैक्शन पूरी इस तरह होती है कि आपने कुछ खरीदा, ये टिश्यू का बॉक्स है, ये आपके पास पड़ा है, आपने इसको 77.80 का खरीदा, इसको 77.85 का बेच दिया, खत्म, डील, ट्रांजैक्शन क्लोज। दूसरी अपोजिट साइड है, पहले आपने किसी को बेच दिया है, फिर आप इसकी प्राइस ढूंढने निकलने हो, शॉपिंग के लिए गए हो। सो दिस इज हाउ ए शॉर्ट सेल वर्क्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो तो एरियाज में भी ऐसे होता है, आप सिर्फ जाके ना वहां पर बैठ जाते हो अपने जोन में। अच्छा देखिए, चार्ट में हमारा सॉफ्टवेयर आपको इतना आसान कर देता है कि आपको वहाँ शेड्स बना देता है। R2 आपके 60 मिनट के चार्ट में नहीं आ रहे, मैं भी कर देता हूँ। वो एक लाइनें बन जाती हैं बॉक्स की, ये R2 है, ये R1 है, ये S1 है, ये S2 है, S3 है, आप उसके अंदर बैठ जाते हो। नहीं, वो देखिए वो टाइम के साथ आ जाएंगे, कोई मसला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपके सामने ये वाला चार्ट अगर जूम इन करके करूं, ये है नैस्डैक का 60 मिनट का। चलें ES का कर लेते हैं, ES को इधर ले आते हैं। ये लगा हुआ है, ये ES का चार्ट है, इसको और इधर ले जाता हूँ, स्क्रीन पे ले जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए एरिया तो प्राइस का होता है ना, उसमें ES नैस्डैक का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें पूरी उसमें गोल्ड के एरियाज देते हैं, क्रूड ऑयल के देते हैं। अब ये हम वो शेड नीचे चल रहा है, आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये बॉक्स नजर आ रहा है, ये नीचे लिखा हुआ S2, ये इसके अंदर लिखा हुआ S1, ये ग्रीन वाले ये एक्सपेक्टेड लो लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड हाई लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर ने क्या कहा कि अगर एक्सपेक्टेड हाई में आज तेरी ये प्राइस आ गई ना, तो प्लीज यहाँ से सेल करना, यहाँ से बाय ना करना। यानी कि एक्सपेक्टेड हाई का मतलब है रेजिस्टेंस का तीसरा लेवल है, ये रेजिस्टेंस का दूसरा लेवल है, ये रेजिस्टेंस का पहला लेवल है। ये आप इसको अगर एनविजन करें एज ए अपार्टमेंट बिल्डिंग के, कि कहाँ पर प्राइस है, सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, फ्लोर पे है या रूफ पे है, ये S2 है, ये एक्सपेक्टेड लो है, तो ये मेरे बाइंग जोन बनते हैं। हाँ, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया, आपको नजर आएगा कि S2 में खड़ी है, आपका 15-10 और 30-20 ग्रीन होगा, आप फिर पैनिक करेंगे कि लेकिन ये आई नो, लेकिन क्योंकि आप एरिया चार्ट में हैं तो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड जाना पड़ेगा। वो ट्रेंड ट्रेड है, हाँ जी, नहीं वो नहीं है, वो डिफरेंट है जी, वो क्योंकि यहाँ पर जब आप बाइंग शुरू करेंगे ना एक्सपेक्टेड लो में, तो आपका बैकग्राउंड मैजेंटा हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर से बाय करना है, हाँ जी एग्जैक्ट, नहीं देखना, नहीं उसका ताल्लुक ही कोई नहीं, ताल्लुक
ये 60 मिनट का जी मुझे डजंट मैटर। अच्छा आगे ट्रम्प की ट्वीट थी, ये जो 100 पॉइंट गिरी है ये ट्रम्प की ट्वीट आई थी, फॉरेक्स फैक्ट्री पे लग गया। ट्रम्प ने कहा कि ईरान हमसे पैसे मांग रहा है तो हम ओपन मार्केट। तो ये जो ट्वीट थी इसमें स्टॉप लॉस ना होते, देखिए मैं फायदे में था, मैं सेल पे बैठा हुआ था, सुबह से मेरे फेवर में गई। मेरा कमाल नहीं है, ट्रम्प आज मेरा दोस्त है। बहुत दफा मेरे दुश्मन भी होता है क्योंकि मैं आर में बैठा होता हूँ और वो मार्केट चढ़ा देता है, राइट। मैंने 60 मिनट पे क्योंकि उसको 60 कर दें, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन होती है पिवट्स आपके 60 मिनट से अच्छे निकलते हैं क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा हो जाता है। मैं आपका चेंज कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आज का एक्सपेक्टेड S3 है, वो एक्चुअली S3 ये एक्सपेक्टेड लो होता है, S3 एक्चुअली एक्सपेक्टेड लो होता है। तो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका लिमिट ऑर्डर कहां बनता है। आपका लिमिट ऑर्डर बनता है जी 4-5 पे। इस कैंडल का टॉप क्या है? 7745 पे आपका बाय लिमिट बनता है। आप वहां जाएंगे आज के दिन, याद रखिए ये एवरी डे चेंज होता है। एवरी डे सुबह 9 बजे आपको एक अलर्ट आता है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, आपको सर्वर से आपका 60 मिनट का चार्ट खुद ब खुद चेंज हो जाता है। एवरी मॉर्निंग 9 o'clock दिस कंप्यूटर रिफ्रेशेस। नहीं मैं कोई बात नहीं है। देखिए हम आपको ग्रेड 10 की चीज़ ग्रेड 1 में नहीं बताते। देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मिड बैंड नहीं पता, मैं उनको आज एरिया सिखा रहा हूँ, वो दिमाग की दही बनी हुई है। हाँ नहीं उसके वहीं लिखा है, आप देखें जाके शेड के अंदर आपका लिखा हुआ एक्सपेक्टेड लो 7710 तक है। आप कौन सा चार्ट देख रही हैं पहले? मैं नहीं ये नहीं, ये चार्ट नहीं है। हाँ ये एक्सट्रीम, ये एक्सपेक्टेड लो है, ये सही है ना एग्जैक्टली। नहीं 7 वो S2 की बात कर रहा था मैं। अगर आपने S2 लेना है तो वो 4-5 है, अगर एक्सपेक्टेड लो लेना है तो वो 10 है, 7-7-10 है। तो हर एक फ्लोर का एक नंबर है ना। हाँ तो हमारे पास मैंने कहा ना कि बहुत रेयर होता है कि एक्सपेक्टेड लो से भी गिर जाए, हो जाता है, ऐसे नहीं होता कि वो रुकी ही नहीं प्राइस, ट्रम्प की ट्वीट आ गई कुछ हो गया, या सर ट्रम्प ने ट्वीट मारी सी, मैं शुक्र है शॉर्टेज ही बैठा से। तो दिस इज हाउ यू रीड द एरियाज वाले इतने पेशेंस ट्रेडर होते हैं कि दिस टेस्ट योर नर्व्स। अगर आप लोगों में से किसी ने स्टॉक ट्रेडिंग की हो, आपको पता है आपको मिनिमम 3 मंथ वेट करना पड़ता है। आपने आज एप्पल का स्टॉक खरीदा, 3 मंथ के पहले आप उसको बेच दोगे ना तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, वो इनकम टैक्स लग जाता है। आप क्योंकि उसके अंदर 3 मंथ्स की वेटिंग पीरियड होती है। आपने एक ट्रेड खरीदा, एप्पल खरीद लिया, 10 एप्पल के स्टॉक ले लिए $200 के, आपने 2000 लगा दिया, अब आप बैठे हो, अर्निंग टू अर्निंग आप बैठते हो। यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर्स की मार्केट तेज इतनी चलती है तो आपको वही होता है, ओ माय गॉड। अब अच्छा एक आपको बताऊं, वो बिल्कुल S1 से बाउंस हुआ था। अगर कोई S1 पे बैठा था तो हमारी प्राइस S1 में गई और वहीं से उसने बाउंस किया। तो अगर आपने ऑर्डर S1 पे लगाया होता, मैंने S1 दिया था, मैंने आपको S1 दिया, लेकिन वो नहीं मैंने S2 दिया था आपको। सॉरी मैंने ES का S2 लिखा था कंप्यूटर पे, S1 नहीं लिखा था। लेकिन वो अगर आप देखें कि प्राइस S1 के अंदर गई, उसने वहीं से डिप लगाया और वापस आ रही है। तो आज का अगर S1 देखें कंप्यूटर का, कंप्यूटर ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि 7740 से लेकर 7745 तक मार्केट को, सॉरी 60 से 65 तक बाउंस करना चाहिए, और उसने किया। इस बॉक्स के अंदर आई ना, आपको अगर बाय लिमिट लगा होता तो प्रॉफिटेबल दे गई है। इट्स ओके, डोंट वरी, इट्स ओके। आपने मुझे यहाँ पर बैठ के वो नंबर लेने हैं जो मैंने और जतिन ने कहने हैं, बस।
और अगर हम आपसे कहें इट्स टू लेट, अब हम निकल रहे हैं स्ट्रेट से, तो निकल जाएगा, तो हम आपको एरिया करवा देंगे प्रिसीजन के साथ, कोई प्रॉब्लम। अब देखें, उन्होंने आज पिवट का पहला ट्रेड लिया, थोड़ा जल्दी निकल गए, कोई बात नहीं, उन्होंने 5 पॉइंट लिया, उन्होंने $10 या $20 लिए, मैंने उस ट्रेड में से लिए हैं जी ऑलमोस्ट $300। एक ट्रेड हुआ है, कोई बात नहीं। तो एरिया ट्रेड हम लोग आपको करवा देंगे, टाइम लगेगा, ये अभी भी हम कई चीज़ नहीं समझते, और 29,740 तो नहीं गई जी। ये थी, हाँ, 7799, यस यस। लगा के देखें और ऑब्जर्व करें, फ़ोन पे लगा लें, शाम करें, दिल करें, लेकिन जब वो अलर्ट हो जाए तो फिर उसको फिर ऑब्जर्व करना है ना, कि मैंने, अगर आपके एरिया पे आ जाती है। अब मैं आपको बताऊं, कल शाम अराउंड 10 PM मेरे एरिया पे आई थी प्राइस 28,900। वहाँ से फिर मैं बैठा, उसको ऑब्जर्व करता रहा, फिर मैंने वहाँ से प्रॉफिट लिया, वहाँ से सेल किया। तो जब आपके एरिया पे आ गई, आपकी प्राइस का ऑर्डर पिक हो गया, तो आपको पता लग जाएगा ना। तो जो लोग एरिया देख रहे होते हैं, वो कुछ फ्री की ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। आप डाउनलोड कर लो, ट्रेडो वेट फ्री की ऐप है, तो आपको राइट अवे प्राइस नज़र आ रही होती है ना, कि मेरी ये प्राइस है। तो आपको बिल्कुल, आप एनी टाइम मैं देखना चाहता हूँ प्राइस क्या है, मेरे पास चार्ट नहीं खुला हुआ, तो लेकिन ये देखें, ट्रेडर वेट आप डाउनलोड कर लो, तो वो आपको करंट एग्जैक्टली लाइव प्राइस बता रहा होता है कि इस वक्त प्राइस नैस्डैक की 29,758 चल रही है। तो उससे ये होता है कि आप देख सकते हो कि अच्छा जी, मैंने प्राइस में यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है, उसमें मुझे ना 15-10 चाहिए, ना 30-20 चाहिए, ना मुझे सिर्फ मेरा नंबर चाहिए। अब मैंने वेट आप लोगों को सामने ऑर्डर लगवाया, 7799 नहीं आई, ऑर्डर कैंसिल कर दिया भाई, कि नहीं आई, तो अब मैं क्या करूँ। वहाँ पर 98 पे गई थी, 99 पे नहीं गई हमारे, नहीं आज नहीं गई, आज नहीं गई, आज नहीं गई 99 पे, आज नहीं गई, 98 पे गई है जी। आज 98 से बाउंस नहीं हुई। हमारा जो बहुत अच्छा एरिया चला वो पिवट चला, जब प्राइस, यार ये गैप समझ नहीं आया कि अन्नी पिवट बेस 60 मिनट के चार्ट के ऊपर पी लिखा होता है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आप लोग अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो प्लीज ये चार्ट बना लें, मैं आपको चार्ट बनाना सिखा देता हूं। कंट्रोल सेंटर में आप लोगों के पास वैसे ये चार्ट होगा जिसमें एरिया सारे लिखे हैं, मैंने आपका देखा, आप उसमें पी लिखा होता है। 60 मिनट का चार्ट इस तरह का होता है, ये देखें जी, इस तरह का एक चार्ट नजर आएगा। आई नो इट लुक्स टू कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक में सिर्फ एरिया शेडो जा रहे हैं, शेड्स जा रहे हैं। डैनियल भाई ने जब आपकी प्रोफाइल सेट की है, राइट साइड पे 15-10 है, लेफ्ट साइड पे 30-20 है, मिडिल में आपके एरियाज जा रहे हैं पिवट के साथ। तो दैट इज वेयर यू पिक इट अप फ्रॉम। आपके जा रहे हैं, एक सेकेंड, मुझे एनी डस्ट है। एक दफ़ा, एक सेकंड मैं इसको बंद करूं, एक दफ़ा फिर पढ़िएगा। सॉरी, ये ज़रा जो है ना कंप्यूटर ही बेचारा, एनी डेस्क कितने चली गई जी, उत्थे Why is it so darn slow?
सॉरी, आई विल डू इट माय कंप्यूटर। मैं आपको जूम पे करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, एक सेकेंड, ताकि जूम वाले देख सकें लाइव स्ट्रीम पे। आई स्विच ओवर फ्रॉम बोर्ड टू जूम। हाउ डू आई डू दिस? ऑलराइट, वी गो टू दिस लेवल। ओके, नहीं मुझे इजी करना है, क्योंकि मैं फिर सारों को भी, सारे भी देख सकते हैं। एनी डेस्क, सो दें जी, नंबर 1 मोर टाइम जी। एक्सेप्ट करें जी। ओके, ये देखिए, ये आपका एरिया वाला 30 मिनट का बना हुआ है ऑलरेडी। इसको F करेंगे, ये आपका एरिया का चार्ट सब कुछ है, ठीक है। अगर आपने इसमें MES देखना है, अब जिस तरह मैंने आपसे कहा, ये जो लाइन जा रही है ना पिवट की, ये डॉटेड, इसको मैं सिर्फ कर रहा हूँ 30 से 60 मिनट्स पे, तो आपके पिवट्स भी करेक्ट हो जाएंगे। ये लाइंस हैं, ये जो लाइन ब्लैक जा रही है इसको हम पिवट कहते हैं, PP। हाँ जी, अब देखें आपके एरियाज R2, R1, S1, S2, S3, S4। तो जब पिवट की लाइन, जब मैंने आपको दिखाया है, ये सारी जूम पे रिकॉर्ड भी हो रही है, वैसे भी बता रहा हूँ कि पिवट का मतलब होता है बेस। बेस नहीं, नॉट प्राइस लाइन, वो ब्लैक लाइन है। ये सामने PP का वर्ड लिखा है। तो आपको चार्ट 60 मिनट का पढ़ना है, ये जो आपके लिए डिफ़ॉल्ट बना है, इसके अंदर ये मैं जब पिवट लिखता हूँ, ये PP वाला नंबर पढ़ता हूँ। जब मैं वैल्यू एरिया पढ़ता हूँ, तो ये जो येलो डॉट्स जा रहे हैं, ये वैल्यू एरिया कहलाता है। वैल्यू एरिया का टॉप, वैल्यू एरिया का बॉटम। तो ये है 70% ऑफ यस्टरडेज वॉल्यूम, डोंट वरी अबाउट इट दैट। उसके बाद अगर मैंने बाय करना, ये S1, ये S2, ये S3, ये S4। ऊपर अगर आप जाना चाहें, R1, R2, R3, R4 है ऊपर, वो ऊपर रेयरली जाती है, रेयरली। तो अगर मैं अब इसको जूम इन कर सकता हूँ, ये लें, जूम इन हो गया जी। अब इसको नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही रखेंगे कि इसको ये जूम इन, ठीक। बेस, बेस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वाइट लाइन इज द प्राइस लाइन, ये करंट प्राइस है। और आपका ये S1 है। देखिए, अगर कोई इंसान S1 के अंदर बैठा था लिमिट ऑर्डर लगा के, अगर उसने 61 पे 62 पे ऑर्डर लगाया था, कोई फायदा नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं पिक हुआ। लेकिन अगर वो 66 पे बैठे थे, तो वो ऑलरेडी प्राइस 66 से 75 पे जाके उनको प्रॉफिट दे चुकी है। तो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने आपके एवरी डे सुबह 9 बजे, कल ये चेंज हो जाएगा, परसों फिर चेंज हो जाएगा, फ्राइडे को चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैथ के साथ ये चेंज होते रहते हैं। यस, यस, इसमें से पढ़ता हूँ सारा कुछ। तो अब मैंने आपसे ये कहा था, अगर प्राइस R1 है ना, मैंने कहा यार, अगर R1 पे नंबर स्टार्ट होता है 7801 से 7805 तक, ठीक है, मैंने कहा $1 उससे नीचे से रिस्क स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, ये नहीं, R1 पे प्राइस नहीं है। मैंने जब आपको नंबर दिए थे, तो पहले मैंने ये पढ़ा ना, R1 का क्या नंबर है, 7801 से 7805। अब मैंने इसको जूम इन किया, मैंने फिर हिस्टोरिकल पढ़े। ये अब आप लोगों अभी टाइम लगेगा इसको पढ़ने के लिए। मैंने कहा कहाँ से मैं रिस्क लेता हूँ अपना, तो वहां से एंटर कर जाता हूँ। क्लोज किया, बहुत दूर नहीं, 1 पॉइंट दूर, मैंने कहा मैं एंटर करता हूँ। करेक्ट, प्लेस द सेल लिमिट, करेक्ट। अब होगा ये, अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ। अगर प्राइस आती है आपकी 7745, यहाँ पर
बाय लिमिट बनता है। यस, ये वाइट लाइन जब तक वहां नहीं पहुंचेगी मेरा ऑर्डर पिक नहीं होगा ना। यस, करंट प्राइस। यस, यू लुक एट द एक्चुअली वाइट लाइन देख लें आप इसको। मेरे लिए ज़रा तेज़ देखनी होती है तो मैं वाइट लाइन को नहीं देखता, मैं इसको न्यू जाके ऑर्डर टिकट खोल लेता हूँ। ये ऑर्डर टिकट लिखा हुआ है। ऑर्डर टिकट से होता है मुझे इंस्टेंटली ना फौरन किसी चार्ट खोले बगैर प्राइस पता लग जाती है। टिकर प्राइस है ना, तो ये ऑर्डर टिकट होता है। इसको भी मैंने सेव कर दिया आपके लिए। अब ये सामने खुला हुआ है ऑर्डर टिकट, तो कंट्रोल सेंटर न्यू ऑर्डर टिकट। तो बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं बिल्कुल लगा सकते हैं, हर चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें आपका यहाँ पर एटीएम लगी है, तो अगर प्राइस आती है 7745 पे, राइट क्लिक, बाय लिमिट, डन, ऑर्डर लग गया। नहीं, ऑर्डर टिकट पे नहीं लगता, इस पे ऑर्डर टिकट पे सिर्फ मुझे प्राइस चाहिए होती है, करंट प्राइस चाहिए होती है। देखिए ये प्राइस चल रही है 7775, आप ऑर्डर टिकट भी देख लें तो वही चल रही है वो। इसको अगर मैं एफ करके, ये देखें एग्जैक्टली सेम प्राइस चल रही है जो भी ऑर्डर टिकट की। नो माइक्रो, नो आई मीन कहते लाइफ से पढ़ा मैं आपकी नहीं है, आपकी इस चार्ट पे नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि कुछ चार्टों पे वाइट लाइन है, कुछ पे नहीं, आप ऐड कर सकते हैं। ये करंट प्राइस, वाइट लाइन इज द करंट प्राइस, करंट मार्केट लाइव प्राइस। अब मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ? एरिया वाले S2 का वेट कर रहे हैं। अब शाम को आए, कल आए, पर लेकिन कल तक तो नहीं आए, सुबह 9 बजे फिर आ जाएगी, सुबह 9 बजे। नहीं, वन डे, ठीक है। ठीक है, आ जाए, नहीं आई, नहीं ऐसा ही ऐसा। आप एटीएम्स के साथ जाएं, ये एटीएम के, फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। रेयरली ऐसा होता है कि बहुत तेज़ आ गई रात को तो सही, हमारे ऑर्डर लगे, हमें नींद नहीं हमें नींद नहीं आती। 23 आवर्स, हाँ एग्जैक्टली। कल सुबह 9 बजे नए एरियाज आ जाएंगे, आपका R1 बदल जाएगा, R2 बदल जाएगा, S1 S2 सब चेंज हो जाएंगे, फिर आप अपने पुराने ऑर्डर कैंसिल करके लगा सकते हैं। हाँ, कई देखें होता यह है कि नाइट को 9 PM इवनिंग के एरिया आ जाते हैं, ठीक है। आपने उसको खोला, आपने वहाँ ऑर्डर लगा दिए, स्टॉप लॉस लगा दिए, कई दफ़ा वो मछली पकड़ी होती है नेट के अंदर, कई दफ़ा नहीं आती, तो सुबह हम 9 o'clock ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, सुबह कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अब मैं अगले एरियाज का वेट कर रहा हूँ ना, अब अगले एरियाज का वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, इसकी वैलिडिटी है कल सुबह 9 बजे तक। तो अगर डैनियल भाई की आप ब्रीफ सुने तो वो ये कहते हैं एरियाज आर वैलिड अंटिल दे आर हिट और 24 आवर्स। इसका लॉस एंड टीपी और एटीएम के साथ सेट कर दें। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग माइक्रो वाले को तो लगाता ही नहीं है स्टॉप लॉस, वो कितना घूम जाएगी। माइक्रो MES पे, MNQ पे लगा देता हूँ, फिर भी MES पे ना वो लेट्स से ऑर्डर पिक हो गया 65, वो अगर गिरते गिरते मेरे अगेंस्ट 40 पॉइंट भी आ गई ना, तो मैं सिर्फ $200 माइनस पे हूँ, ठीक है। एक ES का तो डेफिनेट है ना, आपने कसम खाई हुई है, ES करना है तो स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन जब माइक्रो चल रहा होता है ना, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि अच्छा जी मैंने अगेंस्ट लगाई थी, मेरे अगेंस्ट आ गई है, हर $1 मूव होगा $5 मेरे खिलाफ है। या तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, अच्छा जी मैंने $200 लेना है, इससे आगे का नहीं लेना, और MES के अंदर $200 बहुत रेयरली आता है, $5 का एक है, 40 पॉइंट मूव होगी ना, फिर जाके मैं $200 नेगेटिव आएगा। तो हम कहते हैं ठीक है यार, अगर मैं 5 माइक्रो लगा रहा हूँ, यस आई विल पुट अ स्टॉप लॉस,
कि जी $300 का स्टॉप लॉस है, इट डजंट, बिकॉज 5 माइक्रो का मतलब है $25 का एक पॉइंट हो गया, और वो गई 25, एक पॉइंट गिर गई, 2 गिर गई, 10 गिर गई तो $250। अगर 15 पॉइंट हुई तो मेरा काम हो गया ख़राब। तो आप सिर्फ अगर 1 माइक्रो से जा रहे हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टॉप लॉस नीचे, बहुत नीचे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 मिनी से जा रहे हैं तो 5 पॉइंट जी, $250 के आगे कोई, यस 250 को अब आप इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि माइक्रो है या मिनी है। अब देखिए, अगर मिनी है तो आपको 5 पॉइंट आइए, $250 कितना बनता है, 250 बनता है ना, 25, हाँ 250। एमईएस के, तो अब आपका ये फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। अब आप 7745 पे कब आती है प्राइस, 1 घंटे में, 2 में, 3 में, 4 में, आप इसको रहने दे लगे, खुद ही बंद हो जाएंगे। ऑर्डर्स जो होते हैं आजकल खुद ही वो कैंसिल कर देते हैं, हर प्रॉप फॉर्म खुद कैंसिल कर रही है। नो जीरो, अब जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ऑर्डर पे ना कमीशन होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है, ना कोई लॉस होता है। तो अगर ऑर्डर लगा हुआ है, 5 बज गए हैं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, वो इसलिए कैंसिल करना होता है क्योंकि सुबह 9 बजे नए एरियाज आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि रात को 5 बजे वैसे ही ऑर्डर कैंसिल, अब ये ऑर्डर शाम को 5 बजे खुद ही कैंसिल हो जाएगा एज ए डे ट्रेडर। ऑर्डर लगे रहते हैं जी, कंप्यूटर वो उनको कुछ, कंप्यूटर बेशक बंद हो, अभी TPNSL लगा के प्लीज। नहीं देखो, मैं हाँ देखो, अगर ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ माइक्रो होल्ड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ को $2500 चाहिए है, तो मीनिंग के अकाउंट में आपके पास $500 है, तो वो आपको $50 चार्ज करेंगे ऑर्डर कैंसिल करने का, राइट। तो लाइव है ना, तो बंद कर दो यार लाइव के। जब आप करते हो फंडेड में कोई केयर नहीं है, वो उनका पैसा है, आप कैंसिल कर, वो आपके लिए कैंसिल कर देंगे। फंडेड में ये मसला नहीं। यस ठीक है, वो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसको वर्ड यूज होता है हेज। हेज ये होता है, आपने एक ऑर्डर लगाया था और आप उसके बारे में भूल गई, आप नैस्डैक कर रही थी लेकिन ईएस में वो ऑर्डर पिक हो गया, आप नैस्डैक में शॉर्ट में थी, आपका ऑर्डर जो ईएस का लगा हुआ था वो लॉन्ग में आ गया, ये एक दूसरे से हेज हो गया, आपको इंस्टेंट फंडेड वाले बंद कर देंगे। तो मीनिंग के जो फंडेड अकाउंट है ना, उसमें आप ये नहीं कर सकते, एक ही इंस्ट्रूमेंट करें और उसके अंदर देखें, वरना आपने नैस्डैक पे ऑर्डर लॉन्ग का लगाया, ईएस पे लगाया शॉर्ट का, उन्होंने उठा के, ठीक है वो करते रहें, एज लॉन्ग एज के आपको उस ऑर्डर का याद है कि वो गलती से पिक ना हो जाए। मीनिंग के मैंने आपने केयरलेसनेस दिखाई, ओवरबॉट ओवरसोल्ड करती रही, सेम टाइम ईएस हिट हो गया, तो आपका हेज हो जाएगा ना। तो यू हैव टू मेक, अब ना लगाएं ना ऑर्डर, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको ऐसे सिनेरियो को, हाँ नहीं कोई टाइम नहीं, अब तो सारों ने उठा दी है, एपेक्स में नहीं कहता, वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में एक ट्रेड जरूर डालें। नो आप इन आउट डन हाजिरी लगाएं कि मैं जिंदा हूं जी, मेरा अकाउंट जिंदा है, नहीं आ रही है। अगर हफ्ते में एक ट्रेड के बाद नोटिफिकेशन नहीं आती कि आप गए, आपने एक एमईएस पकड़ा, $2 माइनस या प्लस देखे और बंद कर दिया, तो आपका पूरा वीक कवर हो जाएगा। हाजिरी जरूर देनी है कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि उनको फीसें पड़ रही हैं आपकी। कीजिए, सारे क्लियर करने हैं,
वैल्यूएशन है ना, आपको उन्होंने केड़ा वाला डायरेक्ट महंगे हैं जी, महंगे, वो कैपिटल कॉस्ट है। हाँ जी, अगर वो आपके लिए कैंसिल करेंगे, हुआ ये आपने एक ऑर्डर लगा दिया, एक्चुअली ऑर्डर पे नहीं इतना मसला, पोजीशन पे मसला आ जाता है। पोजीशन में आपको पैसे, आपका एक ऑर्डर लगा और वो ऑर्डर पिक हो गया 449 पे, ठीक है, 5 बजे मार्केट बंद होनी थी, आपके पास थे $2100, उनको मार्जिन चाहिए था $2500, अब उन्होंने बाय फोर्स जाके बंद करनी है आपकी पोजीशन, प्रॉफिट में हो या लॉस में, उससे आपके $50 लेते हैं वो। तो अगर तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो कैंसिल हो जाता है, पोजीशन नहीं होनी चाहिए 449 पे, पोजीशन आप दोबारा खोलो 601 पे जाके खोलो, नो प्रॉब्लम। तो सेम नंबर आप 601 पे आके ले, यू आर गुड। कई दफा ऐसा होता है आप लोग डिस्कनेक्ट करो, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं। आप एक ऑर्डर लगाएं, अभी लगाएं, चलें एक ऑर्डर लगाएं, किसी जगह लगा दें, ठीक है, आप जाएं निंजा को डिस्कनेक्ट करें, सिर्फ कनेक्शन में जाएं और वहां पर आपका जो सिमुलेशन है ना उसको डिस्कनेक्ट करें। अब आपका ऑर्डर लगा हुआ है, आप इवन दो कंप्यूटर बंद कर दो, जो मर्जी कर दो, तो आपको उसको रिकनेक्ट करके प्लीज उसको करना पड़ता है, मेक श्योर। डिस्कनेक्ट करने से ऑर्डर नहीं कटता जी, और नहीं 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 नहीं, वो आउट नहीं करता जी। मेक श्योर करें कि ऑर्डर पे जाके कि आप जब एक्स दबाती है ना तो वो कहता है यू हैव सम पेंडिंग ऑर्डर, उधर पोजीशंस में ऑर्डर जाएं, आपकी नीचे जो टैब्स बनी हुई हैं ऑर्डर टैब्स में चले जाएं, पोजीशन में चले जाएं, मेक श्योर करें कि यू आर नॉट, इट्स नॉट स्ट्रेसफुल, इट्स जस्ट यू, दीज आर 60 मिनट का चार्ट आपका देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मीनिंग कि अगर तो 5 बज गए हैं, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो पोजीशन फिल नहीं हुई, आपका ऑर्डर मार्केट में नहीं गया, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लाइव अकाउंट में हैं और आपके पास इनफ पैसे होल्डिंग के लिए $50 चार्ज करेंगे। अगर ये फंडेड अकाउंट्स हैं तो कोई परवाह नहीं, वो आपकी पोजीशन वैसे ही फ्री में बंद कर देते हैं। मैं एग्जांपल फायर वाली दी थी ना, फायर है उसको अनअटेंडेड नहीं करना, उसको मीनिंग कि आपने नंबर लगाया, वो आके फिल हो गया, गुड, वो नहीं फिल हुआ कैंसिल कर दें। 7745 है जी, 40 एक्चुअली आइडियल नंबर है, 7740 हमें, लेकिन मैं एग्जांपल दी थी उसको आप नीचे ला सकती हैं, 7740 पे कर दें। यस 76 तो बहुत दूर है, $36 दूर है, जब तक $36 नीचे नहीं गिरेगी ऑर्डर नहीं पिक होगा। 10 घंटे भी लग सकते हैं, ट्रम्प की एक ट्वीट में 1 मिनट भी लग सकता है। ये देखिए, ये पता होता मैं गुर्दे बेच के सब कुछ लगा देता, मैं कहता हूँ भाई किडनी बेचो, ये एक चीज नहीं ना हमें पता कि कितनी देर बाद आनी है प्राइस। 7740 के या 41, जितना बॉटम रेंज ऑफ S2 हो जाए वो बेटर है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बाई का बनेगा जी, बाई का सपोर्ट है। सेल भी आप आर जोन में जाएंगी तो सेल लगेगा, व्हाइट लाइन से ऊपर सेल लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 60 मिनट चार्ट, अगेन 60 मिनट में दोबारा खोलता हूँ, हर चीज आपको 60 मिनट चार्ट से मिल जाती है। वहां पर एक वाइट, एक्चुअली उसका आसान तरीका बताऊं, चार्ट भी छोड़ें, कंट्रोल सेंटर ऑर्डर टिकट खोल लें, वहां पर हाई एंड लो लिखा आ जाता है, वो आपको पता लग जाता है कि मेरा हाई एंड लो क्या है। हाँ, वो तो इतना मुश्किल। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर करें, जतन के साथ नंबर पढ़ते जाए, हम लोग रोज इसी तरह। देखिए, मैंने आज बैठा हूं ना, मैंने आई डोंट नो आप उस वक्त आए थे कि नहीं, मैंने पिवट बोला था, वो तो लिया मैंने, नहीं देखिए 5 से वहीं से स्टार्ट होगा ना,
5 हुआ है तो 0 से तो ऊपर है ना। या तो आप ट्रेंड ट्रेड करें, दो चीजें हैं, या तो ट्रेंड है ईएस को बाय करते जाएं और सेल करते हैं, या मिड बैंड पकड़ लें स्कैल्पिंग के लिए या ट्रेंड। लेकिन अगर माइक्रो जाते हैं तो 5 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो माइक्रो से नहीं, आप एक माइक्रो से तो कुछ नहीं कमाएंगे, एक एमईएस से तो बूढ़े हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, वो जाती ही नहीं है $5। उसके लिए हम करते हैं 3 माइक्रो या 4 माइक्रो, तो $100 रोज का कमाना है। तो नहीं, जो क्वांटिटी 3 माइक्रो ना जाओगे तो कुछ पैसे आएंगे ना, एक नाल तो कुछ नहीं बनता, लेकिन एक महीने ना बहुत कुछ बन जाता है। तो नहीं, 1 पॉइंट ना कुछ ना होता सर, 3 एमईएस जाओ। हाँ, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का रखो, 3 एमईएस ला दियो। देखो किन्ने का लॉस लगेगा, 25 या 75। स्टॉप लॉस 250 का नहीं है, $75 का है। तो इधर ਤੁਹਾਨੂੰ आहिस्ता आहिस्ता गेम समझ आ जाएगी। मैं अभी कर है जी, बिल्कुल ट्रेंड और मिड बैंड सेम चीज़ है। तो उसके अंदर स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट का कहलाता है। 5 points 20 ticks is 20 ticks। क्वांटिटी वो जो लॉट साइज है ना, नहीं क्वांटिटी वो राइट साइड पे लिखी होती है। जी आयशा जी, हुआ ये कि 29,900 की बात कर रहे हैं, सॉरी गलती से ना 29,000 पे गई, दोबारा फिप बॉक्स में 1 मिनट में आ गई है, वहीं पर ले आए हैं सारी की सारी। नो प्रॉब्लम, है 3 माइक्रो रीजनेबल है यार। देखो 3 माइक्रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ। हाँ जी, कौन सा चार्ट कौन सा है, 15-10 या 30-20 या ओवरबॉट ओवरसोल्ड किस एमएनक्यू में या इसमें? ठीक है, आप उस चार्ट पे जाएं। नहीं, ये तो आपका एमईएस का चार्ट है, एमएनक्यू का डिफरेंट है। हाँ, इक्वल जो हाई है वो भी सपोर्ट के तौर पे चलेगा जी सुबह। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एमएनक्यू के लिए कंप्लीटली डिफरेंट वर्क स्पेस बनाएं। आप ये होता ही है कि अभी आपने एमएनक्यू बदला है ना, सारे चार्ट एमएनक्यू पे चले गए हैं, 60 मिनट भी, वो भी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, वो एमएनक्यू इतनी तेज चलती है कि आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको न्यू चार्ट्स बना लें विकास से कह के कि मुझे सिर्फ एमएनक्यू के सर्टेन चार्ट्स बना दो, क्योंकि आप सारे चार्ट्स अभी आपने स्विच कर लिए हैं ईएस से एमएनक्यू पे। अब वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग इतना नहीं है कि एमएनक्यू को कीप अप कर सके। तो मैं जनरली जो आपको इतने चार्ट्स खोल के देते हैं ना, वो हम देते हैं एमईएस के या ईएस के। एमएनक्यू के लिए अगर आपको चाहिए तो 1 या 2 चार्ट चाहिए। नहीं, आई नो, लेकिन एमएनक्यू में 30, 20, 15, 10 नहीं चलता। वो इतनी तेज है कि आपका कंप्यूटर फ्रीज कर जाएगा, फिर आपको प्राइस कुछ और नजर आएगी, चार्ट कुछ और नजर आएगा, आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो 60-40 का चार्ट ढूंढ लें, वो उसमें जरा तेज स्कैल्पिंग हो जाती है। मैं आपको एक वीडियो देता हूँ कि आपने खुद कैसे बनाना है, क्योंकि आई नो यू आर केपेबल, यू विल डू इट। उसमें एमएनक्यू पे बेटर स्ट्रैटेजीज हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड से। 1 मिनट का मिड बैंड है, 1 मिनट का इक्वल हाई, 1 मिनट का वीडियो मैं वहीं पे मैं बकायदा बना देता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1 सेकेंड, 1 मिनट की चार्ट आपको करवा देते हैं।
Here's the thing, you're trying to acquire everything on day one. और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है. दिस इज अ लाइफ टाइम थिंग, लिमिटेड डेज नहीं है. आप एक मेथड को तो मास्टर करें ना, एक मेथड पढ़ लें. नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये कि आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्यों करना चाह रहे हैं. उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी हाई नहीं है इस ट्रेड की. मिड बैंड है ना, 70 to 80% चलता है यस का, राइट. जो एरियाज हैं वो 85% चलते हैं. लेकिन जो आपका फिब है 1 मिनट का, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा पड़ी है. अच्छा चलता है, अच्छा चल जाता है. तो इसी क्योंकि आप अभी उसके लिए रेडी, यू हैव टू पिक वन मेथड. इस ऑफिस में, मेरी इस क्लासरूम में, ऑफिस में नहीं, मेरे जो प्राइमरी ट्रेड होगा ना आपके साथ, वो नंबर पे होगा. ठीक है, मैं आपको टीच सारा कुछ कर दूंगा, लेकिन आपको कह दूंगा भाई यहाँ से बाय सेल मैं कर रहा हूँ, आपने करना है, मेरे साथ आ जाओ. ठीक है, अभी मैं है वो दैट्स एन एरिया. अभी अगर किसी ने, अभी मैं आपको बताऊं, किसी ने बाय करना है ना, तो नैस्डैक का क्विक बाय नंबर है 29,750. नहीं ईएस तो बहुत नीचे है, 45 पे. 45 से पहले कोई नंबर नहीं है. 29,750 ये MNQ ना सर. हूँ मैं 5 बजे तक बैठा. मैं क्या E = MC² सारा सिखा दे. अब देखें, मैं आपको नेक्स्ट स्कैल्पिंग का ट्रेड दे दूं. 29,750 पे स्टॉप लॉस लगाएं 30 का, टीपी लगाएं 5 का. नहीं कोई गल नहीं. लेकिन जो MNQ करना चाहता है, मैं आपको बता दूं मैंने क्या नंबर क्यों पिक किया. मैं पहले उसके साथ आपको मैथ भी तो देना है ना. मैंने कोई आवाज से नहीं निकाला. वो MNQ का 1 मिनट का चार्ट है, वहां पर फिब का बॉक्स पड़ा है. बॉटम ऑफ दैट फिब आई विल गो बाय 5 पॉइंट बाय 30 पॉइंट स्टॉप लॉस. वो बनाना पड़ेगा. हाँ नहीं सर, इन्हों मैं गल है कि इन्हों वर्स थोड़ा दिन वेट कर लो. हाँ नहीं देखिए आपको डोंट वरी. हाँ जी ठीक है. हाँ जी नहीं, प्रॉफिट ਅਸੀਂ ਸਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ. ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਉੱਤੇ. नहीं वो ओपन खोलता नहीं है ट्रेड. वो खोलता ही नहीं है ट्रेड. उसको देना है ना दूर, कोई ना कोई ब्रैकेट देनी है आपको. जीरो नहीं लगा सकते आप, वो चलेगा ही नहीं. बाय आप अच्छा एक काम करें, सिम पे अभी आप लोग ऑर्डर लगाएं MNQ पे. हाँ चार्ट एरिया, जिस चार्ट पे एरियाज है ना, वहां पर एक ऑर्डर लगाएं. एक ATM बनाए पहले, 5.20 TP और 120 स्टॉप लॉस. ठीक नहीं ये तो आपका MES का है ना, लगाया ना, MNQ पे लगाया ना. लेकिन आप MNQ पे ऐसा करें कि ये 15, 10, 30, 20 बंद करें, वापस ES पे जाएं. मैं आपके दोबारा कोई चार्ट खुलवाता हूँ जो एक चार्ट सिर्फ MNQ के लिए होगा. ये सारे कैंसिल करें, निंजा बंद करें, नो करें. ऑर्डर कैंसिल करें, निंजा बंद करें, नो करें, ताकि आप वापस MES पे आए. सर 1 मिनट दा चार्ट देखो 240 होर इन्हों कोई चार्ट नहीं देना एक्सेप्ट 1 मिनट दा MNQ. नहीं निंजा रीस्टार्ट कर लें, दैट्स इट. यस
अब मैं अभी आपको बनवा के देता हूँ। ये बन गया आपका 240 240 ने 1 करता है ना, वो तो चना यार कुछ ऐसी इंडिकेटर कढ़ने ने, एक मैजिक बैंड करना है, एक लार्ज ट्रिगर करना है, फिर उन्हें सेव कर लेना। मैं आपको ये दोबारा करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप MNQ आपको तेज लगती है तो प्लीज ना करें, अभी आप ES के अंदर ही रहें, क्योंकि MNQ इतनी तेज है कि यू विल बी लाइक आप बट इट्स वर्थ वाचिंग। आपको पता होना चाहिए कि लार्ज ट्रिगर लाइन करता हूँ, उस तो वैल्यू एरिया कर दो, नहीं है उस तो पिवट कर दो, हाँ पिवट कर दो, उस तो बाद प्रायर वीक हाई लो कर दो। 3 इंडिकेटर चाहिए ने, बैकग्राउंड, MD है, टर्निंग पॉइंट ठीक है, ब्लैक कैंडल चाहिए, फेब हो गया, हाँ बैंड भी ठीक है, बस दैट्स इट। ये 1 मिनट का छोटा सा चार्ट बन गया। क्योंकि जो काम हम 15-10 और 30-20 पे ES पे करते हैं ना, वो हम MNQ पे नहीं कर सकते, वहां जरा स्पीड, हम उसको लेके जाते हैं मिनट वाले चार्ट में, 1 मिनट कैंडल। यस यस, तो आपका वहां का मिड बैंड, वहां का ओवरबॉट ओवरसोल्ड वो कर सकते हैं, लेकिन नॉट 30-20, नॉट 15-10। नहीं स्लोली स्लोली, डोंट वरी, इट्स ओके, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। नो प्रॉब्लम, सी यू टुमारो, आ जाओ जी, नो प्रॉब्लम। ओह ये मेरे से बड़ा सारा है, कई दफ़ा इतना फोमो मुझे क्रिएट कर देता है कि मैं डन हो गया हूँ, $1000 तुम पीछे रह गए हो। ये आप ठीक तो कर रही हैं उस कमरे में बैठे? नहीं, ये ना हो कि मेरे पास आके आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। अगर वहां बेटर है तो उधर ही बैठे रहें। ठीक है, फिर करती जाए ना, चेंज ना कीजिएगा बिहेवियर, ठीक है। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही बेसिकली, ओके। नहीं, सिर्फ 240 कलर, 240 कलर, हाँ जी। लेकिन ATM क्या है, 5 पॉइंट का TP, जा रहे हो जी? नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक, मैं बता 5 का TP, 30 का SL। अब मैं पॉइंट कहूँ ना तो आपने मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है, क्योंकि वो टिक्स है। तो 20 टिक्स का TP, 120 टिक का स्टॉप लॉस है। क्या जी? कितने पैसे भेजे? 3000 है ना। आप इसका गोल पता क्या होना चाहिए, रोज के $50 बस। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब $50 का मतलब है कि आप इस बैंक अकाउंट को ऑलमोस्ट टाइम्स 1% डेली डालेंगी, ऑलमोस्ट 1.5%। और 3000 का कौन देता है इतने पैसे? तो 20 भी डल गए ना, और क्या चाहिए? 20-30 नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको मिनी के साथ नहीं खेलना, और आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं 1% रोज का बनाऊं। 1% क्या बनता है? $30। $30 है ना। $30 अगर आप 20 दिन बन गए ना, ये $600 है। यही बनता है ना, 30 टाइम्स 20 में, मैथ तो नहीं। $600 $3000 के साथ। और अगर आप 30 ना मैं आपके बनवा सका तो समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर। तो $30 का मतलब है 4-5 पॉइंट माइक्रो के, 1-2 पॉइंट MES के, तो इट्स नॉट दैट। नहीं, हाँ कर सकते हैं, अलग-अलग करें, अभी कॉपियर ना करें। आपका हो गया? मैं आता हूँ, मैं अभी मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए तो मैं आपको 1 मिनट में स्कैल्पिंग कैसे करनी है मैं सारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम।
आप बोर्ड बैठे हैं, आपको मिड बैंड फिब का नहीं आ रहा, आप 1 मिनट MNQ तेज 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 कैसे कर सकते हैं? No, I wasn't here. मैं ऑनेस्टली पता क्या, मुझे वो रोल इतना चेंज कर रहे हैं क्योंकि मैं वैंकूवर भी जाना है, कैलगरी भी है, अब US में भी ऑफिस खुल रहा है, तो वो नहीं नो डोंट वरी, इट्स ओके, दैट्स व्हाई आई वुड कम बैक, आई एम हियर। आप 4 मिनी के साथ जा रही हैं, दैट्स डेंजरस, दैट्स सुसाइडल इन माय। मैं कभी 1 लाख के लाइव अकाउंट में कभी 4 मिनी ना करूं। मेरे आप लोगों की हिम्मत होती है, पता नहीं 2 कैसे कर देते हैं, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है उसको देख। इट्स वो अच्छा लगता है एकदम 400 500 800 1200 लेके, ओ वो इस साइड ये अगर ये मैं सर आ रहे हैं, निंजा स्टार्ट हो रहे हैं कि ATM कैसे बनाने। और आपने क्लासेस की बात की ना, ऑनेस्टली सिर्फ फ़र्क ये होता है ओनर और ऑपरेटर और एम्प्लॉय में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन जो एफर्ट डैनियल और मैं लगा सकते हैं ना, कोई और नहीं लगाएगा, ठीक है? उनको कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई शेयर नहीं है, तो वो लगाएंगे ज़रूर, जान मारते हैं, लेकिन वो होता है ना, उन्होंने अपना ट्रेड भी तो देखना है ना उसको उनको होता है कि जी सर मैं 9 बजे थे हूँ, नहीं देखो 9 तो 10 11 बाद ना वो मार्केट दा रिदम थले आ जाता, फिर इस सर कोई 11 के बजे तक ना इट्स जनरली हैज डाइड डाउन। एवरी डे बिकॉज देखें कुछ की रिफ्रेशिंग हो जाती है। कुछ लोग मुझे 5 साल से सुन रहे हैं तो उनको एक एक मेरा स्क्रिप्ट का वर्ड पता है, मैंने बोलना क्या है, राइट? एवरी डे एक कैसे, क्योंकि देखें कोई कब ज्वाइन कर रहा है, कोई कैसे ज्वाइन कर रहा है। हमारे ऑनलाइन लीज प्रोग्राम होता है, किसी का आज डे 1 है तो किसी का आज डे 90 है तो किसी का तो नहीं इवेंचुअली होगा ये, आपका पूरा जो करिकुलम है ना वो फिल हो जाएगा। आपको फिब देखिए, मैंने क्या बातें करनी है आप लोगों से, मैंने बात करनी है फिब क्या होता है, मैंने बात क्या करनी है ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या है, डाइवर्जेंस क्या है। अभी आप डे 1 में है ना, बहुत सारे ऐसे लोग सिर्फ इस नंबर का नंबर चाहते हैं कि अब मैंने हर चीज़ सीख ली है, तो आपका भी वो पूरा फुल हो जाएगा ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 100 दिन। तो 3 माह लगते हैं इस सॉफ्टवेयर को पॉलिश करते हुए, ठीक है? 3 माह में आप मुझे देखिए, मैंने स्टॉप सेल किया, बाय किया, और फिर 3 मंथ इज मोर देन एनफ फॉर। इसका ये नहीं, इसका टाइम से नहीं जाता, इसका ये होता है हाउ ऑफ्टन डू यू ओपन दिस एंड पुट योर ट्रेड्स इन। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड जाने चाहिए सिम के अंदर, उसको बाय सेल करके के लर्न के लिए। फॉरगेट के आप कहेंगे जी मैंने 6 मंथ तो लगा लिए लेकिन लैपटॉप ही 1 दिन खोला, तो वो मैटर नहीं करेगा। वो कुछ लोग 14, मेरे पास एक लड़का हैप्पी है, 18 घंटे दिन के चार्ट्स पढ़े हैं उसने, अब वो टीच करता है। तो वो भी ऐसे हैं क्रेजी फैनेटिक्स जो हर वक्त ट्राई ही करी जा रहे हैं, राइट? सो हाँ जी, कल फिर आ जाएगा जी, कल फिर दोबारा ES क्या है, MES क्या है, कैसे करना है, एरिया सब हर चीज़ एवरी डे है जी, अनलेस जिस दिन न्यूज़ होती है। अब वो एक दिन आएगा FOMC, उस दिन हम ज़रा थोड़ा सा ट्रेड डिफरेंट करें।
मेरा हाल हो है वो ਐਸ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਓ ਟ੍ਰਿनिटी ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ यार मैनू ਛੱਡ ਦਿਓ कितने एक ओके जी आपका हो गया हाँ जी ऑडियो आ गई नो प्रॉब्लम जी वेलकम बैक जी थैंक यू मैं आ रहा हूँ अब आपके लिए 1 मिनट अब जी आपको एटीएम समझ आ गई ठीक है अब आपने फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हम साथ साथ पता लग जाएंगी इस वाइट लाइन को डाइवर्जेंस लाइन कहते हैं ठीक है ये वाली जो वाइट लाइन आती है ना मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसको डाइवर्जेंस लाइन कहती है थोड़ा सा एडवांस हो गया डे 1 लेकिन लोग चले गए हैं ये प्राइस 7777 ये प्राइस से उससे ऊपर है मूविंग एवरेज और स्ट्रेंथ ऊपर नहीं गई इस वजह से ये मिड बैंड सेफ नहीं है तो अगर डाइवर्जेंस आ जाए तो उस मिड बैंड को आप स्किप कर सकते हैं तो मैं आपके लिए सेफेस्ट मिड बैंड ईएस में पता कौन सा है पहला वाला पहला रिवर्सल पहला पुल बैक पहला यू टर्न प्राइस गई मजेंटा से ग्रीन ये पहली दफ़ा मिड बैंड पे टच हुआ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है पहला मिड बैंड ईएस का फर्स्ट पुल बैक जैसे मैंने अभी कंप्यूटर खोला नहीं तो आपको ऑलरेडी नज़र आ जाएगा कि ये दूसरा मिड बैंड है देखें ये ग्रीन चल रहा है ना तो आप देख सकती हैं अच्छा प्राइस ने ऑलरेडी मिड बैंड पे टेस्ट किया है राइट तो आपको आप कहती हैं ये छोड़ दें ऊपर डाइवर्जेंस लाइन है मैं ये मिड बैंड मेरा फेल हो सकता है अगर आपने देखना है कि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी इसका मैथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैसे मैथ चलता है ट्रेड का आपने एक प्रोबेबिलिटी है कि मैंने मिड बैंड का ट्रेड लेना है हमने उसको एक एनालाइज किया हुआ है पिछले 5 साल में मैंने कि उसकी रेशो 70% है या 80% है इस ट्रेड के कामयाब होने की जो पहला मिड बैंड होता है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है कि प्राइस मजेंटा से ग्रीन हुई जब तक वो मिड बैंड पे आया तो ये शायद 80% पहला मिड बैंड चले या 85% चले जो दूसरी दफ़ा टच करेगा वो शायद 70 दफ़ा तीसरी दफ़ा और कम हो जाता है क्योंकि फिर इवेंचुअली अगर 30-20 ओवरबॉट हो रहा होता है तो 15-10 के अंदर आपने देखना है कि ये मेरा पहला मिड बैंड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वापस ऊपर जाने की ज़्यादा है अगर मजेंटा है अभी ये मजेंटा है लेकिन 30-20 मजेंटा नहीं हुआ ये इसको अभी कोई ट्रेड नहीं बनता जी आपका ना बाइंग का ना सेलिंग का दोनों मैच नहीं कर रहे ये मजेंटा कह रहा है ये बेरिश कह रहा है ये बुलिश कह रहा है आई एम नॉट हैप्पी जब तक दोनों चार्ट्स मेरा सेटअप नहीं बनेगा मैं यहाँ सेलिंग नहीं स्टार्ट कर रहा एक तो हो गया डाइवर्जन दैट इज अ हैजर्ड यस दैट्स अ हैजर्ड यस नॉट ट्रेड डू नॉट ट्रेड आप डाइवर्जन की लाइन देख लो भाग जाओ कि भाई ये ट्रेड में स्किप कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि Friday when I was losing हाँ there was many white lines which was crossing क्या and I had no idea हाँ, क्योंकि देखिए वो वाइट लाइन आ जाए तो उसमें आपका ट्रेड 50-50 हो जाता है प्रोबेबिलिटी 50% चांस है कि उसने मिड बैंड तोड़ देना है या 50% है कि डाइवर्जेंस फेल हो जाएगी जब भी आपका ट्रेड डाइवर्जेंस वर्सेस ट्रेंड आ जाएगा आप 50-50 हैं या डाइवर्जेंस चलेगी या ट्रेंड चलेगा ना दोनों नहीं चलती ये नहीं होता अब इस केस में डाइवर्जेंस कामयाब हो गई मिड बैंड फेल हो गया आपका चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना तो या डाइवर्जेंस चलेगी या मिड बैंड अब अगर यहाँ पर आप ग्रीन लगाते और वापस ऊपर चली गई तो डाइवर्जेंस फेल हुई है तो दोनों जब ये आ जाए तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होकर 50 पे चली जाती है डाइवर्जेंस आए सेफर साइड है पहला पुल बैक पकड़ें जी पहला पुल बैक पकड़ते जाएं pull back in the sense जो ऊपर की तरफ जाए करेक्ट मिड बैंड ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੰਨੇ ਸਟੈਪ सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਬਿਗਿਨਰ ਕਲਾਸ ਚਲੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 15-10 ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਓਕੇ
मैं आपकी ज़िंदगी आसान करने लगा हूँ। आप इधर भी देखोगे, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये क्या करना है। आप अपना सेटअप 30-20 पे ले आओ। आप तो काफ़ी अर्सा हो गया, 30-20 तो पता है ना हाँ जी, वो तो हमें। ठीक है, सारा पता है। पर मैं केवल देखे 15 तक तो ज़्यादा कम कर रहा है। नहीं 15-10 तेज आता है ना। 30-20 लेट ट्रेड आएगा, लेकिन ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज़रा ज़्यादा है। आप 15-10 का मिड बैंड की जगह अगर 30-20 का मिड बैंड लेना शुरू कर दें, ट्रेड कम होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। फिब भी 30-20 का अच्छा लगता है और आपका मिड बैंड भी अच्छा चलता है। तो देखिए अभी आप क्यों 15-10 यूज़ करते हैं, वो बार बार आ रहा है। वेव्स है ना, छोटी वेव्स हैं। 10 टिक्स के बाद मिड आ गया, फिर 10 के बाद डाइवर्जन आ गई, फिर फिब आ गया। अगर आप अपना सेटअप दूर ले जाएं और सिर्फ फोकस करें 30-20 में, ठीक है, आपका जो ट्रेड बनेगा वो बनता है इस बार के, अगर बुलिश है ना, इस बार के नीचे आने का वेट करें। जब तक वाइट लाइन उस बार के नीचे तक नहीं आ जाती ना ES और MES में, आपने ट्रेड में एंटर नहीं करना। हाँ आ रही है ना, यहां से बाई करें, यहां से बाई करें, यहां से बाई करें, यहां से बाई कर दिया जी मैंने। बाई एक बॉटम, बिल्कुल जो बॉटम है, आखिरी नंबर है। हाँ ये, हाँ ठीक है, 7773 मैंने बाई कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसका स्टॉप लॉस हमारे सिस्टम में सबसे छोटा है। प्रॉपर लाइन भी हुई है कि मिड बैंड की लाइन ਤੇ नहीं सर, मैं हो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30-20 ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 15-10 ਆਟੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ। कर ਤੁਸੀਂ मिड बैंड ही रहे हो, लेकिन आसान तरीके ना। 30-20 के नीचे आखिरी जो बार की आखिरी प्राइस है ना, वो आपकी एंट्री पॉइंट है और आपका स्टॉप लॉस है 15 टिक्स। बाय बाय, अगर ग्रीन है तो बाय, ग्रीन है तो बाय। अभी मैं ग्रीन में जा रहा हूँ, एक एक हल्का हल्का। तो 8.75 -5 3.75 टाइम्स 4, 15 टिक्स का स्टॉप लॉस लगाना है जी इस ट्रेड के अंदर। टीपी आप लगा सकते हैं 8 पॉइंट का, 8 टिक्स का टीपी। नाम ज़रा मुश्किल है, इसको हम टेक्निकल वर्ड कहते हैं रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस। RT लिख दें। स्टॉप है जी। हाँ नहीं 12 छोटा है, मुझे 3.75 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना जी हमने इस ट्रेड के अंदर। 15 टिक्स से ज़्यादा नहीं जाना। प्रॉफिट 8 का, प्रॉफिट ऊपर भी कर लें, प्रॉफिट 20 का लगा लें, 5 पॉइंट लगा लें इसको। सॉरी मैंने 8 ज़्यादा कर दिया, 8 तो सॉरी 8 कम कर दिया। यहाँ 20 टिक्स लगाएं, 20 टिक्स। ये ATM सेट करें जी। Okay, so 15 SL, Yes. 20 TP. Correct. And RT is the name and नेम 20 ना is होता है the time. रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस। यस, अगर आपको 15 है नहीं स्टॉप लॉस हो गया थे स्टॉप, हाँ जी स्टॉप लॉस ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ अगर एक ES भी ला रहे हो 3.7 टाइम्स टाइप बता 187.50 18.75 MES 18.75 उधर 187.50। देखो उधर असी लाने हैं $250, इधर असी लाने हैं घट 187.50। एक अगर MES कर रहे हैं तो 3 कर लेना, और अगर ES कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा ना जाएं प्लीज़। बाय द वे, जिसने भी 250 वाला MNQ का ट्रेड था ना, मैंने आपको नंबर दिया था, वो डन हो गया, 5 पॉइंट बन चुके हैं। 750 हैं,
मैंने आपको लोगों को 750 का था, $29,000, 29,750 का ट्रेड था, वो 750 वो हो चुका है ट्रेड MNQ का। और उसकी भी रीज़न थी, जिसने भी मुझे लिखा था फिब का, फिब नहीं चलिया इतने पूरा नहीं भरिया, इतने बनता है ना। तो स्टॉप लॉस इस ट्रेड का है। तो अगर आप लोगों को डर लगता है कि मैंने 15-10 मुश्किल है या मेरे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो आप 30-20 पे आ जाओ और ख़ाली उस पर ट्रेड करो और ख़ाली ये वाला ट्रेड करो। हाँ, नहीं वो बिल्कुल बॉटम ऑफ दिस बार आ जाए, इस तक, ये जो बार की है ना, इसके बॉटम तक आई थी, लेकिन अभी निकल चुकी है वो नीचे नहीं। हाँ एग्जैक्टली। अब तो लेट हो गया, वो बॉटम नहीं दे जाता है, लेकिन असी पहली अटैम्प्ट लेनी होती है। यस 30-20 बॉटम ऑफ द बार या टॉप पे, अगर मैजेंटा है तो टॉप पे। हाँ जी यस। सर वो अपनी अपनी स्टाइल है। मैं तो देखो कुछ लोग उसनू देख लेंदे है कि एक बारी चला गया थले तो स्टॉप लॉस ना हिट होवे, वो जरा एक्स्ट्रा एश्योरेंस ले लेंदे, लेकिन कई बारी वो खाली मिड नू टेस्ट करता है तो वापस चला जाता है। हुण देखो केड़ा पिक करोगे, देखो या आप कंजर्वेटिव करेंगे या जरा एग्रेसिव करेंगे ना। तो जेड़ा टेस्ट कर रहा है, तो इस ट्रेड में आपका हमारे अगर 12 किस्म के सिस्टम में मेथड्स है ना, ये सबसे लोएस्ट है, इससे नीचे स्टॉप लॉस नहीं है इन 3.75 या 15। अगर नेक्स्ट मैंने उससे बड़ा आ जाता है 20 टिक्स का, जो हमने 15-10 का मिड बैंड किया था। तो अगर किसी भी ट्रेड का स्टॉप लॉस सबसे कम है वो इस ट्रेड का, आप छोड़ दो 15-10। अगर घबराहट होती है, अगर आपको श्योर हो यू नो हाउ टू ट्रेड 15-10, नो प्रॉब्लम। अगर घबराहट होती है, फिर 30-20 का बॉटम और 30-20 का टॉप सेल करी जाओ। मैजेंटा है सेल करी जाओ, ग्रीन है बाई करी जाओ, बॉटम से टॉप से, बॉटम से टॉप से। अब मैं आपके पास आता हूँ 1 मिनट का। ES में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? फिर मैं MN की तरफ आता हूँ। ES में कोई क्वेश्चन हो? MES, अच्छा MES कर रहे हो तो 3 क्वांटिटी सेव कर लो। 100 तो सर हाँ, कि स्टॉप लॉस की मेथड वही है। स्टॉप लॉस आप वहाँ 10 MES कर लो, 10 MN की 10 वो कर लो, ES कर लो। सर स्टॉप लॉस बड़े फिक्स्ड होते हैं। सर एक दफा आपका सुपर एरिया पे सर एक मैसेज आया था ब्लैक कैंडल्स का, बिल्कुल वो मैंने फिल किया, ठीक है। मगर कोई अच्छा मैं आपको एक एक्सपर्टाइट करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अगर ब्लैक कैंडल की एक ATM होती है, अगर आपने 1 मिनट का फिब लिया है तो यू गाइस गॉट इट। यार जी ओके नो प्रॉब्लम जी, ठीक है ओके। अब आप लोगों को और तेज़ कर देते हैं एक ही दिन में। और मेरा लंच नहीं होता जी, मैं 1 मील अ डे पे हूँ। आप लोग पे चले जाओ, मैं वापस नहीं तो लंच करे हो ब्रेक कर लो। नहीं नॉलेज पता नहीं है ना कि ओवरलोड हो जाए, सर्किट ही ब्रेक हो जाए और एको दिन सारा नहीं ना सीख लेना, पता लगे क्या। और नहीं मैं ये 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ, कोई सुनता है ही नहीं है। पता नहीं माइक का क्या हुआ है। ओके बैटरीज, पेशेंस कहाँ से आता है? मैंने कस्टमर सर्विस बहुत की हुई है।
जब अगर सीमा जी बैठी हों नोवा स्कोशिया और कह रही हों कि मेरे मॉडेम की क्यों नहीं चल रहा, हाँ मैं 96 97 में तो हम 56 मॉडेम को इंस्टॉल करवाते थे, तो मैंने काम किया हुआ स्प्रिंट कनाडा के लिए। तो उसमें फिर होता ये था कि जस्ट आई हैव टू टेल यू ओवर द फ़ोन कि शायद आपने फ़ोन लाइन में लगाया हुआ या लाइन में, तो वो पेशेंस जो आ जाता है ना, वो फिर आपको कुछ भी लाइक कर लो या क्या कर, बिकॉज बैक देन देयर वाज नो एनी डेस्क, देयर इज नो नथिंग, डायल अप के ऊपर आप कर रहे हो, आप मैनुअल पढ़ रहे हो कि अगला क्या हो सकता है, तो उफ मैन। अब देखें टेलस ने क्या किया, मैं आपको मजे की, मेरे घर वो डोर टू डोर आए, मैंने कहा आपके पास 8 लाइनें हैं रॉजर पे, हम आपको स्विच करते हैं टेलस पे, वेरी गुड, बड़ा रीजनेबल। सो दे केम इन, दे डिड इट। अब मेरे घर में 8 लोग रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चे और सारा कुछ, हमारे पास 8 सिमें हैं, 8 तो नहीं है 6 हैं। 2 फ़ोन प्रेजेंट थे तो उसने सिम बदली, मैं चला गया 65 पर मंथ से 55 पे अनलिमिटेड, वेरी गुड प्लान। मैंने कहा यार बचा सकते हैं $100 6 लाइनों पे। जो बकाया की 4 लाइनें थी वो सिम नहीं स्वाप हुए, नो प्रॉब्लम, नहीं हुए। अब इधर रॉजर्स ने भी इन 4 की मुझे चार्ज करता रहा और टेलस साहब भी चार्ज करते रहे। जी अब ये मसला हल करवाना था, क्योंकि मेरे बिल नहीं पे हुआ इन 4 लाइनों का, जो मेरे पास थी नहीं, उधर मैं पे कर रहा हूँ। अब ये कस्टमर सर्विस, अब मैं एंग्री कस्टमर, मेरे घर कोई आ गया, मेरी लाइन, अब वो मैं जो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं ना, कूडोस, नहीं, देखिए बात ये है कि उनको गालियां भी सुननी पड़ती हैं, हर चीज़। अब मैं तो गुस्से में हूँ, मेरी लाइन क्यों बंद कर दी, ये कर दो। तो इट इज़ ए डिफ़िकल्ट जॉब पोजीशन टू बी इन। आजकल तो वो कह देते हैं अगर आप हरास करोगे हम बंद कर देंगे, बैक इन द डे तो वो कहते थे भाई तुमने कस्टमर लूज़ हुआ, तुम आखिरी जॉब है भाई, तो कस्टमर तो वो जब आप इतना ज़्यादा इस तरह की जॉब में से गुजर जाओ ना, आप लोग तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ES क्या है, MES क्या है, इट्स ये द टॉर्चर हमने वो स्प्रिंट कनाडा ने दिया हुआ है। नंबर ले लें, 30,000 सही है, ठीक है ना, 30,000 सही है, आ गया तो लगा दें ऑर्डर, जिधर जाए मर्जी, ऊपर जा रहा है सर वापस मिड बैंड पे आ गया मैं। अच्छा मेरी बात सुन, मैं आपको आज फिर आपको स्कैल्प सिखा देता हूँ, 5 मिनट दें, आप एरिया से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एरिया दूर दूर आता है ना, आपने लेने ही 5 पॉइंट होते हैं, एरिया में भी तो आप 5 ही ले चले। नॉर्मली मैं 10 पॉइंट निकालता हूं, लेकिन आज बहुत डर लग रहा है। किस चीज़ से? नहीं वो कोशिश कर रहा था कि ऊपर ही खींच रहा था। चले मैं आपको स्कैल्प दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट नैस्डैक का, और आप तेज तेज से निकाल लोगे, ठीक है। ओके जी, खोलें जी सिस्टम, खोलें। हाँ, ताकि आपको मेरी डिपेंडेंस ना, होता ये है कि अगर मेरा एरिया नहीं आ रहा ना तो मैं फिब से निकाल लूँगा, मैंने तो अपनी दिहाड़ी लगा के जानी है ना, तो आप कहोगे यार ये क्या बात है, मैं कर रहा हूँ ना, नो प्रॉब्लम। इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट्स का, कोई मजाक नहीं है भाई के 30, तो आपको 2 ये, अच्छा ये क्रेडिट सारा इस लड़के को जाता है, मैं इस चार्ट के हक में नहीं था, तो इसने पढ़ के ना, उसने कहा यार मैं इसकी रेशो निकाली है, बन जाते हैं, तो ये जतन जी का ट्रेड है। हाँ नहीं बैठते भी तो ये 10-10 घंटे हैं। ओ अच्छा मैं गया ना, ऐ भी छड़ गया, ओके तो यार मैं नहीं आ रहा यार, नहीं आया, आई नो, मैं पीछे आज देखो मैं नहीं तो ਐਵੇਂ ट्रेड कर ही जाने ना, नहीं ट्रेड फालतू। ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। अब 1 मिनट का मिड बैंड, 2 टिक से रह गया, खोल लिया जी, ओके जी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, देखें बॉक्स तो नजर आएगा ना आपको, 1 मिनट के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड सिखाने हैं मैंने, ओके। आप ऐसे करें, सबसे पहले जब आपने अपने ये जाएं वर्क स्पेसेस और इसको करें क्लोज, ये देखें कंट्रोल सेंटर, वर्क स्पेस को क्लोज करें, नहीं कंट्रोल सेंटर तो नज़र आ रहा है ना, ये कंट्रोल सेंटर है,
ये है कंट्रोल सेंटर, इसको कहते हैं। कंट्रोल सेंटर है जिसमें अपने अकाउंट हाँ हाँ, ये लिखा है वर्क स्पेसेस, इसको करें क्लोज। क्लोज का बटन रिमूव ना कर दीजिएगा, उल्टा डैनियल भाई नाराज हो जाएंगे। अलग वर्कस्पेस में अलग अलग बनावांगे 1 मिनट दी स्कैल्पिंग वास्ते। क्लोज कर दा क्लोज कर दी क्लोज कर दो, सेव ना करना। नहीं नहीं, ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है जी, आप जाएं वर्क स्पेसेस, ये एक कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है ना, जिसके सामने ग्रीन बना, इसके सामने क्लोज लिखा हुआ है क्लोज, एक ग्रीन के सामने क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ नो करें, नो करें। वर्क स्पेस यस, में आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्लोज और कुछ और भी लिखा हुआ है, ग्रीन में लिखा हुआ है। क्लोज कर दे क्लोज कर दें किन किन क्लोज करना वर्क स्पेस को। यू वांट टू सेव नो, डोंट सेव इट। अब क्या है सर, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੋ ਚਾर्ट, ਇੱਕ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਿਵਟ ਆ ਜਾਣ, R1 R2 आ जान, ਤੇ दूसरा चार्ट 1 मिनट का स्कैल्पिंग। ठीक है, अब हम यहाँ दो चार्ट बनाएंगे। इसका तरीका ये है, आप जाएं न्यू, लिखो ना जी अच्छी करी जाओ हाँ हाँ साथ साथ करते जाए ना, दस रहे हो देखो हाँ न्यू, इसको फॉलो करके न्यू पे जाएं। अब सारे जब तक सिंक नहीं होंगे मैं नहीं करूँगा। ठीक है, न्यू चार्ट पे क्लिक करें। ठीक है, ऊपर इंस्ट्रूमेंट करें MNQ, आप भी बना रहे हो ना, आपका बना हुआ है। ठीक है, मैं आता हूँ, पहले इनका बनवा लो। MNQ पकड़ा, माइक्रोज एंड MNQ। अच्छा, यहाँ पर लिखें, जहाँ लिखा है ना मिनट, तो आपका नज़र आना चाहिए लास्ट मिनट 60। MNQ कर गया तो फोन कर दिया एग्जैक्टली, MNQ करो, NU 60 करो, ये वैल्यू में 60। हाँ, और नीचे वैल्यू पे करें 60। इंस्ट्रूमेंट MNQ इधरों देखी जाओ ना, ओके ऐड हो गया MNQ आ गया, प्राइस बेस्ड ऑन लास्ट 60। Yep. तो मैं इधर भी साथ साथ करता हूँ जूम के ऊपर। तो टेम्पलेट केड़ी लानी है 60 पे हाँ जी, टेम्पलेट इतने कुछ नहीं लाना। ओके ठीक है, बदले कर एनो 60 करके ओके करो। 5 दिन का डेटा बहुत है, 5 days इज ओके। 65 days and then आपका चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। कॉपी करो सर। हाँ जी, इस तरह का दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे तो आगे जो मेरे नेक्स्ट टाइम की बात अप्लाई करो, इदा का दिखना चाहिए चार्ट जो खुला है ना। ठीक है, अब इस पर राइट क्लिक करें और टेम्पलेट्स पे जाएं और लोड टेम्पलेट्स। ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है 240 कलर। यस, आपका चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, एरिया बना हाँ यही डलवाने हैं, मैंने एरिया डलवाने हैं। नहीं अभी नहीं, अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें निकलवानी है और कुछ ऐड करवानी है। बहुत पीछे चला गया मैंने आपने उसके बाद कंप्यूटर शट डाउन हो गया कोई बात नहीं, आप आएंगे मैं करवा देता हूँ। नवी वर्क स्पेस के बाद 60 मिनट के बाद आपने ये यहाँ देखें, राइट क्लिक किया राइट क्लिक करके और ये लिखा है टेम्पलेट्स और लोड। सर एक क्वेश्चन है, आपका रूबी पैलेस में है आई थिंक सो। नहीं मैंने फिक्स कर दिया 100%। हाँ हाँ, आपका अकाउंट तो आपके पास है या फिर किसी और? घर के किसी और के। तो अगर मैं कनेक्ट करूँ और कुछ डिटेल्स पूछूँ तो वो दे देंगे, नो प्रॉब्लम, so I'll get the input. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद
आप आओगे डन? यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अच्छा, इसको बड़ा करें, आपने टेम्पलेट्स लोड कर ली, यहाँ तक पहुँच गए। अब राइट क्लिक करें और इसको जाएं इंडिकेटर्स पे। यहाँ से हम कुछ चीज़ें अब निकाल देंगे। आप निकाल दें मैजिक बैंड को, हाँ ये निकाल दें बस, ठीक। हाँ एम मैजिक बैंड नज़र आएगा आपको। नहीं अभी नहीं, अभी एरिया पर है ना, हाँ मैं आगे आ रहा हूँ अगला, ठीक है। आप मैजिक बैंड निकाल दिया। अच्छा एमडी मैजिक बैंड है, राइट क्लिक करके नीचे वाली रो में, निचले, ये देखिए इधर देखिएगा, राइट क्लिक, इंडिकेटर, ये यहाँ पर इस जगह पे लिखा हुआ है एमडी मैजिक बैंड, खाली मैजिक बैंड, तो ऐड की करना है एरिया। उसको रिमूव करना, जी जी। अब आप लोगों ने एक इंडिकेटर ऐड करना है, उसका नाम है सुपर एरियाज एल्गो। एल्गो ये नाम है, ये नीचे सबसे नीचे जो लिखा हुआ है सुपर एरियाज एल्गो.com। इसको ऊपर से सर्च करें और उसको डबल क्लिक करके ऐड कर लें। ओके वहाँ पर नहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं, यहाँ इंडिकेटर आप दोबारा जाएं, मैं राइट क्लिक, इंडिकेटर्स, ओके। अब ऊपर लिखा हुआ है अवेलेबल, उस पर सर्च करें सुपर एरियाज। आपको नजर आएगा, इसका नाम है सुपर एरियाज है। नहीं सॉरी नॉट इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटर्स। आपने डाल दिया ऑलरेडी, हो गया आपका ठीक है। आपने कुछ निकालने नहीं कुछ भी आपने देखे, राइट क्लिक, इंडिकेटर्स, हमने मैजिक बैंड निकाला है आपने। नहीं आपने पहले वर्क स्पेस बंद करके किया है ना सारा, ठीक है। मुझे चाहिए वैल्यू एरिया को रिमूव करना है। अच्छा ये आपने इधर रखा हुआ है, माउस उल्टे किया हुआ बटन, अच्छा। और मैजिक बैंड कहाँ है, पिवट्स नहीं, सब कुछ बाकी बिल्कुल सही है। अच्छा एक अगर वैल्यू एरिया आ रही है ना, वो भी कर देना। अगर दो चीज़ें निकालनी होती है, एक मैजिक और एक वैल्यू, आपका 100% सही है। ऐसे ये आपका चार्ट ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे दिख रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू एरिया भी है कटना है तो दो हमने इंडिकेटर निकाल दिए हैं, मैजिक बैंड और वैल्यू एरिया के, ठीक है। और एक हमने ऐड कर दिया है वो सुपर एरियाज का। तो मैं अब यहाँ पर अपना यस ओके। अब आप सारों का चार्ट इस तरह दिख रहा है। नहीं मैंने सिर्फ इसको यूं किया हुआ है, इसको पकड़ के एक्सपेंड किया हुआ है। तो आप भी इसको करके अगर इफ़ यू वांट टू सी मोर, नो प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड द टाइम एंड मूव अप एंड डाउन, तो कैंडल का साइज ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी। अच्छा मैं एक काम और करता सर, जड़ा इंडिकेटर है ना सुपर एरियाज वाला, ऑटो स्केल नू बंद कर देता है, वो वरना चार्ट नू ना स्क्वीज कर देता है। ऑटो स्केल ऑफ कर देना। तो आप भी जाएं, सुपर एरियाज का वाला जो इंडिकेटर है ना, इसके अंदर जाएं, ये जो कन्फिगर्ड है इसमें सुपर एरियाज के इंडिकेटर को ऑटो स्केल बंद कर दीजिए।
इंस्ट्रूमेंट में नहीं, इंडिकेटर्स, राइट क्लिक, इंडिकेटर्स, कॉन्फ़िगर्ड, तुसी भी कर दो, राइट क्लिक, नहीं नहीं, सुपर एरियाज का जो आल्गो है उस पे ऑटो स्केल को अनचेक कर दे ताकि वो आपका चार्ट स्क्वीज ना कर दे। है नहीं क्या चीज? ये एक्सक्यूज हुआ हुआ है, इसको स्पेंड जल्दी करनी है। तो नीचे ऊपर कर, नीचे ऊपर कर दो, प्राइस को आगे पीछे कर दो। तो फिर ऐसे तो मतलब वो अपना एरो आ जाता है। सर ऑटो एरिया को क्लिक करना है या अनक्लिक करना है? अनक्लिक, अनक्लिक, पहले भी था सर, अनक्लिक ही था ऑटो स्केल को, राइट? हाँ, सुपर एरियाज वाले को, सिर्फ इस इंडिकेटर को जो सबसे आखिरी वाला है, जो आपने ये देखें, राइट क्लिक, मैं राइट क्लिक पहुंच गई। इंडिकेटर्स, हाँ जी, ये जो सबसे नीचे वाला ये वाला इंडिकेटर है ना, सुपर एरियाज वाला, इसका ऑटो स्केल बंद करना, ऑटो स्केल बंद करना सिर्फ। अच्छा, ये सारे इंडिकेटर्स है ना, इसमें मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट किया और इसका ऑटो स्केल बंद किया। सर है कीजिए, नहीं नहीं, ऐसे नू असी नहीं, इनू कुछ नहीं करना, असी ऐसे नू डुप्लीकेट कवांगे एक होर, नहीं नहीं, लेकिन दूसरे दे विच सिर्फ डे 1 कर देना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डे राइट क्लिक करके 1 कर देना, क्योंकि वरना वो पूरी कैंडल 1 मिनट वाली 5 दिन वाली चलाएगा। सर ये MNQ है, ये MNQ है जी। सर इसको स्पेंड कैसे? क्या चीज़? मैं इसको राइट नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिकेटर्स। अच्छा, अब मैं जाऊंगा, ये आपको इसमें से रिमूव करना है, ये वाला जाके और इसको ऑटो स्केल बंद कर दें तो वो एक्सपैंड हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब ये आपने 1 मिनट का बनाया है, या हाँ जी, आपका बिल्कुल सही है, इसको जाके बिल्कुल सही है। ओके कर दो। अच्छा, आपने ना वो ES वाली ही को मैं अंदर सारा बना लिया है, हमने इसकी बंद करनी है, ये आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाह रहा था आप इसको बंद करें, वर्क स्पेस को नो करें और नया सारा कुछ करें। अब करें न्यू चार्ट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं उसी ES की वर्क स्पेस जो डैनियल भाई की है ना, उसको नहीं हमने छेड़ना। ठीक है, अगर ES करना है हम ES करने चले जाएंगे, नास्डैक करना है तो इधर आ जाएंगे, तो ये फ़र्क है। मैं आ रहा हूँ आपके लिए। तो डेटा ये अभी, हाँ उन्होंने वो एक स्टेप मिस कर दिया था, ठीक है, इसको मैं करता हूँ 60 मिनट पे। तो ये अब आपका आ गया 60 मिनट का चार्ट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, डुप्लीकेट इन द न्यू विंडो और इसको बना देंगे 1 मिनट का डेटा सीरीज करके 1 डे करके। तो 1 मिनट का मुझे चाहिए सिर्फ 1 दिन का डेटा। तो ये आ गया 1 मिनट का और ये आ गया 60 मिनट का। डन। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव एस NQ। अब आपकी 2 वर्क स्पेसेस हैं, ES डैनियल भाई वाली ओरिजिनल मिड बैंड सब कुछ, और ये MNQ स्कैल्पिंग के लिए। इसमें मुझे एरिया चाहिए और इसमें मुझे चाहिए, मैं अभी आया एक से, अभी मैं 60 वाले बनवा देता हूँ। आपका भी बन गया, आपका भी हो गया, आपका मैं 0 से। अच्छा, ये जो 1 मिनट वाला है, अच्छा आप उसको डुप्लीकेट करके 1 मिनट में सिर्फ सीरीज़ में 1 दिन का डेटा चाहिए, आपका डन है जी। मैं अभी करवा देता हूँ सर। अच्छा, मैं अगेन एक चीज़ करूँगा, we're gonna close this and not save it, क्योंकि मैं ES को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। अब यहाँ से दोबारा करेंगे, मैं दोनों ES को और MNQ को मैं एक जगह नहीं लाना चाह रहा, तो यहाँ करूँगा 60 मिनट। ओके,
और अपनी ट्रेलिंग भी वापस निकालनी थी ना, आउट ऑफ ट्रेल। नहीं वो अब इस चार्ट पे नहीं आएगी। टेम्पलेट्स, लोड, 240 कलर, ये आपका आ गया। इसके अंदर हम डाल देंगे इंडिकेटर सुपर एरियाज के आल्गो का, ताकि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल दें। और इसमें मुझे मैजिक बैंड नहीं चाहिए, इसका मुझे चाहिए स्केल 1, यहाँ सिर्फ बड़ा। आपका डन, सेव वर्क्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नवी वर्कस्पेस बनानी है ना। हाँ हाँ, मतलब पुरानी टच नहीं करनी। नहीं पुरानी MD ES फास्ट वो ES के लिए, उसका कोई इस वर्क स्पेस जब आप नवी चार्ट बनाए ना। हाँ नवी MD फाइल बनानी। ये बनाएं, इसको हमने जाना है। ये देखिए सर, ये आ गया 60 मिनट, ये आ गया 1 मिनट, ठीक है। इसको सेट करके अब मैं क्या करूँगा, वर्क स्पेस सेव एज MNQ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ES ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ES ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, वो सारा कुछ ESL आ जाएगा, 15, 10, 30, 20 डॉम सब कुछ, ठीक है। वो फिर डैनियल भाई और मेरी वो कॉन्फ्लिक्ट स्पेसेस में नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें देखेंगे, इसमें MNQ कर देंगी, स्लो हो जाएगा काम। अब इन्होंने करना है जी, मैंने MNQ की तरफ जाना है, तो हम लोग वर्क स्पेस उठाएंगे और हम MNQ की तरफ। इसमें मैंने ऑर्डर लगाया हुआ था, तो वो क्या हुआ? नहीं वो ऑर्डर लगा हुआ है, उसमें आपको जाके ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। ये को ऑर्डर गए तो स्टेट में आपका ऑर्डर नहीं वो कैंसिल हो चुका है, खुद ही नहीं, खुद ही नहीं होता है, आपने कैंसिल किया है, क्योंकि अभी कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ। किस अकाउंट पे, सिम पे? इस पे था, हाँ जी, सिम या डेमो पे? नहीं, सिम पे था। सिम पे देख लेते हैं। इस पे था, एरियाज पे नहीं नज़र आ रहा मुझे। ओके, चार्ट ट्रेडर मैं देखता हूँ, सिम पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं नज़र आ रहा मुझे। इंटरेस्टिंग। I don't see any order। NQ पे नहीं, आप लोग ये एक सेकेंड, दोबारा इसको ऑन करता हूँ। सिम ES के नहीं, कोई ऑर्डर नहीं लगा। ES पे था, विच इज़ ओके। NQ का कोई ताल्लुक नहीं है, NQ का कोई ताल्लुक नहीं है, NQ कुछ नहीं करना हमने। आपका NQ, वी डोंट वांट NQ एनीवेयर हियर। सो अब अगर जो भी NQ का काम करना है वो इस वर्क स्पेस पे होगा। ये MNQ लिखा है, MNQ किया तो आपके इस तरह शुरू होगा, ठीक है। तो ये इस पे जो भी ऑर्डर होंगे, वो NQ है, ये NQ है, नहीं वो ES है, वो ES है, ये MNQ। तो उधर भी मैं जाके आपका MES पे लेके जा रहा हूँ, ताकि और अगर आपका जब ट्रेडिंग लाइव शुरू हो तो आप MES पे प्रैक्टिस करें। तो इसको मैं स्विच करके MES पे ला रहा हूँ, वो माइक्रो वर्जन है उसका, दैट्स ऑल। तो ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, बिल्कुल जी फाइल। अब ये प्योर MES है, वो प्योर MNQ है। तो जब आपने MES करना है तो इधर, और MNQ इधर। तो की चीज़ नहीं बस सेव एज कर दो, उससे नवी बन रही है ना, अनटाइटल्ड दिन आते हैं आपका वर्क स्पेसेस। तो अब बेसिकली अगर आपने वर्क स्पेसेस का मतलब है मेरा ये डेस्कटॉप, इस पे सारा काम MES पे हो रहा है, अब मैं इधर चला जाऊंगा तो सारा काम MNQ पे हो गया जी। अच्छा आ रहा है आपकी तरफ है? नहीं अभी हमने सेट करनी है, अभी सब बनानी है इसकी। ये मिड बैंड 1 मिनट का बड़ा ही प्यारा चला जी। हाँ वर्क स्पेस सेव एज, सेव एज ਇਹਦਾ ਨਾਂ MNQ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਭਾਈ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ MNQ ਕਰਨਾ ਹੈ, 60-40 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ MNQ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਡੈਨੀਅਲ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ES ਖੋਲ ਦੇਗਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ MNQ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ MNQ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ठीक है जी ओके ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ MD ਫਾਸਟ ਉनका है। नो MNQ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ES 500 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਐਨ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ MNQ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ सारा सेटअप ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाउ दे टीच द क्लास एंड एवरीथिंग। तो उनका एक डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने आपका सारा स्ट्रक्चर ES पे खड़ा किया है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो है आपकी क्लासेस, आपका पूरा नो हाउ, डाइवर्जन, एवरेज, हर चीज़ ES पे फाउंडेशन है। मैं आया हूँ, मैंने आपको MNQ भी करवाना है क्योंकि ES में कुछ लोगों का हाथ घबराता है, कुछ कहते हैं मैंने बोर हो रहा हूँ, तो मैंने आपको साथ साथ MNQ भी करवानी है। There's no safes, दोनों गिरने लगे हैं। MES माइक्रो सेफ है कि अगर आप स्लिप हो ना तो पकड़ लेंगे वो पकड़ ES तो अगर नहीं देखें MES जो है ना अगर आप 3 माइक्रो से जाएं तो रिलेटिवली इतना कोई घबराने वाली नहीं है। आप 50 से उतर के 15 पे आ गई हैं। मैं आपको 50 से 5 पे नहीं ले जा रहा, अभी तो ये 50 से उतर के 50 सेंट पे जा रहा है काम, नैनो पे इतना नीचे ले जा रहे हैं वो, क्योंकि लोग वो कहते हैं हर बंदे को NASDAQ में लेके आओ और उसके लिए सुपर एरिया पासवर्ड पाना है सुपर एरिया की कीमत पासवर्ड थੱਲੇ ਪਾਣਾ मैंने ईमेल सर पासवर्ड नाम ही मैंने पूछा था ना कि जरा तो भाई पासवर्ड है सुपर एरिया होगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MNQ में इतनी पावर है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको आ जाएगी। एवरेज कराने सिखा देंगे कि अगर गलत ट्रेड में फंस गए हैं तो एवरेज कैसे करनी है, डॉलर कॉस्ट एवरेज अगर आपको आपके अगेंस्ट जा ही रही है तो आपने कैसे निकलना है ट्रेड से, क्योंकि अच्छा ट्रेड करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बुरे ट्रेड से बाहर आना ये ज़्यादा एग्जैक्टली एना तो करता है मतलब MNQ हाँ MNQ stands for micro NASDAQ, MES stands for micro S&P 500। नो प्रॉब्लम जी, बाकी ठीक है जी, सेव कर दो नो प्रॉब्लम। MNQ भी या एवरी हो गया ES एमटी फास्ट खोल नहीं दी ना ES एंड खोल था ES खोल गया ना ES तो ये MNQ तो खोल पाए MNQ तो खोल ना मारता ये मेरी ES थी मैक्स प्राइम में जा कैपेट कर पासवर्ड पाते हैं किधर गए हाँ जी नो प्रॉब्लम, कोई बात एग्जीबिशन में काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास कुछ लोग थल्ले ऊपर करना है एक्सपैंड करना टाइम पर है ऐसे
सर पिछला मिड बैंड बड़ा चंगा चले अच्छा जी 1 मिनट ਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ यार ये माइक्रो 10 क्वांटिटी फिक्स ही कर दी है ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ MNQ ਸਿਰਫ 1 ਕਰਨਾ हां MNQ 1 है जी और 1 भी है कि नहीं है हां जी अजी फिक्स कर दी कितने दिन का डाटा चाहिए 1 मिनट 1 डे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਟਾ चाहिए So sorry if you guys didn't get the information you guys. मैं आपको अपना फीडबैक पहले सारी लेकिन आपने अंदर नहीं दिया फीडबैक दिया था उनको भी अच्छा, मैंने दिखा नहीं फीडबैक दिया थोड़ा फर्क टाइम है ये मतलब बड़े कोई मैं अच्छा कोई ऐसी चीज़ तो मैं सिखा नहीं रहा जो उनको ना पता हो दर्शन के तब बचेगा पुछ या पुछड़ा है तो कसूर है। बात लगाएंगे बात समझाएंगे फिर बात चक्कर रह जाएगा सो कंप्लेंट बता रहा नहीं, complaint नहीं मेरा करता। क्या कि आज मैं आई हूँ दूसरे दिन कोई आया तो अगर हमें थोड़ा पहले बोले कि अच्छा आप ट्रेड कर रहे हैं 11 o'clock तक उसके बाद हमें थोड़ा सिस्टम के बारे में समझा दें क्योंकि हम नए आए हैं हमें क्या पता कि खरीद क्या रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं ये भी तो चीज़ें पता नहीं नो प्रॉब्लम जी अच्छा सर इसमें माइक्रो और मैं मेरी नहीं है इसकी है हमने MNQ करना है MNQ हाँ के अंदर है उसका नाम NQ कहता है NQ तो NQ मूव होती है $20 MNQ मूव होती है $2 जिस तरह वो 50 और 5 है ये 20 और 2 है तो अगर कहीं फंस भी गए ट्रेड में तो हम निकाल लेंगे नो प्रॉब्लम ठीक है लॉस लेने पड़ जाता है लेकिन अगर जैसे आपने नंबर बताएंगे NASDAQ के अगर हम उस नंबर पे बस ऑर्डर डालें ये हमारा ये सुपर एरिया का S1 में ये निंजा करते हैं S1 जो ये S लिखा ना S1 S2 ये निंजा भी है ठीक है जी 1 मिनट चलता है एक सेकंड तो आपकी MNQ की क्लास के लिए हैप्पी आ रहा है जी आपको सिखा देगा वैंकूवर और MNQ की क्लास अली या बिलाल रोज़ करते हैं कैलगरी वालों के लिए ऑफिस में सो lots of stuff is happening nothing to worry बड़ी रकम चीज मेरे ख्याल से क्योंकि मैं पीछे भी देखना ना पीछे मार्केट में क्या किया ये हाँ नहीं वो है राइट लेफ्ट वाला किया ठीक है क्या 3 घंटे आपको पता लग जाएगा कहाँ से वो बाउंस हो रही है कहाँ से वो रिजेक्शन हुई है ऐसा नया नया कहता था आप चेयर का कुशन भी ले आए बैठे रहे आप 5-2 बजे तक नो प्रॉब्लम सारी बातें लंच का सजेस्ट करते हैं मैं लंच नहीं करता ये खुद ही दिखना है मैं 1 मील अ डे पे आया हूँ आपकी वो सर बताएंगे घर जाके हैं जी 740 730 यहाँ चाय शाय पी ले बस दैट्स इट ठीक है सारे 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 चटका जीरो लाइन नहीं होती सर नहीं मैं बता रही हूँ वो सर बताएंगे अभी आपको I'm able to start. जीरो लाइन से बेटर ट्रेड है वो 60-40 पे आता है हाँ जी एजेंट घाटा हो गया जी देखो ये गुड टू गो ये यार मैं तो ईमेल का क्यों नहीं आता ईमेल भेजा लेकिन ज़ीरो लाइन को क्रॉस करने के लिए आपको ज़ीरो लाइन खुद ना करें उसकी स्ट्रेटजी बनी हुई है हमारे पास डाउन वो ऑटोमेशन पे है वो खुद क्रॉस करके आपको ट्रेड ले लेती है ज़ीरो लाइन लेकिन अगेन वो भी अगेन डिफरेंट चीज़ है पहले एक एक चीज़ करके आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ज़ीरो लाइन क्रॉस मूविंग एवरेज क्या होती है उसके फिलहाल तो सर लास्ट वीक से माजे सर का थैंक यू उन्होंने जब उन्हें लगा कि इस पे कुछ नहीं हो रहा तो उन्होंने बोला जीरो पे प्रैक्टिस कर ओवरऑल अब मैं आपको MNQ पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग
मतलब मुझे उसमें सक्सेस रेट समझ में आया कि कुछ तो मैं कर पा रही हूँ। नो ब्रो, इसमें भी ठीक हो। ओके जी, नाउ एवरीबॉडी इज ऑन द 1 मिनट चार्ट। लेट्स टेक ए लुक और सी के जी हमने करना क्या। अब पहले आपको बता दूं दो चार्ट का डिफरेंस क्या है। जो 60 मिनट का चार्ट है वो आपको क्या बता रहा है कि मेरी एरियाज कहाँ हैं, मेरी R1 S1 पिवट सारी की सारी बता रहा है कि ये आपका एक्सपेक्टेड लो, ये आपका S2, ये आपका S1 और पिवट, फिर आपका R1 एंड सो। तो राइट अवे आपको वन ग्लास में पता लग गया कि मेरा सपोर्ट और मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, ये आप एक चार्ट से देख पा रहे हैं। अगर इस प्राइस पे आएगी मैं यहाँ पर बाय करूँगा, मैं यहाँ बाय करूँगा, मैं यहाँ सेल करूँगा। उन ये मेरे डब्बे आ गए सेलिंग के और बाइंग के। अब दो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं जब आप ये नैस्डैक और ES की ट्रेडिंग करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, इनको हम कहते हैं फिब बॉक्सेस। फिब स्टैंड्स फॉर फिबोनाची। इनके 4 लेवल होते हैं जो बड़े कंसिडर होते हैं, 23%, 38%, 61%, 78। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, वो मैथ खुद हो रहा है। 23, 38, 61, 78 वो डब्बा टॉप और बॉटम उसने रेंज बना ली। जब भी प्राइस इस बॉक्स के अंदर ग्रीन के बॉटम से आपने बाय करना है और रेड के टॉप से सेल करना है। ये रूल है। आपकी जो रेशो है, ऑफ कोर्स आप कहीं से, आप जो भी ट्रेडर है ना, एक्सपीरियंस ट्रेडर कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। फंस गया निकल जाएगा, एवरेज कर लेगा, स्टॉप लॉस लेगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं आप लोगों की तरह, मैं आपको सेफ ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। तो सेफ क्या है, अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, लेट्स डू 1 मिनट। किधर गया जी, राइट क्लिक, डुप्लीकेट इन द न्यू विंडो, राइट क्लिक, data series, I only care about 1 day and 1 minute। इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है जब रेड बॉक्स आ जाए। जब भी रेड बॉक्स आ जाए इसके अंदर, तो रेड के टॉप से सेल करना है और ग्रीन के बॉटम से बाय करना है जब भी आ जाए। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी उसकी ATM सेट करते हैं। अभी कोई ग्रीन बॉक्स नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है यहाँ पर। ये 1 मिनट के चार्ट में देखें, 1 मिनट नहीं, ये देखें फिब के बॉक्स, फिब की बात कर रहा हूँ। फिब का कोई बॉक्स नहीं है इस वक्त। ये पिछला इक्वल आ गया, तो अब मैं आपको, अब जैसे जैसे यहाँ फिब के बॉक्स आएंगे, तो मैंने यहाँ किया चार्ट ट्रेडर ऑन। हम अपनी एक ATM सेट करते हैं जी, ATM बनाते हैं। इसको हम रखेंगे स्टॉप लॉस 120 का और प्रॉफिट 20 का। स्टॉप लॉस 20 का रखें, 120। मैं फॉर नाउ 20 कर रहा हूँ, आप इसको बढ़ा सकते हैं लेटर, लेकिन अभी मैं 20 कर रहा हूँ। नहीं, स्कैल्प के लिए यही सेट करना है। 5 पॉइंट निकालने हैं हमने, 5 पॉइंट निकालने हैं इस ट्रेड के अंदर से। हाँ मैंने कर लिया, मैंने 2 माइक्रो करके $40 ले रहे। ये देखें, SL और TP, एक MNQ। अब कितने डॉलर बनेंगे और कितने का नुकसान हो जाता है, ये देखिए, ये है 20 और ये है 120। फिर इसका नाम दे दें। मैं सर इक्वल हाई तो ले रहे हैं $60। इसका नाम दे दें MNQ 30-120, 30-5। बेसिकली 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 5 पॉइंट का TP है। बड़े अरसे बाद मैं भी डिसिप्लिन ना काम ले आया, तो सही जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वापस आ गया 30 पॉइंट्स। तो ये अगर आपने लिखना है वहाँ तो 120,
120 और TP 20. TP is profit. TP is take profit. सॉरी सर, SL हो गया हमारा 120 Yes, एंड TP हो गया 20. इनसे आप थोड़ा सा बस MNQ SL 120 TP 20 सेव इसका नाम दे दें, मैं दे देता हूँ MNQ, अपना SL दे दें 20, जो भी 120 करना है। एग्जैक्टली 1 SL 120. अब ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है? आपके हर ट्रेड में इसमें $10 बनेंगे और स्टॉप लॉस जाएगा $60 का. 30 पॉइंट है, 30 टाइम्स $2, $60 का स्टॉप लॉस. हमने इससे ऊपर नहीं जाना और $10 से ज़्यादा भी बन सकते हैं. कुछ लोग इसको ओपन खोलते हैं और वो ट्रेल करना शुरू कर देते हैं. अभी को आपको मैंने सेट 30, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इन ट्रेड्स पे बढ़ जाएगा तो आप ब्रैकेट भी बढ़ा लीजिएगा. स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाना, सिर्फ टीपी बढ़ाना है. जिस तरह हमने किया, मैं ब्रैकेट खोलता ही नहीं हूँ, मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मैं मैनुअल बंद कर दूंगा. और टीपी है तो कई दफ़ा 10, 15, 20, 25 पॉइंट दे देता है, मीन $50 भी बन जाते हैं. लेकिन $10 हमसे स्टार्ट करेंगे. और अगर आप पूरे दिन में ये 10 ट्रेड, ठीक है बस, अगर पूरे दिन में हम ये 10 ट्रेड कर गए तो $100 बन जाएंगे. 10 बार फिर बॉक्स आते हैं 100 दफ़ा आते हैं. आप देखेंगे फिब आया, फिर फिब आया, फिब आया, फिर फिब आया, फिब आया, फिर 30-20 याद कर दें, फिर नहीं 4-5 निकालना। नहीं वो 30-20 ES+NQ है. अच्छा, ठीक है। ऐसी NASDAQ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰ. ਤੁਸੀਂ देखोगे कि ਇੰਨੀ तेज आंदी है मार्केट. अच्छा, इससे भी एक तेज मार्केट है, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी. इससे भी तेज किसी ने खेलना है ना, तो 2 चार्ट्स और हैं, मैं अभी इंट्रोड्यूस तो कर दूंगा, फिर आपकी अपनी है कि वो कहते हैं करा दियो जी, वो भी करा दियो. नहीं एक आपको पता नहीं लग रहा अभी। हाँ अभी नहीं हम लोड एनी टाइम कर देंगे. देखें देखो आज अब भी तो उन्होंने कराया नहीं ना, सारे करवा दिए। मैं असल में मैं जितना 1 माह का गैप है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कैचअप कर दूँ. हाँ, मैं आपको एक और दिखाऊँ. होता यह है कि इस चार्ट के अंदर हम कौन सा ट्रेड पकड़ सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर 2 बड़े ट्रेड होते हैं, मिड बैंड का ट्रेड और फिब का ट्रेड. फिब इज बेटर. आप फिब के अंदर वेट करें, फिब आता रहे रेड, फिब ग्रीन, फिब रेड, बाय लिमिट सेल लिमिट, बाय लिमिट सेल लिमिट करते जाएं और 5-5 पॉइंट उठाते जाएं. क्रिप्टोस के सारे डॉट्स ही हैं, कोई अगर 1 से 2 मार्केट स्विच जाओगे सही तो कैसे बनेंगे? हाँ। स्विच करते रहोगे नहीं, हम लोग टू बी ऑनेस्ट, मैं और जतन साल से सिर्फ MNQ करते हैं. हम तो MES उस वक्त करते हैं जब एरिया आ जाए ना, वो भाई जी कर लो एरिया, क्योंकि इसके अंदर अब मैं किस चीज़ का ऑनेस्टली बता के वेट कर रहा हूँ. अगर कोई यहाँ से मिड बैंड से सेल करें तो आपके 5 पॉइंट डन हो चुके हैं. आपने यहाँ से ऑर्डर लगाया, ये 5 पॉइंट मिड बैंड पे डन हो भी चुके हैं. इतनी तेज़ी से वो मिड बैंड पे प्राइस आती है तो फिब ज़रा रीजनेबल सेफ रहता है. तो अगेन आप एग्रेसिव खेलना चाहें तो बहुत चार्ट्स हैं जिसको आप स्कैल्प ही करते रहेंगे तो क्या चीज़ आप लगाएं ना, फिब आने दें, फिब का वेट कर रहा हूँ. तो बाय ऑर्डर, बाय लिमिट लगाना है फिब पे. यस, इसमें नहीं होती ये ट्रेंड वाला मिड बैंड है ना, ट्रेंड में. मैंने स्टॉक इनको बोला था लास्ट वीक, नेटफ्लिक्स 67 पे बाय की है, 74 पे आ गया. ठीक है, RKBL 67 पे दिया था, आज हुआ 82 पे चला गया. आपने स्पेस एक्स भी खरीदा ना? स्पेस एक्स पे लिया मैंने 108 पे. ठीक है, अब कहाँ पे 135 पे है. आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है ये चेंज होता है.
मार्जिन तो सुसाइडल है जी। वो तो फिर वो 45 बिलियन वाला गर्क हो गया, मार्जिन तो बढ़ गया, 45 बिलियन बढ़ गया। अच्छा जी उन्हें कितने 200 बिलियन तो बनाया सी क्या कितना तक चल गया वो इको दिन चवाई पर 225 मिलियन तो हाँ। देखिए मिड बैंड ये होता है, ये ग्रीन से गया मेजेंटा, पहले मिड बैंड पे सेल करना है। अगर अब ये ग्रीन आएगा ना तो पहले मिड बैंड पे बाय होगा, अभी नहीं। ये पहला देखें, ये प्राइस ग्रीन से मेजेंटा हुई, ये मिड बैंड की लाइन चल रही है ना, तो मैं पहली दफा मिड बैंड पे बैठूंगा ना, सेल आउट। हाँ एग्जैक्टली, ये मिड लाइन चल रही है ना। अब इसको बुलिश होने दें, बुलिश होगा तो मैं यहाँ ग्रीन पे बाय करूंगा ना, जब तक बुलिश नहीं होगा मैं कैसे बाय करूंगा? ठीक है, ये मिड बैंड वाला, लेकिन नहीं वो अपोजिट है, ये ट्रेंड की बात करिए। ट्रेंड में आपने मिड से बाय करना होता है, फिब में रेड से सेल करना होता है, बॉक्स से। फिब ट्रेंड में आपने बैकग्राउंड देखना है, फिब में आपने बॉक्स देखना है। एग्जैक्टली। तो अगर फिब बॉक्स, अभी मैं ना वेट कर रहा हूँ किसी फिब बॉक्स आने का, जब फिब आएगा तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। नहीं कोई नहीं, 60 तो बहुत दूर है, वो तो कल शाम तक आएगा, उसका हम वेट कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं, अभी अब आपका ये मिड बैंड बनता है जी। यहाँ पर जाके आप बाई का ऑर्डर लगाएं, जरा सिम पे जाएं, बाय लगाएं, बाय लिमिट लगाएं इस ट्रेड पे। सिम पे जाके बाय लिमिट लगाएं ना, 759 पे बाय लिमिट 1, स्टॉप लॉस 30, टीपी 5, बस। अब बुलिश हो गया ना आपका 1 मिनट, तो अब मैं मिड बैंड का 759 सॉरी यस। अब ये मेजेंटा के पास बुलिश पहली दफा हो रहा है, कितने मिनट के बाद? 1:35 से 1:40, 1 घंटे बाद। ट्रेल करना ही नहीं है, 5 पॉइंट है जी, स्कैल्पिंग। मैं हमेशा करता हूँ, पता क्यों? मैं वहाँ टीपी नहीं लगाता, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के टीपी भी इतना दूर लगा लेता हूँ और फिर मैं साथ साथ ट्रेल कर रहा होता हूँ। वो ES में मेरे पास वीडियोस हैं, आसान है। इसने 3 बार पैसे दे दिए यहाँ से, और वो ब्रेकआउट है। मैं ब्रेकआउट पे देखूंगा, बैठूंगा। नहीं मैं सर मिड पे बैठवांगे, अगर मिड पे आ गई थे। हाँ अब देखिए मैं मिड पे बैठा हूँ, ट्रेंड ट्रेड के अंदर बैठा हूँ, और ये इक्वल हाई इक्वल नहीं लो नहीं, वो तीसरा बहुत ही कॉन्सेप्ट तेज़ हो जाना है, ਉਹਨੂੰ देखना से ना गैप ਵੱਡਾ होना चाहिए है, तो मैं ये मिड ते फिर भी बहुत है। हाँ जी। अब मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ? मेरी प्राइस किसी तरह इस मिड बैंड पे आ जाए, जिस तरह आप लोग 1510 के मिड पे बैठते हो, मैं MNQ पे 1 मिनट के मिड बैंड पे बैठा हूँ। उधर 1510 होता है, इधर 1 मिनट होता है। हाँ तो आप साथ साथ उसको ऊपर लेते जाएंगे, साथ साथ मूव करते रहे। अगर एक एक टिक मूव हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इस पे भी सेम है, प्राइस आएगी या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा या 5 पॉइंट का टीपी लग जाएगा, और कुछ नहीं होना। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। नहीं, जीरो लाइन मूविंग एवरेज पे चलती है, ये वाली प्राइस पे चलती है, फर्क ही है। जीरो लाइन होती है मूविंग एवरेज की, मैकडीज की, और प्राइस लाइन होती है ये वाली। दिस लाइफ प्राइस। नाइट तो लो तरफ नहीं गई ना आज, या मॉर्निंग नहीं गई, पूरा दिन नहीं गई, बेस डाउन से नहीं, पेवट तो जाके थले। अब देखिए मेरा मिड जो है ना ऊपर चला गया थोड़ा सा, आई विल मूव दिस स्लाइटली अबव। ये मैं इसको क्लिक किया, मैंने इसको, हाँ ऐसे लाता है।
नहीं नहीं, उस पर क्लिक करें तो वो उसका शेड चेंज हो जाता है। बहुत तेज है ना, 5 ते लै जाना। साढ़े को किसी ऑर्डर नहीं चलते नहीं फास्ट होता है। ये करना भी 10:30 के बाद। हाँ, ये सुबह सुबह ना कीजिएगा, ये आपको से हैंडल ही नहीं होगा। उसकी रेंज है बहुत तेज चलता है ये, सुबह सुबह एरियाज पे होते हैं ये उस वक्त होता है जब मार्केट ज़रा नहीं स्लो मार्केट में, क्योंकि सुबह सुबह हम एरिया देख रहे होते हैं कि इसने अगर तोड़ने गई तो R1 पे जाना है या S1 पे या S2 पे या पिवट पे। अब ना वॉल्यूम है ना कुछ है, मैंने कुछ उठाना है जी मार्केट से, कोई $10 इधर कोई $20 उधर बोनस में, तो मेरा ऑर्डर ये है 100% जी 100%। बट सर जैसे मॉर्निंग में फॉर एन एग्जांपल आई गेट 8 से 9 का जो टाइम, हाँ वो मेरे पास वो भी ठीक है, वो बेस्ट है, अच्छा है, स्कैल्प करें हैं। नहीं कैसे लिया आपने ऑर्डर? मेरा तो ऑर्डर पिक नहीं हुआ अभी। नहीं आपने बहुत ही ऊपर कर दिए। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वो फॉरेन ऐसे बन जाते हैं जी, फॉरेन ऐसे। नहीं नहीं आप इन्होंने और ज़्यादा ऊपर ले गए। कभी आप लोग देखिएगा नैस्डैक को और अर्निंग्स वाले दिन को, मज़ा आएगा आपको, नैस्डैक से डर लगने लग जाएगा, इतनी स्पीड होती है। बट इट्स ओके। देखें जी ऑर्डर पिक हो गया है और मेरे बनने कितने बने हैं जी, $3 $4 $6 मेरा स्टॉप लॉस है वहाँ पर नीचे, और मेरा टीपी है एग्जैक्टली $10 पे मुझे वो बाहर निकाल देंगे। आपका पिक हुआ ऑर्डर सेम पे? मेरा 760 पे पिक हुआ है, $7 $6 इतना स्लो कटिया मार्केट, $8 $9 और डन हो गया जी टिप, इतनी सी बात। ठीक है लेकिन पिक होया कि नहीं? डन हो गया, ट्रेड डन है, 5 पॉइंट ले लिए हमने, इतनी सी $10। हाँ देखिए वो प्राइस आई मिड बैंड पे, आपको पिक किया वापस चले। अच्छा यार इनके लिए ना एक इंडिकेटर और ऐड कर दें, आपके पास प्राइस लाइन आ रही है अभी, वाइट लाइन आ रही है? ओके, राइट क्लिक करें इंडिकेटर में, प्राइस लाइन का इंडिकेटर, ये देखें सिर्फ इसको राइट क्लिक। अब देखें ये वाला मिड बैंड 10 पॉइंट गया है वो टच करके, ये देखें, तो राइट क्लिक इंडिकेटर्स और प्राइस लाइन सर्च करें, खाली प्राइस लाइन PRICE, येलो में आएगी प्राइस लाइन। आपको एक छोटी सी डॉटेड, अब उसको ऐड कर लें। देखें ये मिड बैंड पता कितना गया है, माय गॉड, V पॉइंट देखें, डबल क्लिक कर लें, इसको डबल क्लिक कर लें और ओके दबा दें। अब वो एक येलो सी लाइन मूव हो रही होगी, तो आपको करंट प्राइस लाइन भी पता लगती रहेगी। प्राइस लाइन कहाँ पे है सर? आपके MD आपके उस इंडिकेटर्स के अंदर PRICE सर्च कर लें, PRICE, तो उसको डबल क्लिक कर लें। हाँ फर्स्ट पुल बैक। अब देखें यहाँ 5 पॉइंट लें या 20 लें, हम यहाँ पर भी मिड पे बैठे हैं, ठीक है, प्राइस बुलिश थी, प्राइस मिड बैंड पे आई 50% लाइन, उसने आपको पिक किया, डन हो गया ट्रेड, 5 पॉइंट आपने। अब यहाँ ES पे बैठने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए जी। हम लोग जब बोर्ड होते हैं तो प्राइस नहीं आ रही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो फिब और मिड खेलते रहते हैं कि भाई सिंगल डबल लेते रहो, $100 इधर से बन जाता है। ये देखें लाइव प्राइस, ये डैश लाइन जा रही है ना, एटलीस्ट आपकी आय एग्जैक्टली पता होती है कि कहाँ जा रही है प्राइस। नहीं वो ठीक है, लेकिन विजुअली देखने के लिए अगर आपको नजर आना चाहिए कि मेरी प्राइस लाइन है कहाँ पर। मैं आ रहा हूँ।
नो वरी सर, सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है, पैसे दिए हैं, आपका राइट है यार क्वेश्चन पूछने का। ये देखें, यहाँ मैं सर्च करूँगा प्राइस लाइन, PRIC, मैं तो इसको बड़ा भी कर लेता हूँ, ये आ गई प्राइस लाइन, येलो कलर का एक क्रॉस बना हुआ है। सॉरी इंडिकेटर PRICE, ये प्राइस लाइन, इसको ऐड किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको 3 पे ले जाते हैं ताकि नज़र आना शुरू हो जाए। अब देखें एक लाइन आ रही है, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको देख सकते हैं। दे दे, मैं कर मैं दे देना, सॉरी, यहाँ लिखें प्राइस, इसकी मैं विड्थ चेंज कर लूँगा 3 पे, ताकि वो ज़रा ना अब देखें वो येलो डॉट आ गए। आपने अगर यहाँ बाय किया होता तो डन है ना आपका ट्रेड। अच्छा सॉरी, प्राइस लाइन, अच्छा जड़ी है लाइन आ रही है, हाँ जी, एक करंट प्राइस है जिदा उत्थे वाइट लाइन थी ना, हाँ जी हाँ जी 3 कर दें। अब आपकी अगर अगेंस्ट जाने लगे इसको क्लोज भी कर दे बजाय स्टॉप वो नहीं, देखिए स्टॉप लॉस आपका रिस्क $60 है ना, वो मैंने इसको स्टडी कई दफ़ा किया है, वो 45 से मुड़ जाती है, ठीक है, वो मुड़ती ज़रूर है, लेकिन रेयरली मेरे पास एटलीस्ट 85 to 80% मैं ठीक जाता हूँ। तो ये लाइन कैंडिडेट इंडिकेट ये करंट लाइन, करंट प्राइस, अब मैं एकदम चार्ट देखते ही ना मुझे पता लग जाता है कि मेरी प्राइस क्या है। तो अगर आपने यहाँ से मिड बैंड से बाय किया 60 से, इट गेव यू लाइक 5+ पॉइंट्स इन दिस। कम पे आ गया इसका, हाँ 60 है, ठीक है 62 5 to 7 इसमें ब्लैक एरो अप एंड डाउन आ रहा है सब डजंट मैटर, हम उसको केयर नहीं करते, वो है आपका ब्लैक कैंडल का एरो से पहले एक एरो बन जाता है, नथिंग टू वरी। And which are the timings I should follow this one, sir? दिस इज व्हेन देयर इज नो एरिया टू वर्क फॉर। I mean, आप देखिए इसका आसान तरीका ये है, R1 से ऊपर कहीं घूम रही है आपको पता ही नहीं है, या नीचे S1 से, अब एरिया नहीं आ रहा ना, तो आप कहते हो चलो जी मैं स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड के अंदर चला जाता हूँ। सिर्फ इसका ट्रेंड का ट्रेंड वाला देखें या फिब देखें, अगर फिब आएगा, अब मैं फिब का असल में वेट कर रहा हूँ, मैं फिब का ये इसलिए वेट कर रहा हूँ, स्पीड, अब ये देखें ये स्विंग आई है 58 पॉइंट्स की, 38 की, अब फिब ना समवेयर अराउंड यहाँ आएगा नीचे, जैसे ही ग्रीन आएगा वहाँ ग्रीन के अंदर जाके लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। वैसे इसकी टाइमिंग जैसे वही जो टाइमिंग ऐसे नहीं है, टाइमिंग प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा मार्केट इस वक्त भी तेज़ चल रही होती है, कई दफ़ा सुबह 10 बजे डीला होता है, देयर इज़ नो फिक्स्ड, आपको ना ऑब्जर्व करना है मार्केट की सिचुएशन के साथ। अभी जैसे सर बाई वाली बाय हो चुका है, एक ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, मैं अगला मिड बैंड नहीं ले रहा हूँ, ये पिछला बाय हो गया, मुझे उसने 5 पॉइंट, अब अगर दोबारा लिखें पहला मिड बैंड, दूसरा मिड बैंड, तीसरा, उसकी रेशो हो जाएगी ख़राब, तो मैं अब वेट करूँगा, अगला मेरा ट्रेड है सेल का या फिब का। अगर मैंने फिब लेना है तो मैं समवेयर अराउंड फिब यहाँ पर नज़र आएगा मुझे, मतलब 2 या 3 ले जाना, पहला ले लो यार, सब तो पहला देखो मजेंटा, देखें यहाँ से ग्रीन से मजेंटा हुआ, ये देखें पहला फिब वेब कितनी लंबी दे के गया, अब मजेंटा से ये ग्रीन हुआ, ये पहला ट्रेंड था। तो जब आपका स्विंग का ट्रेंड का पहला पुल बैक होता है ना, वो फास्टेस्ट है। ES में भी हम यही कर रहे हैं ना, 30-20 ग्रीन हुआ, 15-10 ग्रीन हुआ, पहला पुल बैक लिया, चढ़ गया ऊपर, 15-10 ग्रीन था, पहला पुल बैक आया, स्टॉप लॉस लगाया, गाड़ी में चढ़ गए, 5 पॉइंट चले। अभी आपको मैं 5 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सून आप लोगों को पता लग जाएगा यार, मैंने देखा है हर दफ़ा 10 से 15 पॉइंट मिल रहे हैं, आप उसकी ATM चेंज करोगे, स्टॉप लॉस नहीं चेंज करना, ATM चेंज की, आपने कहा है मुझे ना इसको मैं भी 120 और 120 कर लेता हूँ, ब्रैकेट खुल जाएगी, फिर आप उसको खुद ट्रेल करते रहो, आप उसको ट्रेल करते रहो। तो इन्हें ऑटो ट्रेल में नहीं डाल सकते सर? है लेकिन ना NASDAQ के ब्रीदिंग रूम उसको इनफ देना होता है, मैनुअली करना
मैनुअली करें तो आप करें, वरना तो And we can go after 8 o'clock in the एनी टाइम, एनी टाइम, because that's the only time I would get. एनी टाइम, एनी टाइम। ये टाइम तो वैसे कंप्यूटर खुला होता है, बोर बैठे होते हैं। मैं 1 मिनट, जितने भाई ने कहा यार वीडियो गेम खेलनी है 1 मिनट तक खेल ले जाओ, तो मैं तो अब देखिए नैस्डैक ना एरिया से बाहर आप कहीं एंटर नहीं हो सकते, तो कहाँ एंटर करूँगा मैं? एक हमेशा हम लोग सैटरडे को ना मेथड्स डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके जी यार, ये कहता है यार 1 मिनट का मिड भी अच्छा चलता है, फिब भी अच्छा लगता है। अब हैप्पी है, वो कहता है 5 मिनट का फिब लो, 5 मिनट का मिड लो, फिर उसके ऊपर Minutes में भी like 1, 5. ये देखिए ना, आप इसको 5 कर दो, ये देखिए अभी देखिए ये ये 5 कर दिया, होता है जो 5 से लेकर डेली तक चले जाओ, लेकिन ट्रेड उतने ही कम आने हैं। वन जूम इन है ना, आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो। मैं देखें ये मैं 240 पे 60 पे चला जाता हूँ, यहाँ एक फिब आया होगा शायद 60 पे, आप लोगों के 60 के चार्ट पे भी एक फिब आया हुआ है, राइट? यू नो उस ऑर्डर को पिक करने के लिए जो 60 का फिब है शायद 2 दिन लग जाए, आप बैठे रहोगे, है पक्का ट्रेड, लेकिन आपको फिर 2 दिन वेट करना है। यहाँ तो आपसे अभी वेट नहीं हो रहा ना कि मैं, वो इतनी दूर आता है फिब। 60 मिनट का फिब देखें, प्राइस देखें जाके, 60 की फिब की प्राइस देखें, ये बनी है, ये पड़ी है $29,580। इस ये पता 200 पॉइंट दूर है आपसे, उसको बैठने के कई दफ़ा तो सेम डे आ जाती है, कई दफ़ा कुछ घंटों बाद आएगी। अब कुछ लोग यहाँ जाके बैठ गए 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो 5 पॉइंट नहीं लेंगे, वो 100 पॉइंट लेंगे यहाँ से, क्योंकि वो पूरे यहाँ से बैठ के ही देंगे। ये जो फिब आया है ये 60 मिनट में आया है, और कितनी बड़ी स्विंग के बाद आ रहा है, 586 पॉइंट की स्विंग के बाद आ रहा है, तो वो यहाँ है। आई कैन, पर 5 से पहले नहीं, 5 बजे बंद करना है ना, बंद करना है। तो अगर आपने जूम आउट कर लिया है तो स्विंग बड़ी है तो फिब भी बड़ा है, स्विंग छोटी है तो फिब भी छोटा है, इतना सा मैथ है उसका। है नहीं 1 मिनट तक तो कोई फिब नहीं है जी, 1 मिनट नहीं है, कोई फिब नहीं है 1 और फिब भी होना है। मैं सिर्फ फिब का वेट करवा रहा हूँ। अब मैं यहाँ ना फिब का वेट कर रहा हूँ, मुझे मेरे हिसाब से ये स्विंग पड़ गई है 42 पॉइंट की, तो 42 पॉइंट का 78%। मैं वैसे आपको बता दूँ, आप बिफोर बॉक्स भी कर सकते हो, सिर्फ हर चीज़ को 80% से मल्टीप्लाई कर दें। फिब की जो रेशो है वो आप बिना बॉक्स देखे मैं भी आपको बता सकता हूँ कि बॉक्स कहाँ गिरेगा। सर अभी जो करंट प्राइस है, हाँ नहीं मैं उससे नहीं होता, स्विंग से बनता है। ये देखें आपको एक हाँ जी सर, देखें हमारे पास सुपर एरियाज़ पे जाएं, आपको कैलकुलेटर बना हुआ है, आप वहाँ पर स्विंग डाल दें, नंबर डाल दें, वो आपको बता देगा कि कहाँ पर फॉक्स बनेंगे। मैं लिखा हुआ है सर, हर चीज़ लिखी हुई है। ये देखिए आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं आएगी, आप थक जाओगे, हमारा नॉलेज नहीं थकेगा। ये देखें, इसका नाम है सुपर फिबोनाची। आप कहते हो मैंने 1 मिनट का फिब कैलकुलेट करना है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है मेरी एंकर प्राइस क्या है, ठीक है? आपकी एंकर प्राइस 1 मिनट के चार्ट पे ये बन रही है, ये है 60 मिनट की। आपकी एंकर प्राइस होती है ये जो हाईएस्ट हाई है, ठीक है? एंकर प्राइस होती है जो लास्ट हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस होती है, वो एंकर प्राइस कहलाती है। ये यहाँ लिखा हुआ है 29,790, चेंज हो रही है, बट मैं इसको एंकर प्राइस के तौर पे लेता हूँ, ठीक है? वो पूछता है मेरी एंकर प्राइस क्या है, 29,790। वो कहता है आपकी स्विंग का साइज़ कितना है, वो साथ ही लिखा हुआ है 42। यहाँ पर जाके मैं गया, ये लिखा, वो उसके देखें उसी नंबर के साथ लिखा हुआ है, ये देखें ये लिखा है 47। एंकर प्राइस के साथ ही स्विंग का साइज़ पड़ा हुआ है, ठीक है? स्विंग का साइज़ पड़ा हुआ है, ये देखें एंकर प्राइस पड़ी ना, उसके साथ ही स्विंग का साइज़ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये आपकी 40, अभी ये बढ़ रही है,
वेट करें, अभी एंकर प्राइस भी बढ़ रही है तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा, वेट करें वेट करें। अब मेरा नंबर बदल गया है, मेरी नंबर आ गई 791 और 49 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 791 और 49 इसको आप राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है हायर हाई से आ रही है या लोअर लो से आ रही है, साथ ही लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ पूछेगा, आप ये लिखा हुआ है हायर हाई, तीनों चीज़ें आपको स्विंग के अंदर पता लग गई, ठीक है। ये हायर हाई से आ रहा है, वो कहता है कलर क्या रखना है, इसको कर दें जनरेट चार्ट। वो कहता है कि अगर आपने लेना है ट्रेड तो 28,750 से पहले बाय ना करना। ये फिब का आखिरी बॉक्स 78% बता दिया उसने। आपको एंकर प्राइस मिल गई, आपको स्विंग मिल गई, आपको हाई, तीनों चीज़ें आपको मांग रहा है ना। आप कैलकुलेटर है, आपने चार्ट से पढ़ी, उसको दे दी, उसने बना दिया कि पहला शैलो पुल बैक, हेल्थी करेक्शन, 50% गोल्डन रेशो एंड डीप रिट्रेसमेंट। तो आपकी 78.6% कहाँ बनती है, आप गए 758 पे, 752 पे, या मैंने बाय लिमिट लगा दी, डन। जब ब्लैक कैंडल बन जाएगी आपका फिब यहीं गिरेगा, यही हमारी गारंटी है आपसे। फिब बनता है क्योंकि वो उसी पे बनता है। अब देखिए वो नंबर चेंज हो रहा है बाय द वे, एंकर प्राइस भी चेंज हो रही है और स्विंग साइज भी बदल रहा है, ठीक है। इसलिए मेरा वो ऑर्डर भी चेंज होगा, 793 और 51। चलो जी गए हम वहाँ पर। अब मेरी, तो आप रेदर देन के वाइट और रेड और वेट करें, आप ऑलरेडी इन एडवांस बता सकते हो कि कहाँ पर प्राइस की सपोर्ट बननी है। जैसे भी चेंज हो गया हमने तो चेंज लगा, नहीं चेंज करना है ना। फिर अब देखें ये आ गया 793 और ये आ गया 51, ठीक है। तो इसको गए 79, थोड़ा सा चेंज किया, 793, इसको गया 51। वो कहता है यार अगर आपने बाय ही करना है तो वहीं पर अराउंड 753 के इर्द गिर्द ही बाय करना। तो मैं दोबारा गया उस चार्ट पे, मैंने जो ऑर्डर लगाया था मैं ऑलरेडी उसी जगह पे हूँ, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। अब देखें एक दफ़ा ब्लैक कैंडल आ गई ना, आप देखिएगा कि वो ग्रीन बॉक्स कहाँ बनता है। तो इन एडवांस बिफोर इवन द ग्रीन बॉक्स इज फॉर्म यू कैन कैलकुलेट के ग्रीन बॉक्स ने बनना कहाँ है, थ्रू अवर ना आए, लेकिन मुझे कंप्यूटर ना आए, लेकिन मैंने इससे पहले रिस्क नहीं लेना। देखें आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर ने कहा भाई रिस्क लेना है ना तो यहाँ से लेना। तो अब देखें एक कैंडल डाउन हो गई, दूसरी, तीसरी, अब यहाँ पर बनेगी ब्लैक कैंडल और ब्लैक बनने के बाद फिब का आ जाएगा। ये सारा कुछ मैथ से हो रहा है। वो प्राइस कैलकुलेट हो रही है, मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रही है, आरएसआई कैलकुलेट हो रही है, बोलिंजर बैंड कैलकुलेट हो रहे हैं, फिब कैलकुलेट हो रहा है, वो फिर पेंट कर जाता है। आपकी एजुकेशन की बैकग्राउंड क्या है? हाँ तो अब सिर्फ मुझे ना ब्लैक कैंडल बनने का है, और आप देखेंगे ग्रीन डब्बा जहाँ बनेगा वहीं मेरा ऑर्डर होना चाहिए। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, उस वजह से मेरा ज़रा इंटरेस्ट ग्रीन से बाई करना है, रेड से सेल, क्योंकि स्विंग का एक्सटेंशन है ना। अब देखें अभी तक ब्लैक कैंडल नहीं बनी, तो यहाँ से फिब शायद चेंज हो जाए। नहीं हाइए नहीं, ब्लैक जदों तक नहीं बनेगी मैनो फिब नहीं बनेगा, ब्लैक बनता ही फिब तो बाद। तो आपको होता है ना यार फिब कब बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ फिब बनता कैसे है इन एडवांस में। जी दोस्तों, विन लाइफ टाइम यानी जीतो जिंदगी भर, और हर हफ्ते आपको इसीलिए हम रिमाइंडर कॉल देते हैं कि अच्छी बातों को बार बार सुनना चाहिए। एक बार आप सुनते हैं और फिर दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार जाते हैं, चौथी बार में एक्शन लेते हैं। कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि पहली बार में ही एक्शन ले बैठते हैं। तो भाई आप किसी भी दायरे में आते हो, एक्शन तो आपको हम दिलवा के ही मानेंगे। वेल चलते हैं हाँ, मैं रेडियो पे की तरफ, जहाँ से बड़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर
राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत सारी उम्मीदों के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स जी। थैंक यू वेरी मच राफी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कैसा रहा ये वीकेंड का सेमिनार और कैसा रहा आज का मार्केट का हालचाल? जी एब्सोल्युटली, जो हमारी प्रोडिक्शन थी उसके साथ वंस अगेन हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, रिकॉर्ड हो गई है, एवरीबडी कैन गो एंड लिसन टू इट, सो एब्सोल्युटली लाइक दिस। वंडरफुल वंडरफुल। तो राफी जी, हमारे नए लिसनर्स जो रोजाना हर पल हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें बताएं कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, कितने साल से हमारी कम्युनिटी में एक्टिव है एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सी डिफरेंट इसलिए है कि वी आर नॉट ए वन मैन शो, 30 पीपल से ज़्यादा का स्टाफ है, 7 डेज़ ऑपरेट करते हैं, 4 ऑफिस थ्रू कनाडा हैं, उसके कैलगरी में, वैंकूवर में, मिसिसागा में। सो और 18 साल से आपकी खिदमत करते आए हैं डे ट्रेडिंग में, और सॉफ्टवेयर है, फिर टीचिंग है, कोर्सेज हैं, सो इट्स ए फुल हाउस, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन सबसे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपने सीखना है, डोंट नीड टू वरी, अपने पैसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। विद इन कुछ लोग 14 डेज़ में सीख जाते हैं। सॉफ्टवेयर इतना AI बेस पावर है कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर को सीखना है, तो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आए, वी कैन टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू जी, टेक केयर। जी जी, मैंने क्या करवाने, प्राइस आएगी तो नहीं नहीं नहीं, स्पीड से तेज़ चली गई तो अकाउंट ब्लो हो जाएंगे, तो स्लो करें, जब तक नंबर नहीं आए वेट करें। अब देखें ना, वेट करें 752 का, 752 पे आपका बाय बनता है, क्योंकि फिब का बॉक्स उधर गिरना है। हेलो जी, मुझे ईमेल टेक्स्ट करें, ईमेल अपनी वो, ताकि वो मैं सेट करूँ। तो सर अभी जैसे ये आपने बर्गर बना के दिए हैं, एक तो ये एरिया वाला है, इसमें इसका बताना बाकी है। एरिया में तो सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करना है, जब तक वहाँ नहीं आएगी यू कैन डू एनीथिंग। एरिया के अंदर तो फिब्स नहीं होते ना। हाँ, तो सिर्फ वहाँ देखना है कि प्राइस कहाँ पर जाएगी, बस उसके अंदर और कुछ नहीं देखना होता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं प्राइस के। तो जो मैं पहले कर रही थी RSI वाला, हाँ वो नहीं, वो दैट्स अ डेंजरस ट्रेड इन माय ओपिनियन। जीरो लाइन भी स्लो है ना, सेफ नहीं है। मतलब वो जस्ट फॉर माइक्रो सेकंड। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसमें बहुत तेज़ है काम, तो ये ज़रा रीज़नेबल सेफ ट्रेड है, रीज़नेबल। और जी हाँ जी ठीक है, मैं फिर अभी हम वेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस 30,000 का। ठीक है, 29,970।
नहीं नहीं नहीं, ये तो मिड बैंड, ये तो एक स्कैल्प का 5 पॉइंट का ट्रेड दिखा रहा था कि अगर वहाँ फिब आ जाता है तो कहाँ गिरेगा। अब जो 1 मिनट की कैंडल है ना वो कंसोलिडेट हो रही है, 5-10 ऊपर 5-10 नीचे, तो अभी वो साइडवेज मार्केट चल रही है, तो कोई ट्रेंड नहीं है इस वक्त। तो अभी रियली फिब का ट्रेड आपका समवेयर 753 पे आना चाहिए। फिब के लिए आपको आपके मर्जी से प्राइस नहीं मूव होगी जी, जब उनका दिल है, जहाँ वी जस्ट सिट एंड वेट कि सॉफ्टवेयर हमें जो बता रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सर इसका ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड कुछ भी नहीं है, अभी भी ग्रीन है, बुलिश है, बुलिश चल रहा है, तो हम बाय नहीं कर सकते ना, तो मिड से करेंगे ना। अगर मिड पे, हाँ, पर अगर दोबारा ही आपने बाई करना है तो करना मिड से ही है। मिड से मगर बट एक ही सीक्वेंस में 2 बार 3 बार नहीं करना नहीं चाहिए, नहीं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। कम हो जाता है। अभी वो डाइवर्जेंस लगाने जा रही है 1 मिनट में, 1 मिनट की भी डाइवर्जेंस होती है, मीनिंग के प्राइस ऊपर जाएगी, मूविंग एवरेज ऊपर नहीं जाएगी, तो नो प्रॉब्लम। अब देखें स्विंग भी बदल गई और आपकी क्योंकि उसने पिछले हाई को तोड़ा है तो स्विंग का भी नंबर बदल गया है, 794 हो गया है, 53 हो गया है। सो इफ़ यू टेक दैट, यू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सो 794, 53, तो अगेन इट्स नॉट, इट डजंट चेंज मच क्योंकि वो 1-2 पॉइंट ही हैं। अब जब मैं सिर्फ ब्लैक कैंडल का वेट कर रहा हूँ तो मेरा फिब वहाँ गिरना चाहिए। तो ये जो सॉलिड ब्लैक कैंडल आया, हाँ हाँ, ट्रू ब्लैक कैंडल आनी चाहिए। उसके बाद आपने नो प्रॉब्लम। हाँ जी, फिब वहीं गिर रहे हैं जी, फिब 78% का फिब। अब कई दफ़ा होता है, बैड लक की होती है, 2-3 पॉइंट से मिस हो जाता है, इट्स व्हाट नथिंग वी कैन डू। आप उसको, कंप्यूटर ने आपको प्रोडिक्ट किया है कि जी कहाँ से ले सकते हैं, वो कहता है कि बहुत अर्ली लिया ना तो 761 से ले लेना, बहुत लेट लिया तो 752, तो ये गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। वो कहता है इससे पहले ना लेना प्लीज़, 781 से पहले ना लेना। अगर ये 4 वैल्यूज़ आपको वो साथ साथ दे रहा है सब, मुझे लास्ट इज़ द डीप रिट्रेसमेंट, राइट। इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग पूरी तरफ इधर गई, फिर स्विंग पूरी तरफ इधर आई और हम उसके अंदर स्कैल्पिंग में ले लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा है जो पहले यहाँ ना यूज़ हुआ हो? वो तो मैंने फर्स्ट वाला लिया। ओके, वो करते हैं, नो प्रॉब्लम जी। तो कौन से नंबर पे लगाऊं? अभी अगर आपने स्कैल्प करना है तो अभी तो स्कैल्प वाला नहीं, जो आप 9, मांग रहे हैं। अभी 100 पॉइंट दूर है, 150 पॉइंट एरिया जो मैं बैठा हूँगा, तो 970 से जाऊँगा जी, कितने पॉइंट्स के लिए? फिर 20-25 पॉइंट के लिए। ठीक, 970। सर अगर मैंने एवरेज आउट मेरा जैसे 200-300 का मैंने सोचा था कि अभी स्टार्ट विद, तो वो मैं कैसे करूँगा? 2 MNQ कर लें, उससे 1 मिनट के चार्ट पे 2 MNQ, क्या, would it give me that? that will give you $20 per trade. But then I have to Do num apply my trade. एग्जैक्टली, ज़्यादा करना, मिड ले लिया, फिब ले लिया, मिड ले लिया, फिब ले लिया, फिर एक बार फिर और आ जाए हाँ। तो मैं गेट माय हाँ नहीं, फिब के ऊपर बैठे, आएगा आएगा आएगा, नहीं आने वाला है, अभी 1 मिनट के बाद फिब नज़र आ जाएगा। ये देखें, देखिएगा, मैं देखिएगा, और उसके एक और मिड बैंड आ जाए, एक और ब्लैक कैंडल मेरी फॉर्म हो जाए ना, क्योंकि हर 4th मिनट के बाद एक फिब नज़र आ सकता है, पॉसिबल। एक उसकी जो एक प्रोबेबिलिटी होती है ना कि फिब ने गिरना का है, एंड दैट इज थ्रू आउट द डे हर 4 मिनट्स के बाद, इन अ डे। नहीं,
हर 4 मिनट के बाद एक प्रोबेबिलिटी फिब आने की होती है, ओके क्योंकि इसका मतलब है कि हर 4 के बाद वो स्विंग कंटिन्यू कर गया। फॉर एन एग्जांपल मीनिंग अभी देखिएगा ना, ये डे का मतलब नहीं, अब यहाँ से 315 316 317, लेकिन फिब कैंसिल हो गया क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो अगर कंटिन्यूअस कोई भी कैंडल एक साइड पे जाएगी तो फिब की चांसेस होंगे। फिर मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मुझे ब्लैक कैंडल यहाँ बने तो मेरा फिब आया। No fib here yet until I have a solid done. No, अभी देखिए वो अब आपकी स्विंग और बड़ी हो गई है। अब 796 और 55 पॉइंट पे चली गई ये बात। सो अब मेरा फिब का नंबर स्लाइटली चेंज हो जाएगा। 790 क्या था जी, 796 एंड 55, 796 55। ये है 1 मिनट का, बस 1 मिनट MNQ है। तो ये अगेन वहीं पर भर रही है क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। सर इसमें वही 120 वाला, हाँ ये तो स्कैल्पिंग वाला है, स्कैल्प। तो इसका क्या है सर? किसका? ये जो हम 1 मिनट बोला था, तो यही है ना 30 और 5। नहीं आपने उसका नाम कौन सा सेव किया हुआ है? मैंने दो एक बार, एक तो आपने मुझे बताया था जिसमें 20 SL एंड 20 TP। वो तो आपका MES का है और ES का है। ये था 120 SL और कितना 20 TP। जी है। तो ये MNQ के लिए SL अब ये नीचे जा रही है। आने दें, फिब आने दें मुझे। फिब जब तक अब देखो घर जाने में बैठ गई यही प्रॉब्लम इस बिजनेस का है, सर MNQ SL बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। 20। ये ऐसे आज कितनी देर से नहीं आप यहाँ कितनी देर से मैंने स्टॉक इतना लॉस कर लिया कि मैंने इसमें देखिए जो इससे पहले का वो हमारा फॉल्ट नहीं है, इसके आगे नहीं होना चाहिए। पीछे तो नहीं, पीछे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आगे की जिम्मेदारी में हम आपके साथ खड़े हैं। आ जाए नहीं, पीछे जब से आपने लूज किया गेन किया, विल लाइफ टाइम से पहले मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आपको फिर आपने बहुत जल्दी तो जाके फंड अकाउंट ले लिया यार इंस्टेंटली। मैं 3 माह किसी को नहीं देता, आप लोग 3rd वीक में जाके रियल मनी से 70 में कर रहे हो। पहले आपको देखें, मैं आपसे पूछूं डाइवर्जन लाइन बता दो, आपको वो तो पता नहीं है और आपने अकाउंट ख़रीद लिया है। तो मीनिंग के ठीक है आपको मिड आ गया, सब कुछ आ गया, अभी आपको डाइवर्जेंस नहीं पता, RSI नहीं पता, बुलिंजर नहीं पता, इसीलिए उन्होंने करेक्टली मुझे फ़ोन करके कहा भाई इधर आके बैठो। तो सही बोला उन्होंने, क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको कि इट्स वेरी हार्ड टू, सॉफ्टवेयर इज नॉट इजी, कॉम्प्लेक्स है काफ़ी। सॉफ्टवेयर इज वेरी नाइस। देखें फिब आया, वेरी क्लोज टू हमारे ऑर्डर आया था। ये देखिए जी, इसको उठाया, ये ग्रीन के बॉटम पे डाल दिया 755 पे, फिब आ गया जी, ग्रीन का फिब आ गया आपको। तो आपने ग्रीन के बॉटम पे यू पुट इट, यस, ग्रीन के बिल्कुल बॉटम पे जाके एक MNQ से दैट्स योर 1 मिनट का थिंग शुड बी ओके फॉर 5 पॉइंट्स, 1 माइक्रो। इसको बाय मार्केट नहीं कर नहीं मार्केट हो ही नहीं सकता, फिब पे लिमिट लगानी है ना। बॉटम ऑफ द ग्रीन एंड प्लेस द ऑर्डर। हाँ अब फिब ख़त्म हो गए तो अब आप रेड फिब पे चली जाइएगा। तो फिब नहीं है तो आप कोई ऑर्डर नहीं लगा रहे, तो ट्रेस नहीं करना ना सर इसको, ना ट्रेल करना है, कुछ नहीं। 5 पॉइंट TP, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस। आज का 1 मिनट का आपको बनाना पड़ना है। आज जतिन जी भी कहते हैं सारे आ जाओ। नहीं आज हमारी डे 1 है, एनर्जी पूरी है। आहिस्ता आप भी कहेंगे ये जवाब ही नहीं देता। आज वॉल्यूम नहीं आती ना, ये आप भी नहीं पी हाँ। उधर गई थी। कुछ तो करना है मेरा वो वाला रेट मुझे दे सर दो। फिफ्थ ये फिर आपको अंदर मीटिंग करनी है बिग बॉस से।
ये तो आपको बिग बॉस से करना है। नहीं, मेरा तो स्कैल्पिंग है ना, मेरा ये मैं स्कैल्प दे रहा हूँ ना, स्कैल्प में बनते ही 5 पॉइंट है, या नंबर पे वेट करें, आ जाए 29,970 आ जाए, सेल करें, 20-25 पॉइंट लें 2 माइक्रो से तो 150 बन जाएगा। लेकिन ये आज का नंबर है, फिर कल का डिफरेंट है, फिर पर एवरी डे 5 से पहले 4 से पहले आ जाए। अभी तो टाइम नहीं रह गया, वैसे ही 45 मिनट रह गए। 970 आएगा तो मैं कुछ सेल करूंगा, वरना आज कोई ट्रेड नहीं हुआ। आज जो मर्जी हो, आज कोई प्राइस ही नहीं आई। किसी दिन आ जाती है तो बहुत ही अच्छी आ जाती है, किसी दिन 970 है ना, 29,970। MNQ डजंट मैटर, एरिया चार्ट पे करना है, ये एरिया के नंबर दिए ना आपको। 60 मिनट पे कर लें। यहाँ एक ऑर्डर लगा तो इस पे लगा सकती हूँ। हाँ नहीं, नंबर तो चार्ट तो आपका ऑर्डर लगता है प्राइस पे, 1 मिनट हो या 240 डजंट मैटर। लेकिन जो एरिया वाले चार्ट्स होते हैं ना, उसमें हम एरिया वाला ट्रेड लेते हैं। ये देखें, ये वाला जो ऑर्डर है ये स्कैल्पिंग का ट्रेड है, 1 मिनट का, एरिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब एरिया वाला आएगा, एरिया मेरा है 30,000 या 29,970, तो फिर मैं वहाँ पर 60 मिनट पे लगा दूंगा। हाँ, वो जो 60 मिनट का आपका खोल के दिया ना, तो वो हमने कहाँ से निकाला है? 29,6 वो आपका हमने निकाला है जी, 970, 29,970। नहीं, अभी नहीं देगा, वो तो 200 पॉइंट दूर है, अभी तो वहाँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस सेव कर देना वर्क स्पेस। नहीं, डेड मार्केट है आज, मंडे मॉर्निंग है दिस। सिर्फ एक ही रैली आई थी सुबह, और पिछले मंडे तो 1000 पॉइंट चली गई थी। ऐस मंडे हो नहीं, वो अब मैं देखता रहता हूँ मार्केट की इस वक्त पोजीशन क्या है, तो मैं साथ साथ उसको ऑब्जर्व करता रहूँगा। अगर नहीं, तेज़ी नहीं है, मैं R1 पे ले आऊँगा, बहुत तेज़ी है मैं एक्सपेक्टेड हाई पे ले जाऊँगा। थोड़ा सा जितनी फार्दर होंगे उतना ज़्यादा सेफर ट्रेड बनेगा ना। अब फिब के अंदर भी आपको देखें 3 लेवल आए हैं, टॉप, मिडल, हेयर या हेयर। मैंने सबसे लिया है कि भाई यहाँ से मुझे 5 पॉइंट तो मिलने चाहिए इतनी बड़ी स्विंग के बाद। 80% की स्विंग वापस आ रही है, आई शुड गेट 5 पॉइंट्स। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ये देखें, मैं देखें 30 मिनट का मैंने अभी साथ खोला हुआ 60 का। अभी आपके फिब्स फ़ौरन ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि स्विंग और बढ़ जाएगी। अभी देखिएगा, अगर इसने 796 तोड़ दिया ना, ये फिब ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूँगा, बिकॉज यू विल कैंसिल द ऑर्डर, आपके फिब के बॉक्स ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, आपका फिब अगर नहीं रिस्पेक्ट होता, वो प्राइस फिब के अंदर नहीं आती, तो आपके नए फिब के नंबर में निकलेंगे ना, तो वो स्विंग कैंसिल हो गई है। तो कोई पैसे ज़ाया नहीं हुए, लेकिन बने भी नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको नीचे आना चाहिए, वो नहीं आती, वो कंटिन्यू ऊपर चली जाती है, तो हमारा ऑर्डर वेस्ट हो जाएगा ना। अभी देखिएगा बॉक्स ख़त्म हो जाएंगे, तो आप ऑर्डर उठा दीजिएगा। हाँ,
RSI मैं नहीं करता जी, मुझसे रेड भी बन सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस स्विंग का रेड यहाँ बनेगा तब अराउंड 9-800 पे, ये स्विंग है ना। अब ये स्विंग खत्म हो गई, इसका रेड ग्रीन ये है, तो इस स्विंग का रेड ऊपर बनेगा, क्योंकि ये कितनी पॉइंट की स्विंग है, 15 पॉइंट की। लेट्स सी व्हिच, इट्स अ लॉट हैपनिंग, इट्स अ लॉट हैपनिंग। मैं 30 पे आता हूँ जी, ये देखें ये आ गया। नहीं मैं 30 बनाया नहीं, मैं 30 पे आ रहा हूँ। मिनट एड 30, ये आ गया जी, 30 मिनट का आ गया जी। नहीं, पीपी ऑलरेडी हो चुका है ना, सुबह हमने पीपी से सेल किया था, अगर किसी ने बाय करना था तो पीपी से बाय किया, ये तो डन हो चुका है। ये देखें बॉटम ऑफ द ग्रीन यहाँ तो मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ 670 पे, 668 पे, यस। तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये है, आपने 1 मिनट का फिब लेना है, 5 लेना है, 15 लेना है, 30 लेना है, 60, वो फिर लेकिन वो उसके लिए आधी उम्र गुजर जाती है उस फिब तक पहुंचने के लिए। जो मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा यार 30 मिनट का फिब कह रहा है कि यहाँ पर बाय करो 665, लेकिन हाँ तो वो देखिए उसके अंदर भी तो इतनी बड़ी स्विंग है ना, वो अपना स्विंग का कैलकुलेट कर रहा है, 30 अपना, 5 अपना, 1 अपना, जो फास्ट है। नो, कोई एक्यूरेट नहीं है, फास्टेस्ट है, स्विंग छोटी है, टाइम रेंज 1 मिनट है, तो उसने फिर उसका कैलकुलेट किया है कि भाई लेना है तो ये ले लो। जो 30 मिनट है वो 30 मिनट की कैंडल को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो 15 मिनट है वो 15 को तो आप अगर 60 मिनट पे सबसे अल्टीमेट होते हैं जी, फिब के बॉक्सेस 60 मिनट पे आ जाए ना तो दे आर दी बेस्ट, बट इट डजंट कम एवरी डे, इट कम्स एवरी 4 days 5 days। अभी तो 1 मिनट का नहीं आ रहा, तो लेकिन वो आएगा बहुत देर बाद, मैं उसको कल शाम लग जाएगी आते आते। यस, बिकॉज 200 पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट दूर है यहाँ से। वो पता कहाँ पर है, 60 मिनट का फिब, वो खड़ा है, ये देखें 60 मिनट का फिब आपका खड़ा है, सबसे एक फिब पता कितने खड़ा है, वीक थे, वो 25,000 पे खड़ा है। एक कुछ लोग ट्रेड करते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, अभी तो आप कर रही हैं ना मैं मिनट में एक ट्रेड कर लूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स और मिलियंस, हफ्ते का एक ट्रेड बनता है कि अगर फिब की यहाँ आ गई तो यहाँ से लेंगे। ये आ गया जी आपका, देखें हमने 3 आपको बता दिए। 1 मिनट का फिब क्या कह रहा है, 755। ठीक है, चलें अब आपका फिब देखें जी, 1 का कह रहा है 755, अब आप देखें 30 मिनट का कह रहा है 670, चलें 655, राउंड अप करते हैं, इजी, ठीक है, 100 का फर्क पड़ गया, 100 है ना। अब आप देखें 60 मिनट क्या कह रहा है, 555, 570, अगर 67, चलो इसको 550, 1 मिनट वाला कह रहा है कि यहाँ से बाय करो, 30 मिनट वाला कह रहा है यहाँ से बाय करो, और 60 मिनट वाला कह रहा है यहाँ से बाय करो। ये बाय का वेट करते करते आपको पता कितना हौसला चाहिए, टाइम नहीं, लेकिन ये वाला जो ट्रेड है ये 5 पॉइंट का नहीं होता। यहाँ तो चलो आपने ले लिए 5 TP, अगर 30 मिनट है तो एटलीस्ट 25 TP तो लेना, और अगर 60 का है एटलीस्ट 100 का TP तो लेना। अगर आप दूर वेट कर रहे हैं तो आपका स्विंग उतनी बड़ी है, मैं वेट कर रहा हूँ 60 मिनट, तो मैं 100 पॉइंट ले सकता हूँ। अगर उसका फिर टीपी खुला करते हैं ना, कि अगर आपने ट्रेड लगाना है 60 मिनट में, उसमें सिर्फ 5 पॉइंट टीपी तो नहीं होता ना, कि आपने इतना वेट किया है तो आप बैठे ही रहे हो, और आपने बैठ के सिर्फ आए और 5 पॉइंट लिए और बाय पर चले गए। लेकिन अभी उस वक्त कैंसिल होगा जब डब्बे डिसअपीयर होंगे, उससे पहले तो या रेड फिब का
तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ग्रीन फिब का वेट करें या रेड फिब का, दो ही ऑप्शन है, और ये दोनों नहीं आ रहे तो उसके बाद सिर्फ वेट करें। नहीं नहीं और कोई ऑप्शन नहीं होगा या रेड वाले चार्ट में ओनली फिब्स आर देयर एंड मिड, एंड मिड लेकिन मिड के लिए अभी बेरिश होगा तो मैं सेलिंग करूंगा ना। जी मैं तो हाँ कि आइदर मिड में आ रहा है बड़ी तेजी से आ रहा है जी, आ रहा है उस फिब की तरफ आ रहा है। ब्लेस यू। दो ट्रेड बहुत हैं 1 मिनट की कैंडल में जी, बैठा हूं। अब ग्रीन ब्लू के टॉप से भाग गई ऑलमोस्ट प्राइस, 23% शैलो से वो निकल गए हैं, रिट्रेसमेंट, नो प्रॉब्लम। मैं तो वेट करता हूं ग्रीन के टॉप, ग्रीन के बॉटम, रेड के टॉप, ग्रीन के बॉटम, रेड के टॉप, ताकि ये MNQ का ट्रेड है। MES का क्या ट्रेड है, मिड बैंड, ग्रीन, दोनों ग्रीन हो बाइंग हो, दोनों रेड हो सेलिंग हो। एक चीज पकड़ लें उसको बढ़ा दें। अगर आपके पास, आपको पता है कि मुझे 1 मिनट की कैंडल में 5 पॉइंट मिल रहे हैं, अब 3 माइक्रो ले दो, जहाँ $10 मिलेंगे वहाँ 30 मिलेंगे। आपका गोल क्या है, $100, तो आप 4 ट्रेड कर लो दिन के, 5 कर लो, ये फिर आते रहते हैं जी, बहुत आते हैं 1 मिनट के। आज तो वॉल्यूम ही नहीं है, हम सुबह के बैठा हूँ मैं 9 का, एक ट्रेड लिया है मैंने एरिया का, और उस ट्रेड के अंदर भी मैं 2 घंटे बैठा हूँ। वो पिवट पे आई, वो 850 पे फंस गई 850, 870, 800, too many things. So I'm taking a 1 minute strategy What? at 7:55. Yes. 3 micros, 5 points. ठीक है, होना चाहिए जी, 5 पॉइंट तो मिलने चाहिए, अभी टेस्ट हो जाएगा। My charts are good. Your order ticket and your chart is good? Yeah. अभी स्लो मार्केट पे जी, आज तो कुछ भी नहीं होगा, मीनिंग जनरली वॉलेटिलिटी में आता है। I thought 1 minute would be a lot faster. नहीं, मैंने उनको 60-40 सिखाया हुआ है, वो उसके लिए आपको मैजिक फिंगर्स चाहिए होती हैं टू गो, तेज बहुत है जी, बहुत तेज। ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही। कुछ बनाए? अच्छा, नोट्स। तो वो कैसा रिजल्ट है, तो फिर वो करती रहें। बस मैंने आपको बताया कि since last Friday I was not getting big precise ones and I was losing continuously for some good reason. Zero line and 60-40 overbought oversold. उससे ज़्यादा अच्छा ट्रेड है नहीं, 60-40 के अंदर ओवरबॉट ओवरसोल्ड से ज़्यादा अच्छा ट्रेड है। उसको हम कहते हैं कि ये ज़ीरो लाइन क्रॉस वाला। तो उसकी क्या क्या पैरामीटर्स हैं? जैसे ही मिड बैंड क्रॉस हो आप लोग एंटर कर जाओ सेल के लिए, ऑपोजिट जाते हैं आप, ट्रेंड के साथ जाते हैं, ट्रेंड ट्रेड है वो। एक बार मुझे बताएंगे। मैं अभी ये बस फिप हो जाए तो मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर आपको 1 मिनट स्लो लग रहा है ना, फिर आप चले जाते हैं 60-40 पे, वो तो फिर आप, मुझसे भी नहीं होता जी, मैं इट्स सो डर्न फास्ट, क्योंकि उसमें तो जस्ट वी कांस्टेंट यू आर फोकसिंग ऑन दोस नंबर्स। यस क्या आया 99 नहीं ओवरबॉट से ज़्यादा, ये आप देखें, अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ओवरबॉट नहीं है, इसको हम कहते हैं मिड बैंड क्रॉस या ज़ीरो लाइन क्रॉस। Is that the one with divergence? नो ना डाइवर्ट, ये है, ये देखें MNQ पकड़ा, यहाँ जाके मैंने ट्रेड नया खोला, इसका नाम है यूनिरेंको और 40-60। डेटा सीरीज में जाती है। हाँ जी, ये मेरा 60-40 का चार्ट अभी खुलेगा, एक सेकंड दीजिएगा। 300 बॉट, ठीक है, एक सेकंड आ जाए चार्ट। ये चार्ट खुल गया, इसके अंदर मैं वो डाल दूंगा, मैं भी करती हूँ सर साथ। नहीं मैं बना देता हूँ, पहले आप देख लें, या आपसे हो नहीं पाएगा, आप कान लाल हो जाने फ़ौरन, इतनी तेज़ है वो, वेट करें आपके,
थर्ड स्टॉप लॉसेस हिट होने हैं और आप कहेंगे कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, तो वेट करें। उस दिन मैंने और संजय भाई ने ये किया है, वी वर लाइक वाह दिस इज दे रहा है वैसे। चलें, इसके अंदर से मैं सब निकाल रहा हूँ। 60-40 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं हर चीज़ ਕੱਢ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने चाहिए सिर्फ और सिर्फ नो वैल्यू एरिया, नो नथिंग, खाली कर दिया ट्रेड को। आपसे 60-40 का फिर भी कर चलें, मज़े की बात है। नो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ बट वी कैन गिव इट टू एवरीबडी, वो फिर अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। यहाँ से इसको कहते हैं बाय स्टॉप प्राइस, यहाँ बाय 5 पॉइंट देने हैं, $10 मैंने देखने और बाहर आ जाना है। जैसे ही मिड बैंड क्रॉस करे, मैं मिड लाइन आपकी जा रही है ना, ये मैं बाय में घुस जाता हूँ। नहीं होगा आपसे। कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस आपकी मिड बैंड क्रॉस कर जाए तो मैं बाय चला जाऊँ। जाने लगा है ना अभी, देखिए $10 होगा तो मुझे निकाल देगा ना बाहर। मुझे सिर्फ $10 चाहिए, इतनी घटिया मार्केट है, ये भी नहीं चल रहा, ये भी खड़ा हो गया जाके। नहीं, मैंने ऑपोजिट जाना है, इसको कहते हैं बाय स्टॉप। ये मैंने $10 लेने हैं, 6, 7, 8, ये 6, ये 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 9, $10, ट्रेड ख़त्म हो गया, डन। 60-40, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा। मैं ये ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन पे मैं सेल स्टॉप करूँगा, ऑपोजिट जाता हूँ मैं, वहाँ मैं सेल करूँगा। मिड यहाँ मैं कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरी प्राइस क्रॉस हो दूसरी साइड पे मुझे साथ ले जाओ। नहीं, बनाने से आपको खुद बना के खुद करना है, बनाने के। देखिए आप इसमें जाएंगी पीछे सारा भूल जाएंगे, आप पता नहीं ओवरलोड क्यों कर रही हैं अपने आप को। वो फिब तो इधर भी आते हैं, यहाँ पर भी फिब से कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू ए फिब ट्रेड, 60-40 में भी फिब है। आपके आ गया उधर, रेड उधर कैंसिल हो गया ना, ग्रीन चला गया, फिर तो अब आप रेड में जा सकते हैं। नहीं रेड नहीं आया जी, अभी 1 मिनट में आ गया। एक सेकेंड, अगर रेड आया है, नहीं 1 मिनट में किधर गया 1 मिनट। हाँ रेड, वो ट्रेड डन हो गया जी, वो पुराना कैंसिल। आप लोगों ने रेड के अंदर जाके सेल दबाना था और 5 पॉइंट लेके बाहर आ जाना था। हाँ वो ये दोनों ट्रेड, देखिए आपका ग्रीन वैसे मिस हो गया और रेड मिस हो गया, आप लेट होने की वजह से वो ट्रेड दोनों ही चले गए। वो ख़त्म हो गया जी, वो ग्रीन बॉक्स ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि उस ग्रीन के बाद रेड अपीयर हो के भी काम ख़त्म, रेड भी मिस हो गया, ग्रीन भी गया, रेड भी गया। नो वरीज। मैं सर बैठूंगा 5 बजे तक, नो प्रॉब्लम। नहीं, डजंट मैटर, फिब का ताल्लुक कोई नहीं है ट्रेंड के साथ, ट्रेंड डिफरेंट है, फिब डिफरेंट है। अब फिब तो दोनों चले गए सर, अब आप अगले ग्रीन का वेट करें, अब ग्रीन का वेट करें। नहीं मिड बैंड तो आपका अगर मजेंटा नहीं होगा तो सेल करूंगा ना, बाई तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ 5 पॉइंट के लिए। अच्छा उसमें मैं दूसरे उसमें हम बार-बार करते रहते हैं मिड बैंड। यहाँ एक दफ़ा नहीं वो आके चला भी गया, वो तो ऑर्डर कैंसिल करें, ग्रीन फिब इज गॉन। हाँ आके वो रेड वाला बन के आ गया जी, अभी कुछ भी नहीं है जी। फिब के अंदर कुछ नहीं देखते, रेड और ग्रीन। 1 मिनट में मैं मिड देख रहा हूँ सिर्फ। एज पर द, अगर मिड चला जाता है तो यस आई विल। हाँ जी, कौन से नंबर पे?
ज़्यादा था ऑर्डर्स 1 मिनट में मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ ठीक है आज मैंने अपने अकाउंट नीचे हो गई इससे कैसे ये मैंने कैंसिल ऑर्डर लगाया नहीं कहाँ देखने हाँ जाके? वही नहीं अब आप जाएं ऑर्डर्स के अंदर जाएं और ऑर्डर्स के टैब में सो एरिया में भी ये वाला एरिया सेफ है उसकी निस्बत ईएस की निस्बत नहीं दोनों ही सेफ हैं। एरिया में तो हर गोल्ड हो क्रूड ऑयल हो डैनियल भाई बड़े प्रिसाइज एरिया निकालते हैं। सर ऑर्डर कहाँ है यहाँ पे? ऑर्डर की टैब सबसे नीचे बनी हुई है ना। आप नहीं आप उसको अपने कंट्रोल सेंटर को ऊपर लेके आए। ये देखिए आपने टैब्स ही सारी बंद की हुई हैं। I see no tabs for you. You gotta right click. मैं ये बंद क्यों कर दी सर? मुझे तो नजर आ रही कुछ वजह। नहीं यहाँ पर या आपने इसको प्रॉपर्टीज किधर है कि टैब्स। अच्छा दोबारा निंजा को अगर मैं 30 मिनट का चार्ट देखूं and it's at the bottom of the view ये क्या लिखा है? डू यू हैव वन ऑर्डर? Do you have 2 active orders? या आपके 2 एक्टिव ऑर्डर हैं हैं। किसी ना कहीं या यू कैन Would I क्या check with you sir then? नहीं आप एक आपने पता नहीं MES में लगाए हुए हैं MNQ में लगाए हुए हैं कहीं ना कहीं ऑर्डर लगे हैं आपके। अभी कैंसिल करूँ? नहीं यहाँ पर नो करें और जाके उस ऑर्डर को देखें कि कहाँ है। कैसे जाके देखूँ? नहीं चार्ट्स पे आप MES के चार्ट पे जाके देखें कहीं आपने उधर तो नहीं लगाए हुए। सर कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल कैसे करूँ? नहीं कैंसिल के लिए आपको वो देखना है। आई डोंट नो व्हाई योर ऑर्डर टैब्स आर नॉट शोइंग अप। मुझे एनी टेस्ट दें दोबारा मैं वहाँ से देखता हूँ। 1433 यही प्रॉब्लम आ रही है ना कि आप पिछला वो सारा रैप करके 60-40 पे चले गई। वो थोड़ा सा 1% नॉलेज किया पीछे फिब भूल गई। फिब की तरफ आई आपको अभी ये भी नहीं पता ऑर्डर कैसे कैंसिल करना है। नहीं प्रॉब्लम ये है कि मैं अगला कॉन्सेप्ट बयान करता हूँ ना तो आप फ़ौरन उस पर जाके ना वो पिछला अभी पक्का नहीं हो रहा। क्या नंबर है जी? 104 मुझे 2 ट्रेड और 3 नेगेटिव में अगर 4 बजे का अच्छा होता है सर। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जीरो लाइन वो कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आप कह रही हैं आपने वो सक्सेस रेट मुझे नहीं मिल रहा था तो फिर उस कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करें ना। आई वेंट माइनस तो आपका है 1480। हाँ जी 104522 522 में भी आई एम आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। एक दफ़ा और पढ़िएगा 1433 104522 करें जी एक्सेप्ट करें। जी किया सर। ओके यहाँ नीचे बना होता है नीचे बना होता है सर राइट कि मुझे नीचे नजर आता है ऑर्डर क्या ये पोजीशन है देखिए अपना। यहाँ पर नज़र आता है क्लोज वर्क स्पेस MD फास्ट दिख ही नहीं रहे। Where do I see this? एक जो ऑप्शन आता और है शो टैब्स ये आपने बंद किया हुआ था। शो टैब्स ये लिखा है ऑर्डर्स में ये देखें वर्किंग ऑर्डर आपने सेल लिमिट लगाया हुआ है 970 पे। तो वो तो हाँ लेकिन वो तो अब शायद कल ही आए परसों ही आए। अब वी डोंट नो इफ 4 बज गए अभी तो नहीं आ रहा। कैंसिल कर तो इसको कैंसिल करें। कैसे करना है ये इसको एक्स करके आपका दूसरा ऑर्डर लगा हुआ है आपने ES में बाय लगाया हुआ है 7741 पे। जो हाँ
उसको कैंसिल करेंगे, जी ये कैंसिल हो गया, अब आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। एक सेकंड दीजिएगा, आपने इधर भी उसी चीज़ को इधर भी खोला हुआ है, वो चलेगा ही नहीं। ओके अब चलेगा। मैं ES और NASDAQ को मिक्स नहीं करना चाहता, सो आई विल गो एंड सेव। क्लोज, नो, क्लोज, NQ, रिमूव वन, टू मैनी। अब दो हैं, ये है डैनियल भाई का ES और ये MNQ, ठीक है। सिर्फ दो चार्ट, दो वर्क स्पेसेस आपने रखनी है। जी ये डैनियल सर के। हाँ, ये डैनियल भाई की ES की सारी टेम्पलेट्स जो ES की बनाई हैं, हाँ। और MNQ ये जो मैंने आपको दो चार्ट बना के दिए हैं। अच्छा, तो MNQ में आपका आ गया हाँ, और ES में सर के आ गया। यस एग्जैक्टली। अब सर मुझे एक और रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ दो स्ट्रैटेजी दे दें। एरिया का वेट करें और फिर 1 मिनट, अगर ES का करना है मिड बैंड कर लें, यही है, और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ना मार्केट में। जिसमें मैं प्रैक्टिस करूं और मुझे मेरी सक्सेस रेट मिल जाए। सक्सेस रेट फिर 1 मिनट का ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, फिबोनाची बॉक्स। फिब बॉक्स करें। 1 मिनट में सिर्फ फिबोनाची और आइदर चेंज द ट्रेंड। यस, चेंज द ट्रेंड। अब जैसे इसमें चेंज हुआ ट्रेंड, अभी नहीं, अब आपका सेल बनता है, हाँ जी, तो लगाऊं तो यहाँ पर आपका सेल बन, लेट हो गई ना आप, वो 1 सेकंड गुजर गया, वेट करें। 340 लगाना था तो पहले लगाना था, ये 5 पॉइंट देता है कि नहीं। 1 सेकंड, अभी 350 है, मार्केट एनी टाइम बंद हो जाना है, वेट। देखें, सिर्फ जस्ट बिकॉज वी हैवंट ट्रेडेड, इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिस्क लगा दें सब कुछ। चांस नहीं लेना अभी, क्योंकि ये 3 से 4 तक वो इतना ज़्यादा एक वॉल्यूम आएगा कि नॉट रिकमेंडेड। नहीं तो इसको वापस नहीं ना देने, तो इसलिए वेट कर लें। डन हो गया जी, वो देखें, देखा मिड बैंड जिसने लिया हो गया जी डन। वो डंप देखा इतना क्रेजी। हाँ एग्जैक्टली, मैं शॉर्ट में ही था, अबे हर वेले शॉर्ट। डन हो गया जी, मैं आपके आगे था, एक मैंने मिड लगाया हुआ था, तो मैं मिड पे जैसे बुले बेरेशाही मिड पे लगाया, उसने मुझे 5 पॉइंट दिए और मुझे बाहर निकाल दिया। Too fast, too little, too late. Now, not the, I mean, I've never lost the bus. So, after 6. After 6, mid or fib? Mid fib, 1 minute. Today I'm going to practice on this. No problem. मेरी जो progress क्या है, मैं आपको कल मॉर्निंग में बता दूँ सर को। हाँ जी बताइए जी, it's done, fast. Thank you. You made my chance, my dear. जी याद है सर, वो जो 3000 मैंने जमा करे थे। हाँ, मैंने देखी उसका कुछ अप्रूवल वगैरह ईमेल आया है कि ये अप्रूव। तो ठीक है, वो उनको पैसे मिल जाएंगे। मिल गए तो अब आप देखें, अब आपकी एक कॉस्ट पड़ जाएगी $16 महीने के। $16 तो कमा लें, एटलीस्ट आपकी मंथली कॉस्ट तो कवर हो जाए। जो बैंक की तरह पैसे पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, दस से। मुझे रश नहीं है, हाँ। मगर अब उन्हें कहाँ कब कैसे यूज करना है वो नहीं, आपके बस आपके सिर्फ जाएं, लाइव पे क्लिक करें, पैसे वहाँ नजर आ जाएंगे आपको। नहीं सर, आ तो जाएंगे। हाँ, नहीं जिस तरह लाइव के लिए आप अंदर कंसल्टेशन लें, लाइव के लिए अंदर लें, लाइव के लिए अंदर लें। मैं आपको फंडेड में ज़रा थोड़ा मेरे पास हौसला ज़्यादा होता है, तो लाइव के लिए आप उनसे ले लें। हाँ जी, नहीं मैं करवाता हूँ ना, आई विल गिव यू, आई विल, डोंट वरी, आई विल सेंड यू राइट नाउ। देखिए, मैंने आपको वो ट्रेड कराने हैं, जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं ट्रेड नहीं करवाऊँ, ठीक है। आज सिर्फ एक ट्रेड था, ये वाला पिवट का एक ट्रेड था। तो लेकिन फिर आप सिर्फ हम पे इतना ट्रस्ट करें कि जब तक हम आपको, मैं आपको जब तक नंबर ना दूँ ना, आपने नहीं कुछ करना।
नहीं नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम यह है कि वो नंबर के लिए रश नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आई नो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो नंबर 1 घंटे बाद आए या जब भी आएगा वो आएगा। यस, सो यू कैन वॉच माई जूम, आई राइट द नंबर्स। हमारी जूम हमेशा पूरी दुनिया में जा रही है, वहाँ में नंबर लिखे हुए हैं कि भाई यहाँ से गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट इज बाय, रेजिस्टेंस सेल। मैं बाय सेल लीगली नहीं ले सकता। रेजिस्टेंस मीन्स सेल, सपोर्ट मीन्स बाय। हाँ जी हाँ जी आएगा, लेकिन 5 के पहले आए जी, फंस जाएंगे अभी टाइम। ये मेरे पे होता है सारा कि जी कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या हेलो हेलो पूछो है मेरे तो उदय कर रहा है सर। यहाँ पे because it's in a support zone, even though the trend is down. At this point, resistance is sell. when market is between both things, I am not going to. No, but at the bottom, check करो here. इनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो मेंटली डिफरेंट है। ले लो। मैं इस वाले ट्रेड में भी नहीं कर सकता। एंड 5 पॉइंट है। रेजिस्टेंस मींस सेल, सपोर्ट मींस बाय। नहीं नहीं ठीक है, देखिए 30 मिनट का फिब आ गया, अच्छा चलेगा, पेंडिंग के 4:30 से पहले आए जी। नहीं नहीं 4:30 से पहले आ जाए, लेकिन फ्लो ही ना हुआ तो फ्लो बॉट हो जाएगा। फ्लो 6 बजे आएगा तो वो खुलेगी फिर, वरना तो ये फांदे ही रखना जी। हाँ नहीं मैं नहीं दे, मैं पूछ रही हूँ। आपने जो जाया करने वैसे ही मुझे रोटी खिला रहे हैं थोड़े। यार जो आज का सुबह का मैंने कचरा किया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट्स ओके, हो जाएगा। हाँ जी ये संजय जी हैं जी। I spoke with you. Yes. What day? Seema. Oh, Yes, Seema. yes, I heard yes. Seema. We're trying to still perfect that technology. I already bought it too. Huh? 2 lakhs. Sorry? I already bought it too. या थोड़ा सा रुक जाए, कोई मसला नहीं है, वो भी हम लोग सब साथ में सारे उसी पे काम कर रहे हैं। Yeah, it's a stuck provision today, so yours will be up and running. Yes. Yeah. Thank you so much. No problem. I was going to ask you, so tomorrow Rachna won't be, but I will be. Ah, So what You're Fresh. going to decide where you're coming here. Well, उधर जाएं जी, it's उधर। 10:30, हाँ। but I can do it online, or should I come in? No, please, yeah, go for it. नहीं नहीं डजर मैटर, इतना क्यों, वो जूम पे लाइव जा रहा है। सेम ही बात कहनी है, मेरे सामने बैठेंगे तब भी मैंने वही कहनी है, घर बैठेंगे वही So कहनी they है। updated Ah, the okay. they The came with relay. different type of relay. Nice. Now, where you can there's a box and you can see which one to Nice, choose and turn nice, it off and nice. stuff. So there's no issue. Excellent. हाँ जी अरुण भाई, 29,970 वैलिड है जी, 30,000 वैलिड है, जानी को नहीं उधर, मैं बता रहा हूँ, बहुत दूर है, बहुत दूर है। So send me the next system now. हाँ हाँ बिल्कुल सर, आज तो पहला था ना, पूरी एनर्जी से किया ना, मैं 3 बजे तक थे। अच्छा ये जो इसमें हुआ है 29,781 पे एकदम जो ड्रॉप। हाँ ये ड्रॉप इसलिए हुआ है, स्टॉक मार्केट बंद होती है 4 बजे, तो वो जो लोगों ने अपने ऑर्डर्स अनलोड किए हैं ना, तो सेलिंग हुई है ना, कि लोगों ने कहा भाई मैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट है बंद करो, क्योंकि आपका ब्रोकर 3:50 पे बंद करना शुरू कर देता है। अब कोई ब्रोकर है नहीं, दुकान नहीं, वो ब्रोकर बंद कर रहा है, वो जब वो बेच रहा है ना माल, इससे पहले कि वो देखें, अगर मंडी में भी जाएं तो सबसे घटिया जो फ्रूट होता है ना, वो 4 बजे बिक रहा होता है, वो कहते हैं वो ले जाओ यार, देखिए सबसे अच्छा फ्रूट सबसे। हाँ जी अच्छा इसमें हमने तो लगाया हुआ था प्रॉफिट भी उसका, हाँ लॉस भी, लेकिन अगर हमने इसमें प्रॉफिट ना लगाया होता सपोज, हाँ तो देखें वो, लेकिन वो जो स्पाइक आई है वो बहुत तेज थी, आपको कुछ ना कुछ तो लगाना है, लेकिन अगर आप ओपन है और वो आपके फेवर में है फिर तो ठीक है, हाँ वापस तो नहीं जाता। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, टीपी बेशक ना लगाएं। बोला साहब शामी 6 बजे शायद स्लो हो गए, ये ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਵੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਨਾਲ 50 ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇ, ਕਰਾ ਦੇ
हाँ हो ठीक है यार, किसी भी प्रेशर लो पर अच्छा ये बताइए कि ये इसमें सेव हो गया है, मैं इसको ओपन करूंगी तो यही हाँ क्लोज करो उसको। हाँ क्लोज करें, लेकिन अगर आपने उस दुकान में जाना है ES की तो वो बदल लेंगी वर्क स्पेस, अगर आपने इधर आना है तो यस टू ऑल करना है कि करना है? नो टू ऑल ਅਸੀਂ सेव कर लेंगे। Oh nice, awesome, So this one you decide to start. very nice, They did a test one, so whenever we want to test, Yeah. and then that's it. So that's it, and then beautiful, so that way it's very clear, Huh. as opposed to in the corner. And whatever. very nice, excellent. I think it can help a lot. Thank you so much. Figure it out. And you're like working. You're guaranteed, don't worry, it's okay. That's it. No, that's all you have to worry. 90 दिन बाद देखेंगे, ले जी सीमा जी ये पैसे वापस ले ले, मुबारक हो आपको। अभी नहीं हुआ, हमने ट्राई किया AI। Oh, देखो गया यार, that's part of the business. संजय सी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो रिपीट नहीं हमने भी तो जो काम करना है। मैंने जब पता लगा कि मैंने कहा मैं ले लूं? गो विद फोर संजय डोंट रणवीर जी बोले कि नहीं स्टार्ट विद या एंड देन लेटर ऑन यू प्रोबब्ली कैन इंक्रीज। डोंट वरी, एक दफ़ा पहले बैच के रिजल्ट आ जाएं, हम लोग जो इसकी AI के ट्वीक्स हैं वो कर लें, फिर आप 1 लगाओ या 100 लगाओ, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसका क्या जवाब देना है मैंने? किसका? नो जस्ट नो, बिकॉज आपको ऑलरेडी सेव है। Alright guys, we kind of managed to pull off a, how long? 7-hour stream. Incredible. और हैवी जी कैसे हैं आप? Thank you so much. No problem. Hopefully you guys got to learn something new. So that's मैंने कहा अब ये कह रहे कि मत अभी स्टाफ ना क्या है कि टाइम देखो क्लोज टाइम जहाँ से बहुत है ना अभी, आप देखना लो ना, देख लो खाली देखो, लेकिन जी जहाँ से लगा कर दिया ना 6 बजे भी ठीक है। किहड़े नंबर? 655 660 ठीक है, वो 30 मिनट का 30 मिनट वाला 30 मिनट का फिब है। वाह जी वाह। 30 मिनट वाला 10 मिनट और 20 मिनट नहीं आया। देखो गया ऊपर ये नहीं होता ना तो Sorry? अभी मैंने पूछा अच्छा अच्छा, नहीं बट मैं आपने कहा नहीं करना। Okay. No problem. एक डिसीजन बना लेना है, वो करो। देखो ये आपको आराम से ये ब्लू हो जाएगा ऊपर, No देखना So I would be able to graduate $100 बॉटम on an अच्छा Thank ये you. मैं पूछ रही थी जाएगी, ब्लू के बॉटम में लगेगी, जाके देखिए। That would be my gratitude. ये ट्रेंड है डाउन और ये अब ग्रीन कैंडल बन रहा है राइट बट इट्स इन और ट्रेंड के नहीं देखने, आपने कलर नहीं देखने, रचना जी क्यों कंफ्यूज हो रही है? ओवरबॉर्ड में ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं। क्योंकि देखो वापस जब आपका गलत हो रहा है नीचे जा रहा है मेरा गलत नहीं हो रहा, मार्केट को ब्रीदिंग रूम होता है, ये देखें, मार्केट में ब्रीद करना होता है, ये देखें, मार्केट के सेंटीमेंट को समझना गेम है। ये टाइम ये देखो देखें आपने अभी अपने उस्ताद को कहा कि आपका गलत जा रहा है, देखिए आपकी गलत पड़ गई ना। 767 से सेल बनता है, अगर क्विक नहीं उतने 770 तो सेल बनता है 1 मिनट के मिनट बैंड। शहजादे लोग हैं, अपना क्या चले गया, अब तो मार्केट डेड हो गई, 4 बज गए, ये इसमें अब मैं कोई नहीं लूंगी कोई बात आज नहीं। जलाने वाली बात हो जाएगी सर कि जो बनाया वो भी गया। ये वाला हाँ, कैंसिल कर दो। मुझे सर वो 300 वाला वो बताना है। अंदर थोड़ा सा एक दफ़ा अंदर तो पूछ लें। ऑलराइट जी, पूरे 7 घंटे की हो गई, तो 6 मिनट 59 सेकंड हो गए, तो 40 सेकंड और चला ही लें। Hello, do you want me to shut this off? Oh, okay. Rafi, इसमें आप super जाएगी ऊपर, आप देख लेना। लेकिन यार देखो मेरी गल, अच्छा मैनू दसना, आपने देखें इक्वल हाई उत्थे ही पिया है, 760 सेल बनता है। 760 एक गैम्बल करना है तो कर दो पूरा, मैं तो करने को तैयार। नहीं एम ही करने के तैयार। 765 से ना 1 माइक्रो सेल बनता है, 1 माइक्रो।